white ball cricket story has been told, the traditions celebrated, and the champions crowned. Domestic cricket now moves to a limited over format with the white ball and vibrant color kits. We are in Rawalpindi, a city rich in cultural heritage and Mughal bazaars. Its people dynamic and streets brimming with stories. And where better to start than with the Lahore Derby, divided into whites and blues. Let's play. We have moved to the northwest side of the country, to the vibrant city of Rawalpindi that carries the amalgam of color, culture, art and food. But currently all roads leads to the Rawalpindi Cricket Stadium, where we are all in readiness for the match number 1 of Pakistan Cup. Coming up, Lahore Whites taking on Lahore Blues. We have a few more games lined up for you today at the different centers of Pakistan. Peshawar taking on Karachi Whites in Mirpur, Azad Jammu Kashmir. Faisalabad taking on Multan at the KRL Stadium in Rawalpindi. And then we have the Fatah taking on the Rawalpindi team at the Aptabad Stadium. It just has been a fantastic story over the course of last 7 weeks of first-class cricket, but we have moved to some amazing white ball cricket with the team warming up a little while earlier. Both teams star-studded with some good players. Tayyib Tahir, Ahmed Shehzad, Umar Akmal. It just promises to be a season of some exciting cricket. Amir Jamal in the ranks. Hunain Shah, Umaid Asif, both of these teams warming up to the task. And I tell you what, this domestic season, it offers a lot to these players. Right then, about the ground, about the surface, how the conditions are going to behave. We have Salman Butt, the former Test captain of Pakistan, ready at the center with the pitch report. Good morning from the Rawalpindi Cricket Stadium here, Pakistan Cup 2023. And the pitch here is, as usual, a belter. The conditions are moving towards the winter, so maybe to start with, it's an early morning start, a bit of moisture. But if you have a look at this pitch, it's like a road. And there is nothing that is going to disturb the batters at all. We have seen previously loads of runs scored here, 380 plus, and chased at different times. So this also promises to be a batting paradise. Well, absolutely, this promises to be a batting paradise here at the Rawalpindi Cricket Stadium. It always says that Pindi is a batting paradise. Right then, about the toss results we have seen over the course of last few years at the Rawalpindi Cricket Stadium, it seems to be an even Steven Stars. Teams winning the toss, batting first, have won 2 out of 4 games, and teams winning the toss and deciding to bowl first have won 3 out of 7 games. So it seems to be an even Steven equation. Right then, what the toss results holds for us in this specific game, we have Ali Yunus ready at the center of the wicket with the both captains for the all-important toss. From red ball to white, from white kits to coloured, this is the start of Pakistan Cup with the Lahore Derby. I've got the 2 captains, Imran Butt for Lahore Blues, Saad Naseem for Lahore Whites. Mr. Nadeem Arshad is the match referee, and it seems like Saad Naseem will flip it. Heads is the call. It has come down as heads it is. Imran Butt, toss जीत गए. इमरान क्या करेंगे? हम बॉलिंग करेंगे पहले. क्या वजह लगती है आपको? लुक्स लाइक ए वेरी गुड पिच जो कि बाद में बैटिंग के लिए और अच्छा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि पहले 10 ओवर में अगर हमें 2 विकेटें मिलती हैं और हम अगर उनको अंडर 250 रिस्ट्रेन करते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा सेकंड टाइम. इमरान, 1 पॉइंट से टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल नहीं खेल सकी, क्या ये चीज़ आपके जहन में है या मूव ऑन कर गए? ऑब्वियसली होती है, आप उन गलतियों से सीखते हैं और हमें जो लगता है कि हमने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं उस वजह से हम फाइनल नहीं खेल पाए, तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है इस टूर्नामेंट में अच्छा रहे. Different format,
different approach, different strategy होगी टीम की? ऑब्वियसली जब आप रेड बॉल से स्विच करते हैं इसके लिए लिमिटेड ओवर्स के लिए, तो आपको थोड़ा सा स्विच करना पड़ता है मेंटली, और इंशाल्लाह यू विल सी द डिफरेंस. और वाइट बॉल स्पेशलिस्ट आपकी टीम में कौन है? उमैद आसिफ इज देयर, और 2-3 और चेंजेस हैं हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में. गो वेल इमरान भाई. थैंक यू वेरी मच. साद नसीम, टॉस हार गए, जीते तो आपके क्या प्लान थे? जी बिल्कुल, मैं भी टॉस जीता तो पहले बॉलिंग ही करता. पिच थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन ये टॉस तो हाथ में नहीं है. लेकिन जैसी मेरी टीम है, जैसी बैटिंग है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छा टोटल बहुत मिले. कायद आजम ट्रॉफी तो गुजर गई, बट वाइट बॉल में अगर आपकी टीम पे नजर डालते हैं तो काफी बैलेंस साइड नजर आती है. जी बिल्कुल, वाइट बॉल में काफ़ी बैलेंस साइड है, और कुछ 2-3 डेब्यू हुए हैं, वो भी लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको चांस दिया. जब हमने लास्ट बात की थी तो हम कदाफी स्टेडियम में थे, लेकिन यहाँ पे पिच और कंडीशंस कैसी लग रही है आपको? जी बिल्कुल, थोड़ी सी डिफरेंट है. ऑब्वियसली कदाफी स्टेडियम जितने भी मैच हुए हैं बड़े अच्छे बैटिंग पिच थे. इधर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, तो इसमें वाइट बॉल आ गया, तो इसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. ऑल द बेस्ट साद नसीम. थैंक यू. Right, the news from the toss is that Lahore Blues have won the toss and they will be bowling first. Right, then we've got the news from the center. That's Lahore Blues winning the toss, deciding to ball first. And about the team lineup, if we have talked about the Lahore Whites, Ahmed Shehzad, Mohammad Faik, he's the debutant today. Mohammad Umair Danial is the debutant as well for Lahore Whites. Tayyib Tahir, Saad Naseem, the skipper. Omar Rakmal, the wicket-keeper. Hassan Rizwan, another debutant for Lahore Whites. Ahmed Bashir, Ahmed Danial, he's debuting as well in the List A cricket. Amir Jamal and Kamran Afzal. For Lahore Blues, we have Imran Butt leading the side. Rizwan Hussain, Hashim Ibrahim, he's the debutant. Hussain Talat, Qasim Akram, Junaid Ali, the wicket-keeper. Usman Qadir, Kashif Bhatti, Umaid Asif, Hunain Shah, Salman Irshad. We have got some familiar names in both of these teams, and we have got a familiar name in the commentary box as well. Fortunate to have Salman Butt in the commentary box with us. Good morning, Salman. It promises to be a great game. Thank you, Naman. Good morning, everyone. Yes, it does. Both the Lahore games again fighting it out in this important startup of the Quaid-e-Azam Cup 2023, and we have the Lahore Blues boys coming in now to take the field, and we have the Lahore Whites openers coming up, and it's the debutant Faik Butt, and with him Umair. So in the presence of Ahmed Shehzad, these two youngsters to take up this opening position, so it's big boots to fill for them, and especially when you're starting your career, when it's debut games. So let's see how this talent goes, because they must have been the ones who have got runs in the domestic inter-district competitions, and from there these boys get a chance to play for their regions. But it's a huge responsibility, early morning start, and the pitch might offer a little bit to the new ball bowlers to start with, but generally the Pindi Stadium pitch is a belter, and the batters have a great time here. Well, absolutely, and it also showcases that the confidence that the team management have put in among these two debutants. The two youngsters have scored some good runs in the inter-district. Umair Danial, he was the leading run scorer, along with Faik Butt. He has scored some good runs in domestic cricket as well. So like Salman has mentioned, they've got big shoes to fill in today. And today seems to be the right opportunity for these two guys. Opening the innings against a decent bowling lineup, you need to provide a good start, because the confidence has been shown by the team management. And now these two players, they need to cash in on the opportunity. Salman Irshad, 15 wickets in 16 games, economy of 6.22. But I tell you what, these numbers, they do not really showcase the talent Salman Irshad possesses. Has been a great addition for the Lahore side. Here we go, ball number one. Right on money, right on cue. Good start by Salman Irshad. Yes, nothing much of a swing over there to start with. The first delivery was gun barrel straight,
and comfortably played by Umair, who is making his debut, and he's someone I'm being told by the statistician that he has topped the inter-district championships in Lahore. But I wonder if he bats at this position when he was playing that cricket, because Faik Butt we have seen in the local tournaments, he bats in the middle order, and he's opening over here. Drives through the offside but couldn't pace the field. You're absolutely right. It's important to see at what numbers they used to bat back in the domestic sides. But today, it's a different competition. Once you've moved on from the inter-district to the senior district, and from that point onwards, you move to the domestic cricket. The approach, the adaptability, the competition, everything changes. Yes, Umair being the top scorer in the district championship, he scored 489 runs at 61.13 the average, and Faik Butt scored 447 at 149 per innings. That's a huge average. And the boys come in with a decent reputation. And first up, they're facing Salman Irshad, who has played a lot of cricket, especially the PSL. And there is the first wicket. A little bit of movement, and he plays it away from his body. Yeah, that was a poor shot. Once again, a attempted push outside off. And Salman Irshad, as per his reputation, is struck gold. And a timely breakthrough this in the first over of the innings. Salman Irshad struck. So there's the replay, and a little bit of movement away, and no feet again. Poor technique shown on this particular delivery, just hanging the bat to the ball that is moving away and offers an easy catch to the keeper. And Lahore lose their first wicket. Umair Danial on his debut, gone for naught. And here comes the opener, Ahmed Shahzad. He comes in. He scored lots of runs this season in the Qaid-e-Azam Trophy and has shown wonderful form. And I'm sure the pitch is easy paced. And once you settle down here in Rawalpindi, then you can play all the shots in the book, and some which are not even mentioned in the book. That's how good the pitch is. Well, absolutely. You got to wait. You got to apply yourself. Things will get better with the passage of time. As you've rightly mentioned at the toss as well, that early on in the first 20-25 minutes, things might be a little difficult. Ahmed Shahzad, around 7,000 runs in the Lister format, the best of 166. Average is over 40. He's up against the challenge of Salman Irshad. He's got a wicket in the first over. 2 slips in place. Oh, once again, that similar channel outside off stump, getting some movement from the surface away from the right-handed batter. First one, good line, and this is the replay of the wicket that fell, and the ball just moved away, and just the hands and the bat going, no feet at all, no body position to play that delivery, and certainly not the movements of an opener. So this is something which we'll want to know, and we will find out whether this boy is an actual opener or not. His feet movement does not suggest. It's again played with a straight bat. Well stopped by the fielder at mid-on. A single there will end the over. A decent start by Salman Irshad. One for the loss of 1 wicket at the end of first over.
Umaid Asif, the bowler from the other end, is the very experienced Umaid Asif. He's played lots of domestic cricket and PSL. Bowls in the right channels, has a good height, high arm action, and a very good change of pace. And this early little bit that is present in the pitch, we shall see that how he uses this assistance which is available. Ahmed Shahzad is going to take the strike, and he is the man in form as well. So could be an interesting battle. Umaid Asif takes his time, he sets his own field, and these are some things which are good about him, and he's a confident lad. Down the leg side to start off. Once again, the lateral movement that we've been talking about from the surface. These bowlers, the faster bowlers, will extract something from the surface at the earlier phase of the innings. It's important to bowl in the areas where the batter plays the new ball, especially if there is a bit of movement around. This one was way too wayward, and it shows that he has been sitting outside the whole Quaid-e-Azam Trophy season. He hasn't played a game, and now here he is playing his first game of the season and seems a bit rusty. Yeah, that's better. That's better line. Nearly squared him up. Ahmed Shahzad will just find a single. So the lengths are very important with the new ball. Yes, a little bit of movement of the pitch there, moving away, and Ahmed Shahzad just opened up. Thankfully for him, it was through to the third man, not towards the slips. He gets a single. On your screen is the umpiring legend, Mr. Aleem Dar. Full toss. That was a slight misfield there by the fielder. That'll just be a single. At this level of cricket, you gotta be stopping those, that's for sure. You should not be giving freebies, extra runs to the batter. Yes, young players getting a chance to play for their cities, and this premier level of cricket, you need to be better in the field. And Hashim Ibrahim, although he is very fit, there's the other umpire, Kaisar Khan. Great chance for him alongside Aleem Dar. It's wonderfully bowled, again leaving him just outside the off stump, and Ahmed Shahzad doing the right thing, playing for the in swing and keeping it all safe. This will happen a few overs. We are in the month of November, where usually the pitches are a bit cooler in the morning and a little bit of moisture around. And it was angled in and just straightened up. And Ahmed Shahzad doing really well, just keeping his bat close to his body. These are the traits of an opening batter. Once again, let that one go well alone to the wicket-keeper. You're absolutely spot on. The traits of the opening batter. So the regulation field, 2 slips and 3 men patrolling the offside, point, cover and mid-off, and a short mid-wicket and a mid-on. The way the ball is moving around, you can opt for an extra catching position as well. There we see one going in the air, but no catching at short point. Dot ball. There we see the white road. A lot of motorways being built in Pakistan these days, and certainly this one is a new piece of art and an absolute belter this. And historically, in the last half a decade, there have been lots of runs scored at this Pindi Stadium. Once again, angled in, played towards the square leg. Now they're coming back for the second run. That's good running between the wickets. The good coordination between these two batters. Yes, excellent running that, and poor fielding. Too lazy the fielder to get out of the blocks. 2 overs gone, 6 for 1 Lahore. Well, absolutely, Ahmed Shahzad, his role at the top would be very key. That running between the wickets. It was again well bowled, and the inside edge just went behind square.
And the fielder at short mid-wicket was Kashif Bhatti, and he went all around the ball and was slow to kick off. And that's where Ahmed Shahzad took advantage. So it's Salman Irshad again. He has early success in this game, in this previous over. Wicket of Umair that he took, caught behind. Oh, once again, the similar channel outside off stump, tempting to play that one. And once again, the feet movement that we were talking about. It just hasn't been up to the mark by Fike so far. Again, we see no feet at all. It's just a normal new ball delivery. Nothing special about it. But you see where the bat is, where the head is, and both the feet as if they are tied to something. And that is why I doubt whether both these young boys were actually openers or not. Once again, that was the change of length from Salman Irshad. This time solidly behind that one. Being an opener, Salman, the first thing that definitely comes to your mind is the approach that the batter follows, the hand-eye coordination, the way the feet movement comes into play. Yes, and by the time you reach this level of cricket, it's so you are in a flow to face new ball and the swinging delivery, and your body shapes are much better. Again, well bowled in the right channels. Whenever he has been just around that off stump, he has troubled batters, and there is a bit of movement which we mentioned in the pitch report, because these are conditions. We are in November now. There we see from a good length, just moving that little bit. He is threatening with this new ball in his hand. Talking about technique, we saw how Ahmed Shahzad played the new ball on the other end. It was totally different. He allows the ball to come to him. Yeah, that's a good shot. That's good flick of the wrist. Fike will get the first boundary of the innings. That must be a confidence booster for the young man. Yes, a wonderful stroke. That use of the wrist was special on this occasion. And it was within the stumps. Not a very bad ball, but taken advantage of. And Fike Butt showing his talent over there, flicking it off his pads and timing it to perfection. He was in line of the stumps. Could have been very dangerous. Had he missed it, would have been plumb. Once again, outside off. Once again, trying to fetch that one. So yeah, what we have seen so far in this over, anything outside the line of off stump, it has troubled the batter. But whenever you stays on the pads, it becomes easy picking for the batter. So this one again moving away, and the batter trying to cut it half-heartedly. They say if you cut hard, and this was not the way to play a cut stroke. But maybe Fike Butt has been used to come in and take advantage of the power play. That may be one of the reasons we have seen these two boys come up. But who better than Ahmed Shahzad? With his experience, with his range of shots. 3 overs gone, Lahore Whites are 10 for 1. Oh, loud shout, Umair Asif. What a delivery to start. Pitched up. Must have been a bit of bat over there. Otherwise, it could have been curtains for the batter. And Ahmed Shahzad would have been a big wicket. Big scalp for the Lahore Blues. And it would have totally justified their decision to bowl first. So Umair Asif just floating one, letting it swing late. And Ahmed Shahzad, yeah, I think that was a bit of bat over there, which saved him. Yeah, once again, the movement from the deck. From the 20 deliveries we have seen in the innings so far, whenever the bowler has pitched up, whenever he has pitched in the zone of 4th or 5th stump, he has got some movement from the surface.
And that shows that whenever you pitch in the right areas, right zone, you will get something from the surface. That was a loud shout. Just about a couple of balls back from Umaid Asif. Oh, that's a loud shout. Loud shout. And Umaid Asif has got the wicket. Ahmed Shehzad has been stuck on the crease. So, Ahmed Shehzad looking at the pitch and the umpire both. I don't know what happened there, because if it has just struck him straight, then it's absolutely plumb. We'll see that in the replay. Tried to just come forward, and then it's an absolute plumb. It's only missing the off and the leg stump, hitting middle. And there was no doubt about this decision, and Aleem Dar had no second thoughts. Umaid Asif takes another important wicket for Lahore Whites. Tayyib Tahir is the new man in, and he now has a lot of responsibility here to show as a senior player, as a batter who has been in form lately. There are his stats: 54 games, average is 44, the best of 169, and he certainly needs to repeat his best today. 400s to his name and 16 50s, a very healthy strike rate of 90 plus, and he needs to stay there for the full quota of overs if Lahore Whites are to get a competitive score. Oh, once again, a good delivery. Similar channel, similar lines. You rightly mentioned about Tayyib Tahir. He has been a prolific run getter in the list A format. Umaid Asif has got the better of Ahmed Shehzad. It's again a pitched up delivery. It came in late swing. Stuck on the crease was Ahmed Shehzad. And as soon as the ball struck on the pads, he knew that this was going to be out. Good leave there by Tayyib Tahir. Good channels from Umaid Asif. Yes, that ball just was a full delivery, and it also seemed a bit off the pitch, and that is where Ahmed was beaten. And it was hitting absolutely the middle stump. Ahmed shocked there to see that decision, but I'm sure when he sees it on the screen, he will realize that it was going nowhere else. It was a good ball. Oh, once again, let that one go well alone. But this one, it still came back in. What an over, what a spell from Umaid Asif. 4 done. 10 for 2, that was a wicket maiden by Umaid Asif. So the scorecard so far has a very sorry side for Lahore Whites. 0540. It's like a code number at the moment. Salman Irshad is getting the ball to swing. I think Imran Butt can have an extra catching position. They've taken 2 wickets. The ball is moving around. The bowlers are bowling good channels. And what else does a captain need to attack? I think that is enough evidence that we have seen from the pitch that there is a bit of movement. It is 2 slips. And we can have a gully over here. There's point, cover, mid-off, but we haven't seen one drive through covers till now. There is the ball going through gully. Well, that's where you being a proactive skipper, that comes into play. You've got 2 wickets earlier on in the first power play. And what you can do is put extra pressure, because I tell you what, these batting lineup of Lahore Whites, they do have some good player among their ranks. So the attacking approach should not stop. Got 2 slips in. The skipper Imran Butt, one of the safest fielders in Pakistan in the slip department. Oh, what a line
What line by Salman Irshad. That similar channel outside off. I wonder what is the surprise there for the batters. Everybody knows that he swings the ball away. Yes, the pitch is doing a bit, but it's not something extraordinary. So all they need to do is just bat patiently for a few overs, and then the time will come, because we know this pitch is definitely lots of runs in it, but you just have to survive this initial period. This one is flicked towards fine leg. Would be an easy one. Then talking about Tayyib Tahir, we've mentioned before that he has been a prolific runs getter. Since 2019, he has got the second most runs in the history of Pakistan Cup. He's got 300 as well, has represented Pakistan's emerging team, the team that recently won the Emerging Asia Cup in Sri Lanka. Oh, loud shout, Salman Irshad, loud shout. Must be sliding down the leg side. Whenever Faik Butt is struck on the pads, you will hear a loud shout, because he plants his foot right across the stumps. We'll see whether it was high or going down. I think maybe a little bit high, because you could see the leg stump when he was playing the stroke. So he's right in front of his stumps, and he was very lucky to survive. Well, if this was World Cup, it could have been umpire's call. We have seen so many umpires call this World Cup. Once again, that's a beautiful delivery. Salman Irshad gets another one. And the end of struggling inning from Faik. Yeah, they don't seem to learn at all. Again, the ball swinging away. Again, no feet, just the bat hanging with the ball. And this is what they need to avoid, at least for the first 8 to 10 overs over here. There's the replay, the ball moving away, and the batter is playing like he's batting on a concrete track. And that's a poor stroke and causing his own downfall. The bowler, credit to him for keeping the right channels, but the batters are fully cooperating with the bowler over here. So 6 he scored, and 12 for 3 Lahore Whites. Walks in Umar Akmal. Just about 25 minutes back, you wouldn't have thought that he will be in so early. He will be batting in the power play. But you got to give the credit to Umaid Asif, Salman Irshad, the captaincy of Imran Butt. It's Umaid Asif to start his third over, and Tayyib facing. Down the leg side, keeper couldn't gather that one. 5 wides. Welcome runs there for the Lahore White side. Yes, just missing his line and length totally on this occasion, and this one way down the leg side goes for 5 wides, and a bit of breather for Lahore Whites, because nothing much is happening off the bat. And this one, keeper tried his best, but it was just away and kept moving further away. There we see, and was on his left side, which is a difficult side for this keeper because he's right-handed, Junaid. So handy 5 wides for Lahore Whites. Yeah, that's better. That's good comeback by Umaid Asif. Simon, talking about this surface, and during the first hour of the play, what you can do is you just got to keep the things very simple. What we have seen from Umaid Asif on the previous delivery, that was 5 wides, he was straying down on the leg side.
We have on our screen Abid Ali, the Pakistan opener in two different formats. And the man with a lot of experience and a lot of runs in this region. He played his cricket for Islamabad, knows this condition, and he's sitting on the bench. And we just saw two players open the innings who are not openers. Certainly their technique does not suggest. So it's an amazing decision. I don't know how, but somehow they have managed to keep him on the bench. And this is something which definitely doesn't go down with a person of his experience, doesn't go down well with someone like him. Oh, beautiful delivery, loud shout there, not given by the umpire. Once again, Tayyab Tahir hanging his bat outside the line of off stump. We didn't see this much movement in the 4-day competition. What's happening? It's the weather changing, cool conditions, a bit of moisture, and suddenly everything is happening for the bowlers. And Umayyad Asif, with his height and good seam position, is making full use of it. And the batters are responding feetless at the moment. No feet at all, no position. All you got to do is hang on and play the in swing every ball. And the outswing will just keep going away. That's better. Keep looking for the fuller ball and the in swing. That's the only way you deal with this time. And then in 5 or 6 overs, the pitch will get better. The ball will become a bit old, losing its shine, and it will start to go off the bat quicker. And absolutely, so far 3 batters have gone down. That was the first one. Look at that, hanging his back outside the line of off stump. Good catch there. And Ahmed Shehzad, that was a good delivery. Just came in, played the wrong line, Ahmed. And the outside edge. Yes, all these dismissals, especially the 2 caught behinds, were way away from the body. There you see. He's watching the movement. He's batting there, and still he's going after the ball, which is miles away from him. And that is the surprise element of what's happening. He's not doing what is required. He's just doing what he may have wished to do. And that is not being professional. You have to see the conditions and then select your shots accordingly. A length delivery there to end the over. 6 done, 17 for the loss of 3 wickets. The struggling run continues for Lahore Whites. They have lost 3 wickets within the first power play. And with that, we have the change of voices in the commentary box. It's going to be Tariq Saeed and Ali Yunus to take you further. शुक्रिया नौमान। 6 ओवर्स का खेल हुआ है और अभी तक कोई बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में नहीं आ सका। लाहौर ने आज कई नए खिलाड़ियों को आजमाया लाहौर वाइट्स ने, लेकिन अभी तक ये तजुर्बा ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। फाइक्स से इनिंग्स ओपन कराई गई, वो आउट हो गए उमर अकमल और तैयब ताहिर। ये सबसे अहम और किलीदी पार्टनरशिप है, क्योंकि इस पिच में रफ्तार है, उछाल है, इसके अलावा मूवमेंट है, इसलिए फास्ट बॉलर्स की चांदी है। उम्दा कवर ड्राइव, आउटफील्ड निस्बतन सुस्त है, लेकिन गेंद फिर भी जीत गई। 2 फील्डर्स ने ताकुब किया, अच्छा टाइम किया उमर अकमल ने, और प्लेसमेंट भी आला पाए की थी। अली हैं कमेंट्री बॉक्स में, खुशामदीद अली। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, और बहुत ही शानदार तरीके से अनाउंस किया अपने आप को उमर अकमल। अच्छा कवर ड्राइव है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन स्टिल प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी, थ्रू द कवर्स खेले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है उमर अकमल के लिए भी। अगर कमबैक का सोच रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि विकेट्स गिर गई हैं, अच्छे टाइम पे आ गए हैं अपने लिए। एक और, लेकिन
उतनी उम्दा फील्डिंग भी। वहां पर रिजवान हुसैन थे पहले के मुकाबले में, ये बेहतर अब एथलीट लगते हैं, पहले के मुकाबले में ज्यादा फिट हुए हैं रिजवान हुसैन। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं, उमर अकमल जो है इन्होंने उस जमूद को तोड़ा है जो कि फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पर कायम किया हुआ था। रिजवान हुसैन अच्छे बासलाहियत ओपनिंग बैट्समैन है, बाएं हाथ से खेलते हैं। या बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बहुत लीन नजर आ रहे हैं रिजवान हुसैन। 3 साल पहले आई गेस ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे PSL के अंदर भी, तब थोड़ा ओवरवेट थे, लेकिन इस बार इनको देख के अच्छा लगा कि इन्होंने काम किया है, ऑफ सीजन अपने ऊपर काम किया और काफ़ी लीन नज़र आ रहे हैं। और बात आप कर रहे थे इस पार्टनरशिप की, ये पार्टनरशिप ही है जो लाहौर वाइट्स को देखते हैं कितनी दूर ले जाती है इस मैच में, क्योंकि जो पलड़ा भारी है इस वक्त वो ब्लूज का है। यहाँ इन हालात में आपको दो ऐसे ओपनर्स की जरूरत थी जो कि टेक्निकली ज्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को बचाना होता है इस तरह की कंडीशंस में, इसलिए फिक्रमंदी जो है वो देखी जा सकती है इन चेहरों पर। आबिद अली ये मुकाबला नहीं खेल रहे, फाइक बट जो हैं उनको पहला मौका मिला था सीजन में अपनी सलाहियतों के इजहार का, इससे वो और भी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं आउट होने के बाद। अच्छी डिलीवरी इस बार, फिर से लेट मूवमेंट। यह बहुत ही अच्छा आगाज़ है ये सलमान इरशाद की जानिब से, और यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लाहौर ब्लूज के कप्तान। टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, 7 ओवर्स के बाद 22 पर 3। और जो टेक्निकल ओपनर्स की आप बात कर रहे थे, आबिद अली को नहीं खिलाया गया आज, थोड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था, क्योंकि पहला मैच कंडीशंस थोड़ा मुश्किल, आप टॉस हार गए ऊपर से। फाइक बट जो कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं, काफ़ी रन्स करके आए थे इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रन्स कर नहीं सके। 447 रन्स 149 की एवरेज से इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट में किए हैं। रमीज जूनियर को भी नहीं खिलाया गया, ये भी सरप्राइजिंग डिसीजन है। इखलाक भी मौजूद हैं जो कि विकेट कीपर बैटर हैं, ये भी थोड़ा हैरानकुन है क्योंकि उमर अकमल आज विकेट कीपिंग करेंगे। उमर अकमल जो हैं उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। लंबे कद के फास्ट बॉलर को कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ये दलेर बैट्समैन रहे हैं उमर अकमल हमेशा से। रिलक्टेंट विकेट कीपर थे जब ये पाकिस्तान के लिए खेलते थे, तो विकेट कीपिंग इनकी पहली पसंद हुआ नहीं करती थी, मुझे जहां तक याद पड़ता है। लेकिन अब लाहौर के लिए खेल रहे हैं तो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। और तारिक भाई मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्होंने अपना करियर प्रोलॉन्ग हो सकता था अगर ये विकेट कीपिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते। एज अ विकेट कीपर बैटर इनकी ज़्यादा मांग हो सकती थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप अगर T20 लीग्स की भी बात करें और लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट की बात करें, लेकिन शायद खुद से भी इनका इतना कभी भी रुझान नहीं रहा है विकेट कीपिंग की तरफ। थोड़े फिटनेस के मसाइल भी रहे, लेकिन अगर ये विकेट कीपिंग को उतना सीरियसली लेते जितना इनके अंदर टैलेंट है या स्किल है, तो इनका अपना करियर काफ़ी प्रोलॉन्ग हो सकता था। दो फील्डर्स स्लिप में मौजूद हैं अभी भी। ये अच्छी कप्तानी इस वक्त इमरान भट्ट की जानिब से। उमर अकमल जो है ये वाइट बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट ख्याल किए जाते हैं हमेशा से ही। इनका 50 ओवर की क्रिकेट में भी बड़ा आला रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। 2 वर्ल्ड कप खेले 2011 और 2015 में। ये एक उमर अकमल ऐसे प्लेयर हैं जो जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान हुआ है इनकी फिटनेस और आउट ऑफ फॉर्म होने से, क्योंकि ये चौथे 5वें नंबर के ऐसे प्लेयर हैं जो कि हर तरह से फ्लेक्सिबल हैं, जो इनको बिल्ड भी कर सकते थे। इनका रिकॉर्ड बताते हैं, ये एवरेज 34 की है, लेकिन इससे स्किल इनका ज़्यादा है, इनसे जो इनकी बैटिंग पोटेंशियल है वो इससे ज़्यादा है। स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रेसिव है, 200 कर चुके हैं। ओडीआई करियर की बात करें 3000 रन हैं, लेकिन इससे ये रिकॉर्ड बेहतर हो सकता था अगर इनकी फिटनेस और फॉर्म बरकरार रहती तो।
ये उमर अकमल जो है, इनकी मैंने पहली वनडे इंटरनेशनल जो सीरीज थी वो मैंने कवर की थी श्रीलंका में, और वहीं पर इन्होंने ये अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी। 2 में से इन्होंने अपनी जो पहली सेंचुरी थी वो वहाँ पर बनाई थी। दूसरी इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2000 एशिया कप में बनाई कुछ साल बाद। लेकिन वो जो पहली सेंचुरी थी, लासित मलिंगा, मुरलीधरन, उनके सामने उनके होम ग्राउंड पर प्रेमादासा स्टेडियम में, वो बहुत ही तहलका खेज बैटिंग थी। और यहाँ गेंद रुक कर आई और कोई गलती नहीं की कासिम अकरम ने, इजाफी बाउंस, तो एक और विकेट ले उड़े उमैद। दोनों एंड से आज विकेटें गिरी हैं, यही लाहौर वाइट्स की मुश्किल रही है। ये परफेक्ट एग्जांपल है कमेंटेटर्स कर्स की, क्योंकि अभी हम इतनी तारीफ कर रहे थे उमर अकमल की पोटेंशियल की, इनके स्किल की, लेकिन यहाँ पे दाद देनी होगी उमैद आसिफ के एक्सपीरियंस को। थोड़ा दूर बॉल किया, थोड़ा खिंचा हुआ बॉल किया, ड्राइव के लिए लचाया, और एक किसी पोजीशन में नहीं थे ड्राइव मारने की, दूर से खेल गए, और एक आसान से कैच कासिम अकरम के लिए। जो चीज़ लाहौर ब्लूज के बेनिफिट में या एडवांटेज में जाती है वो एक्सपीरियंस है जो कि उमैद आसिफ के पास मौजूद है इन कंडीशंस का। 5 रन बनाकर वापस जाएंगे, 22 पर 4 लाहौर वाइट्स। कप्तान साद नसीम को बड़ी इनिंग खेलनी होगी अब यहाँ से, एक जिम्मेदाराना इनिंग खेलनी होगी यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ से ऑनवर्ड्स टीम के लिए खेलना होगा, क्योंकि 4 मेन बैटर्स आउट होके वापस जा चुके हैं, जिसमें अहमद शहजाद, मोहम्मद फाइक, उमैर दानियाल और उमर अकमल। ये 4 आउट होने वाले बैटर्स। लाहौर ब्लूज से कप्तान ने टॉस जीते, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी पहले बॉलिंग करते हुए और दिखाते हुए, क्योंकि बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है। 4 विकेटों के नुकसान पर अब इस बात को यकीनी बनाना है तैयब ताहिर को कि लाहौर वाइट्स की टीम जो है ये 50 ओवर खेले बगैर ये आउट ना हो। 45 ओवर्स दरअसल, क्योंकि ये बहुत बड़ी सबकी होती है किसी भी टीम के लिए जब वो पूरे ओवर खेले बगैर आउट हो जाए। अपने जिस्म से दूर खेले, शॉट को जब रोकने की कोशिश की, देर हो चुकी थी। एक आसान कैच गया कासिम अकरम के लिए, फिर खोल के रख दिया। बिल्कुल एक्स की शेप दे रहे हैं इस वक्त सलमान जो है राइट हैंडर बैट्समैन को अपनी आउट स्विंग्स के जरिए। ये भी पहले से बेहतर बॉलर है। ये मोस्ट इंप्रूव्ड बॉलर होंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के, जिस तरीके से इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाई है। और ये देखिए लेंथ बहुत शानदार है इस पिच के अकॉर्डिंगली, दूर बॉल किया, बाहर को निकलता हुआ बॉल, ये क्वालिटी है सलमान इरशाद की। और शायद इसी बॉलिंग के भरोसे पे इमरान भट्ट ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और क्या ही सही साबित हुआ है ये फैसला तारिक भाई। इसमें कोई कलाम नहीं कि वापस जाना चाहते थे साद नसीम, क्योंकि हर बैट्समैन जो है इस वक्त दूसरे एंड से देखना चाहता है, दूसरे एंड पर रहना चाहता है इस पिच पर। अभी कंडीशंस ऐसी हैं, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो दोनों एंड्स पर हुक्मरानी कर रहे हैं। देखना ये है कि साथ जो हैं ये कैसे सामना करते हैं, इनकी टेक्निक क्या कहती है। इस तरह की पेस के सामने तकरीबन 40 की औसत है, 4 सेंचुरियां हैं इस फॉर्मेट में, रिकॉर्ड खासा बेहतर है क्योंकि अच्छा स्ट्राइक रेट है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए अच्छा स्ट्राइक रेट है, 94 का लिस्टेड क्रिकेट में। लेकिन जो ज्यादा इनकी जितने भी रन्स ये बनाते हैं ये ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं स्पिनर्स के आगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेट मिडिल ऑर्डर बैटर है, चौथे 5वें बैटिंग करते हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट इम्तिहान, एक डिफरेंट चैलेंज है जो कि साद नसीम को दरपेश है, क्योंकि दोनों फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, पिच से भी मदद मिल रही है, इसलिए अपने कैरेक्टर से हट के बैटिंग करनी होगी, यहाँ पे टीम के लिए बैटिंग करनी होगी साद नसीम को। और इन मुश्किलात से
टीम को निकालना होगा, क्योंकि 2 स्लिप्स मौजूद हैं अभी भी। और जानते हैं, दोनों फास्ट बॉलर्स जानते हैं कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं साथ नसीम अर्ली ऑन, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। इसीलिए जो लेंथ है, जो पेस है, उसको बदला, थोड़ा तेज बॉल किया, शॉर्ट पिच डिलीवरी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है इन दोनों की जानिब से। तैयब ताहिर ने अभी तक विकेट लिया है, विकेट पे ठहरे हुए हैं, 17 बॉलें ले ली हैं, 2 रन्स बना रहे हैं, तो अभी अफोर्ड कर सकते हैं, ये टाइम ले सकते हैं। यहाँ इस टीम की बैटिंग का सबसे बड़ा सुतून है तैयब ताहिर। उनका ये पसंदीदा फॉर्मेट है, वो मेरा हाथ लगा। पावर प्ले का इख्तिताम हुआ, जो कि 9 ओवर्स तक मुहित रहेगा। 45 ओवर्स के मैच में 23 पर 4। यहाँ पे बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, दोनों नए बॉलर्स ने 2-2 विकेट्स हासिल किए हैं। 2 विकेट्स हासिल किए हैं सलमान इरशाद ने, 2 विकेट्स हासिल किए हैं उमैद आसिफ ने। 0, 6, 4, 2, 5, 0। अभी भी कोई भी बैटर जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका है। तो पहला पावर प्ले जो कि 9 ओवर्स का है, डेफिनेटली ब्लूज के नाम रहा है। शानदार ये दिल फरेब तैयब ताहिर ताकतवर बैट्समैन है और बड़ी जमामर्दी के साथ उनने खेला, क्योंकि सामने शॉट खेलना जो है ये अच्छे बैट्समैन की निशानी। जहाँ दिल फरेब आपने अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बॉल इसी हकदार थी इस शॉट की, क्योंकि आगे बॉल कर दिया, पिच आगे कर दी। इससे पहले थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करते हुए नजर आए उमैद आसिफ, लेकिन इस बार लेंथ में चूके मुंह में बॉल कर दिया। जितना टैलेंट तैयब ताहिर में ये मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पिच पर जो है रन्स बनाने के इस वक्त सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं, कि या तो जो है बैकफुट पर बॉलर आपको मौका फराहम करे, या फिर गेंद जो है बिल्कुल आपके पाले में आए, जैसे कि उमैद आसिफ ने गलती की थी। तैयब ताहिर के बल्ले के बहुत करीब गेंद को पिच कराया, पर तोल रहे हैं यहाँ पर उनैन शाह भी, क्योंकि हर एक का जी ललचाता है, हर फास्ट बॉलर का, वो ऐसी पिच पर आकर गेंद करे। या तारिक भी ना सिर्फ पिच कंडीशंस बट अर्ली ऑन स्टार्ट है, ये 9:30 का स्टार्ट है, तो आधा पौना घंटा भी बहुत फर्क डालता है। और आप देख सकते हैं कि 4 विकेट्स पावर प्ले के अंदर हासिल कर ली हैं। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था लाहौर ब्लूज के कप्तान इमरान भट्ट ने, और उनके बॉलर्स ने सही इस डिसीजन को साबित किया अपने कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ से। फाइक भट्ट अच्छे नजर आए थे इस शॉट के बाद, लेकिन कंसिस्टेंट लाइन लेंथ अच्छे एरियाज में बॉल करते हुए नजर आए। थोड़ी खराब शॉट सिलेक्शन भी लाहौर वाइट्स के बैटर्स की जानिब से, थोड़ा जल्दी में नजर आए, रन्स की तलाश में रहे। उमर अकमल से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं सके, क्रीज पर अपने विकेट गवा दी। आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी उमर अकमल थे। ये तो बात हम कर रहे थे कंडीशंस की, तो क्योंकि 9:30 का स्टार्ट है ये मैच, तो वो आधा पौना घंटा यूजुअली हम देखते हैं कि 10 बजे जब मैच स्टार्ट होता है तो उसके बाद 45 मिनट्स 1 घंटा मॉइस्चर रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐड कर लीजिए आधा घंटा, क्योंकि 9:30 का स्टार्ट है। तो वो जो अर्ली एडवांटेज है वो डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स को हासिल होगा। इसलिए दोनों कैप्टन जो थे वो टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहते थे, क्योंकि अर्ली एडवांटेज वैसे ही, क्योंकि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो वो आधा पौना घंटा जो पहला है वही बॉलर्स के लिए काम आने वाला है। यहाँ इसलिए बेहद ज़रूरी था कि आपके पास यहाँ 2 ऐसे ओपनर्स होते जिनकी जो टेक्निक है वो इन कंडीशंस में मुज़ाहमत कर पाते, तो इससे आबिद अली को ये खिला सकते थे। क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में जो है नए ओपनर्स का खिलाया जाना, उमैर दानियाल जो हैं उनसे आज ओपनिंग कराई गई, और दूसरे एंड पर भी उनके नए पार्टनर थे। जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी तो वहाँ इमरान डोगर खेल रहे थे, अली ज़रियाब थे, वो टेक्निकली सॉलिड थे दोनों। या बिल्कुल नए ओपनर्स को इस तरह की कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है उनके लिए एंड। 10 ओवर्स के बाद 29 पर 4।
29 रन पर 4 विकेट्स गंवा दी हैं। ये ग्राउंड जो है ये रन स्कोरिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2019 से लेके अभी तक सबसे ज्यादा जो रन्स बने हैं वो इसी ग्राउंड पे बने। रन्स पर ओवर भी सबसे ज्यादा है 6.47 और फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज टोटल है वो 319 है। तो रन्स पर ओवर आप देख सकते हैं पहली इनिंग में 6.45 है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बढ़ जाता है 6.47 हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बॉलर्स के लिए यहाँ पे मुश्किलात रही हैं क्योंकि बॉल भागता है, ट्रैवल करता है, यहाँ पे हवा में बहुत तेजी से ट्रैवल करता है और इसीलिए वो जो पहला आधा घंटा 45 मिनट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। बॉलिंग में तब्दीली की गई है, पहली बार हम देखेंगे बहुत ही टैलेंटेड हुनैन शाह को। अभी तक 1 विकेट हासिल किए इस फॉर्मेट में, लेकिन हमने देखा था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लाहौर की बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे कितनी जानदार कितनी तगड़ी बॉलिंग की थी हुनैन शाह ने। तो डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर, इन पे आंख रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके अंदर वो दमखम है जो एक फास्ट बॉलर में ज़रूरी होता है। दूसरी सिप से अब इमरान बट खुद निकल आए। अच्छी शेप इनकी बनती है, अच्छी रफ्तार है हुनैन शाह की। इन कंडीशंस में खासी हद तक मुमकिन है कि चौथा जो पेसर है उसका भी इस्तेमाल हो। हुसैन तलत को इस ज़िम्न में इस्तेमाल किया जा सकता है। उस्मान कादिर और काशिफ भट्टी ये 2 स्पिनर खेल रहे हैं इस टीम में। उस्मान कादिर तो टीम में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो काशिफ भट्टी हैं ये यहाँ पर क्या एक फास्ट बॉलर जो है उसके मुतालिक सोच सकते थे लाहौर ब्लूज़ के। इनका जो थिंक टैंक है यह एक बैट्समैन को खिलाया जा सकता था इन कंडीशंस में, क्योंकि इजाफी बैट्समैनों की ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। यह बहुत अच्छा पॉइंट तारिक भाई आपने रेस किया है। काशिफ भट्टी, उस्मान कादिर, कासिम अकरम भी मौजूद हैं, तो 3 स्पिनर्स मौजूद हैं, उसके साथ 3 फास्ट बॉलर्स हैं और ऐसी कंडीशन जहाँ पे पिंडी पे हार्ड पिच होता है, बॉल अच्छा ट्रैवल करता है, तो बिल्कुल मैं 100% आपसे एग्री करूंगा कि आप या तो एक फास्ट बॉलर को ऐड कर सकते हैं या एक बैटर को भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि कासिम अकरम ऐसे बॉलर हैं जो 10 ओवर करने की पोटेंशियल रखते हैं। काशिफ भट्टी, हुसैन तलत की बात की आपने, उस्मान कादिर और 3 फास्ट बॉलर्स जो हम देख रहे हैं, तो 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ लाहौर ब्लूज गए हैं। असदुल्ला भी एक बॉलर हैं जो बाहर बैठे हैं, फास्ट बॉलर, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अली शफीक हैं जो बाहर बैठे हैं लाहौर ब्लूज की जानिब से। एक बैटर को ऐड कर सकते थे ये, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग जब देखते हैं तो एक थोड़ी कमी नजर आती है बैटिंग में। तो अगर आप हुसैन तलत और कासिम अकरम से भी ओवर 10 पूरे करवाएं और बाकी 5 बॉलर्स आपके पूरे हों 4, तो आप एक बैटर ऐड कर सकते थे। यहाँ फिर इब्तिसामुल हक को या हसीबुर रहमान को खिलाया जा सकता था, और राउंडर हैं हसीबुर रहमान। लेकिन फिलहाल उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स ने यहाँ जिस तरह की बॉलिंग की है, यहाँ कंडीशंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। उन्होंने बिल्कुल चोटी जो है उड़ा कर रख दी है। ये लाहौर ब्लूज़ की टीम है। इमरान भट्ट और रिजवान हुसैन जो हैं ये ओपनिंग करेंगे। हाशिम इब्राहिम बासलाहियत बैट्समैन हैं, इस सीज़न में उभर कर सामने आए हैं। कासिम अकरम, हुसैन तलत हैं, जुनैद अली अच्छे विकेट कीपर हैं। और फिर जो बॉलर्स हैं इनकी टेल खासी लंबी हो जाती है, इसलिए भी इनको ज़रूरत है। इनकी टेल बहुत लंबी लग रही है। अली बेहतरीन डिलीवरी थी है और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं हुनैन शाह से। लेंथ बहुत ही शानदार है, स्विंग भी मिल रहा है, सीम भी बॉल हो रहा है, हम देख रहे हैं। ये जो चेंज ऑफ पेस करते हैं ये गेंद की रफ्तार बढ़ाते हैं अपनी स्विंग पर। ज़्यादा इनका इन्हिसार है, ये एफर्ट बॉल थी इनकी। ये पहले जो है इतनी ज़्यादा तेज़ गेंदें नहीं कर रहे थे इसी लेंथ से, लेकिन अचानक इन्होंने एक ऐसी गेंद की जिससे बैट्समैन शशदर रह गए। और एक और शानदार डिलीवरी, बाल बाल बचे। गेंद और बल्ले के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। खुशनसीब हैं तैयब ताहिर, 30 पर 4। क्या ही शानदार डिलीवरी है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पेस और अच्छे दिमाग का जो हुनैन शाह के पास मौजूद है, और आप इस बॉल से जज कर सकते हैं क्या शानदार लेंथ, एंगल के साथ बॉल अंदर को आया, पड़ने के बाद हल्का सा बाहर निकला।
ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि एक ऐसा बॉलर जिसके पास पेस है और दिमाग भी है। शानदार स्टार्ट हुनैन शाह के लिए। स्पिन देखेंगे हम पहली बार काशिफ भट्टी, और ये हम जब नजर डालते हैं तो सिर्फ 3 प्रॉपर बैटर हैं जिन पे ये इन्हिसार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनकी बैटिंग में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि एक ऑलराउंडर या एक बॉलर को कम करके आप एक बैटर को ऐड कर सकते थे, क्योंकि 4 ऑलराउंडर टीम में शामिल हैं और सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बैटर हैं। तो इस वजह से मुझे ये लगता था कि एक ऑलराउंडर को कम करके आप एक बैटर को ऐड कर सकते थे। काशिफ भट्टी अब 200 विकेटों के ये करीब आ रहे हैं, लेकिन तैयब ताहिर जो है ये बुरा नहीं बनाएंगे। और साथ भी क्योंकि इस एंड से जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही थी, जाहिर है अनप्लेएबल डिलीवरीज का सामना करना पड़ा है लाहौर वाइट्स को। ये आप तैयब ताहिर का जिक्र कर रहे थे, ज्यादा खुश हैं वो साद नसीम होंगे। और यहाँ पे भी कप्तानी को मैं थोड़ा सा बात कर सकते हैं हम, क्योंकि साद नसीम हम जानते हैं थोड़ा स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, और आपने उनकी स्ट्रेंथ दे दी, उनको स्पिनर लगा दिया उनके आगे। तो यहाँ पे ये मौका हो सकता है साद नसीम के पास कि अपनी इनिंग को थोड़ा रिदम दे सकें, थोड़ा स्टार्ट अच्छा हो सके, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 रन बनाया है। और अब उनके फेवरेट स्पिनर्स आ गए हैं जिनको ये बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि फुटवर्क बहुत अच्छा है, इनसाइड आउट शॉट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। मिड विकेट का इलाका 7 के लिए खाली छोड़ दिया गया है। अगरचे जो पावर प्ले है उसका इख्तिताम हुआ, लेकिन फिर भी आप सिर्फ 4 ही फील्डर दायरे के बाहर खड़े कर सकते हैं नॉन पावर प्ले मरहले में भी। इससे स्पिनर्स के सामने बैटिंग और आसान हो जाती है, क्योंकि इजाफी फील्डर जो है आप नहीं रख सकते। अगर आप स्क्वायर लेग लेते हैं तो फिर जो डीप मिड विकेट पर आप नहीं फील्डर खड़ा कर सकते। इस तरह ऑफ साइड में भी आप स्वीपर पर एक ही फील्डर रख सकते हैं। मिड इन ओवर के साथ आगाज करेंगे अपने स्पेल का काशिफ भट्टी। 12 के बाद 30 पे 4 लाहौर वाइट्स। थोड़ा सा बॉल बाहर को निकला। वेल इस वक्त 30 इनफरादी अगर हम बात करें इस टोटल की, जिसमें 4 खिलाड़ी आउट हो चुके। तैयब ताहिर और साद की जो जोड़ी है ये इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से एक अच्छी शराकत, एक अच्छी पार्टनरशिप बने और इस मुश्किल सूरत हाल से अपनी टीम को बाहर निकाले। अभी भी अटैकिंग मोड में है, 2 स्लिप्स ले रखी हैं। वेल ओवरऑल अब तक अच्छी बॉलिंग करवाई है तमाम पेसर्स ने। अगर हम देखें सलमान बिल्कुल राइट एरियाज को हिट किया उन्होंने और कंसिस्टेंटली ऑफ स्टम्प और अराउंड ऑफ स्टम्प के चैनल पे बॉलिंग किया है। डेफिनेटली मूवमेंट देखने को मिली है और एक्सपेक्टेड भी थी। नवंबर शुरू हो चुका है और जहां हम खेल रहे हैं कूल टेम्परेचर है और यहाँ पर अर्ली अगर स्टार्ट होगा 9:30 तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर। फर्स्ट 10 ओवर्स आपको प्रॉपर बैटिंग करनी पड़ेगी और प्रॉपर ओपनर्स के साथ जाना पड़ेगा। और हमने आज देखा मेक शिफ्ट यंगस्टर्स उस पोजीशन पे आए जहां पर बेहतरीन टेक्निक का डिस्प्ले चाहिए था। सो टैक्टिकली ये कोई स्मार्ट मूव नहीं थी और इसका फिर खुमियाजा भुगतना पड़ा लाहौर वाइट्स की टीम को। और अहमद शहजाद जैसे स्टार प्लेयर के होते हुए जो कि एक रेगुलर ओपनर है, यहाँ देखिए अपने कदमों का इस्तेमाल किया साद नसीम ने लेंथ को चेंज करने के लिए
और उसमें सक्सेसफुल रहे। सिर्फ एक चीज़ के चेज किया उन्होंने उस बॉल को, वरना इस बॉल को जाने देते। लेकिन अच्छी बॉलिंग हो रही है इस वक्त और पीरियड टफ है, जाहिर है 4 विकेट्स गिर चुके हैं। मेन उसमें अहमद और उमर अकमल जो कि स्टार प्लेयर्स हैं टीम के, वो दोनों विकेट्स का जो लॉस है वो काफ़ी हैवी लॉस है लाहौर वाइट्स के लिए। और ऐसे में साद नसीम और तैयब पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बड़ी पार्टनरशिप करें। एग्जैक्टली इस वक्त काफ़ी जिम्मेदारी है इन दोनों बैटर्स पे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे झांकें फर्स्ट क्लास सीजन में, तो साद ने इनफैक्ट डबल टन बनाया था, मुझे याद है 221 रन जो कारियासम ट्रॉफी में, तो वो एक बड़ी इनिंग है उनके पास। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त का प्रेशर है उसको अगर आप उसके साथ वर्सेस करें तो किसी हद तक आप कोप कर सकते हैं कि आपके पास रन्स हैं, एबिलिटी है। एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है और ऐसी सिचुएशंस से डील कर चुके हैं पहले। अच्छी चीज़ ये है कि दोनों स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और 4 विकेट्स का जो गिरना है जाहिर है वो इनके थोड़े शॉट्स को कट डाउन करेगा कुछ वक्त के लिए। और इस टाइम भी बॉल थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा है और विकेटें जब ले लेती है एक टीम फील्डिंग में तो फिर हौसले बढ़ जाते हैं उनके और प्रोएक्टिव भी नज़र आते हैं। और अभी तक 2 स्लिप्स जो हैं ये खुशाइन चीज़ है कैप्टन इमरान भट्ट की तरफ से, पूरा चांस ले रहे हैं वो किल पे जाने का। और इसके बाद उस्मान कादिर ने भी अभी बॉलिंग करनी है और वो भी अपने पहले मैच में 6 विकेट्स लाहौर में ली जहाँ पे विकेट्स मिल नहीं रही थी किसी को। सो टफ टाइम है लाहौर वाइट्स के लिए, लेकिन अगर ये दोनों लंबी बैटिंग करें तो टीम को निकाल सकते हैं। बाहर ये बॉल था, जाने दिया इसको। डॉट बॉल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 13 ओवर के इख्तिताम पे 32 के नुकसान। वेल ये आज के फिक्सचर्स हैं और तमाम टीमें जो कि आज खेल रही हैं इन वेन्यूज़ पे, उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। जैसे अभी सलमान कह रहे थे कि इस खित्ते में जो कि रावलपिंडी या नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, एबटाबाद, वहाँ पर मौसम कदरे खुनकी है या सर्दी है, जिसकी वजह से अर्लियर ऑन जो हेल्प है वो बॉलर्स को मिलती है। लेकिन अब स्पिनर्स का ऑपरेशन है। काशिफ भट्टी पहला ओवर इनका मेडन था और वही प्रेशर लेकर चल रहे हैं जो फास्ट बॉलर्स ने डाला था बैटिंग पे। देखिए जब मॉइस्चर होता है तो ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, स्पिनर्स को भी ग्रिप मिलती है। हल्का फुल्का बॉल स्पिन हो रहा है और ऐसे में जो विकेट टेकिंग ऑप्शन बेस्ट है इस टीम की वो उस्मान कादिर है। उनका बॉल वैसे भी टर्न होता है और अभी थोड़ी बहुत ग्रिप भी है, तो ऐसे में इन्हें अगर किल के लिए जाना है तो उनके साथ बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको बैटर्स अटैक नहीं करते, जो कि इस टाइम पे वो नहीं कर रहे प्रेशर की वजह से, तो ज़्यादा चांस है विकेट्स गिरने का। जो स्पिनर्स की जोड़ी कितना कारामद होती है। तैयब ताहिर ये भी अच्छी फॉर्म में, ये उस्मान कादिर जिनकी अभी बात कर रहे थे कि इनकी जो बॉलिंग है उसमें काफ़ी काट है और हेल्पफुल हो सकते हैं इस प्रेशर को मजीद माउंट करने के लिए। इस मौके पर कैप्टन थोड़ा सा और अटैकिंग हो सकते हैं, मिड ऑन को ऊपर लिया जा सकता है और बैटर को चांस लेने के लिए एंटाइस किया जा सकता है, क्योंकि 4 विकेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। और अभी अगर आप अपने तमाम अवेलेबल फील्डर्स जो इजाज़त है इस वक्त बाहर निकालने की अगर निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप इनफ एग्रेशन शो नहीं कर रहे, जो कि इस वक्त मौका है। 33 पे 4 विकेट्स जो हैं वो गिर चुके हैं। वेल इसके साथ ओवर का इख्तिताम। 14 ओवर गए 33 के नुकसान पे। यहाँ पर ये उमर अकमल की विकेट है और तमाम सिवाय अहमद शहजाद की जो विकेट गिरी, उसके अलावा तीनों विकेट्स जो थी वो उनमें एक जो यकजा चीज़ थी कि तीनों बॉडी से बहुत दूर बॉल खेले
और सिर्फ बैट जो है वो बॉल की तरफ गया, जबकि जो फीट हैं वो जिस पोजीशन में होने चाहिए थे वो नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम। और एक के बाद दीगरे प्लेयर्स ने वही गलती आके दोहराई, जबकि आप एक को अगर देख लें ऐसा करता तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। लाहौर की जो डाउनफॉल है उसमें अच्छी बॉलिंग से थोड़े से मार्क्स ज़्यादा, बैटर्स की जो गलती है वो ज़्यादा बढ़ी रही है। बहुत दूर, और अभी भी उस गलती को, उस एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे। एक बार फिर हमने देखा कि सिर्फ बैट बॉल की तरफ गया और बॉडी जो थी वो पीछे गई। ये देखिए, बिल्कुल बैकफुट को मूव नहीं किया बॉल की तरफ, क्योंकि कट अगर मारना है तो आपको बॉडी वेट को ट्रांसफर करना है, बैकफुट को बॉल की तरफ जाना है। लेकिन यहां पर ऐसे लगा जैसे अपनी जगह पर फंसे रहे। इस दफा थोड़ा सा बाहर ये बॉल था और एडवांटेज से फायदा उठाया। डीप बैकफुट पॉइंट पे 4 रन हासिल किए। किसी हद तक प्रेशर माइट बी रिलीज हो इस शॉट से। इस बार एक बार फिर से शॉर्ट एंड वाइड, और इस दफा पीछे नहीं गए, एटलीस्ट हेड पोजीशन जो थी वो बॉल की तरफ थी और उसको कनेक्ट किया, और बॉल भी बहुत ज्यादा दूर नहीं था ये वाला। बॉलर्स को यहाँ पर जब मूवमेंट मिल रही है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के करीब बॉलिंग करने की, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट एंड वाइड जब भी करेंगे तो ये पिच में रन्स हैं और ये आगे बेहतर से बेहतर होती जाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजारेंगे बैटर्स, बैटिंग इस पे आसान होती जाएगी। फुलर, और ये बेहतर है कि अगर आपको पिछले बॉल पे जो कि थोड़ा सा टच शॉट था या बैकअप लेंथ था, उसके बाद बॉल को आगे रखा। तैयब ताहिर, इनफैक्ट जहां तक मुझे याद पड़ता है अभी इमर्जिंग कप में भी इनकी शमूलियत थी, इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। यूजुअली होता यह है कि जब आप पिछले बॉल पे रन्स देते हैं तो आप अगले बॉल पे ओवर कॉम्पनसेट करते हैं, आगे बॉल करते हैं, और अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस बैटर खेल रहा हो तो वो पहले से अगले बॉल के लिए तैयार होता है। जब कोई स्पिनर को अपने कदमों का इस्तेमाल करके हिट मारता है तो वो अगली थोड़ी शॉट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन अगेन वो थिंकिंग अहेड ऑफ द ऑपोजिशन, अगर आप के जहन ऐसे चल रहा है तो आप इन बॉल्स पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो 7 को आगे बॉल किया उन्होंने, ये गिवन था कि उस चौके के बाद अब वो आगे ही गेंद करेंगे। लेकिन मॉडर्न डेज में जहां पर बैटर जो है वो तुला हुआ होता है बॉलर को शॉट्स मारने के लिए, चौके छक्कों के लिए, तो एक वेरिएशंस जो है स्लोअर वन, नॉर्मली हम नहीं देखते कि 14वें 15वें ओवर में स्लोअर वन आए, बिल्कुल डेथ ओवर्स में जाती है। स्लोअर वन की आज तो जरूरत ही नहीं ना पड़ी, इतनी मूवमेंट है ऑफ द पिच इन द एयर और उसी में बैटर्स विकेटें गंवा रहे हैं। तो स्लोअर वन तो आप तब करते हैं जब बड़े फ्रीली रन्स बन रहे हो, पिच जो है वो बड़ा ट्रू हो, थ्रू द लाइन आप स्ट्रोक्स मार रहे हो, तो आप वेरिएशन से फिर बैटर को ट्रबल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो बैटर्स अभी मारने की कोशिश ही नहीं कर रहे, उल्टा स्लोअर वन पे वो चांस लेंगे, क्योंकि स्लोअर वन जो है वो नजर आएगा, बिकॉज हरी में नहीं है बिल्कुल भी। और पिछले लगभग जब स्पिनर्स ऑपरेट करना शुरू किए, इवन काशिफ का ओवर और अभी हुनैन का, तो अब कहीं ना कहीं ये दोनों बैटर्स जो हैं वो जाकर बात जरूर कर रहे हैं हर 2-3 बॉलों के बाद, जो कि बेहतर है एक दूसरे को समझाना बुझाना। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस मौके पे जबकि 4 विकेट्स गिर चुके तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे को बकअप करें और अपनी स्ट्रैटेजी को साथ साथ चेंज करते रहें अंदर, और वो चीज़ करें जिसकी ज़रूरत है। एक बाउंड्रीज के साथ स्ट्राइक रोटेशन अगर चलती रहेगी तो यहाँ पर फिर भी बड़े रन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं पाकिस्तान कप खेल रहा था और हम लोग 350 रन चेस कर रहे थे और 5 विकेट्स हमारे जल्दी गिर गए। उसके बाद खुशदिल शाह और अदनान अकमल की पार्टनरशिप हुई और कोई 350 रन वो दोनों ने कर दिए एक पार्टनरशिप में। सो ये जो पिंडी स्टेडियम की पिच है, हिस्टोरिकली इट्स अ हाई स्कोरिंग वेन्यू, और आपको सिर्फ 1 या 2 अच्छी पार्टनरशिप्स चाहिए, क्योंकि जब यहाँ ऊपर से भी लोग सेट हो जाते हैं तो नीचे वालों की बारी नहीं आती। तो आज हो सकता है कि इन दोनों का दिन हो।
फुलर डिलीवरी, इसको खेल दिया थर्ड मैन की जानिब, सिंगल बनेगा स्लोली बट श्योरली। 40 पे पहुंची और 4 खिलाड़ी अब तक आउट हुए। अंपायर्स सख्त ड्रिंक्स ब्रेक की कॉल है। 15 ओवर के बाद 40 रन है अब तक और 4 खिलाड़ी आउट हुए। वेल प्लेयर्स इस वक्त रिफ्रेश हो चुके हैं ड्रिंक्स से और अब तक की जो फॉलो विकेट्स है, ये पहला था जो कि एज हुआ, विकेट कीपर ने आसान हाइट पे कैच पकड़ा, उसके बाद एक और उमैद की कामयाबी जो कि बिल्कुल प्लम विकेटों के सामने लगा, ड्राइव करेंगे जिस्म से दूर और अपनी विकेट गंवा बैठे और ये बहुत ही आसान कैच, एक बार फिर अपने जिस्म से दूर खेला और अपनी विकेट गंवा बैठे। कोई भी पार्टनरशिप अब तक बड़ी नहीं लग पाई। लाहौर वाइट्स का बैटिंग कार्ड और टॉप 4 बैटर्स जो हैं वो डबल फिगर्स में नहीं जा सके और इसका क्रेडिट लाहौर ब्लूज की बॉलिंग को, अच्छे चैनल्स पे पिच का जो अर्ली मॉइस्चर था उसका बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया और लाहौर वाइट्स ने भी पूरा साथ दिया, हर मौके के ऊपर अपनी बॉडी से काफ़ी अवे खेला और ऐसे शॉट्स पे अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो आपका कंट्रोल नहीं होता। ये पिच लेटर ऑन थ्रू द लाइन वाला ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अभी ये हिट थ्रू द लाइन वाला पिच नहीं था, तो थोड़ी जल्दी हमने देखी बैटर्स की तरफ से और उसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। पिंडी की जो पिच है ये 22 यार्ड, ये नॉर्मली जो पहली इनिंग है इसमें 300 प्लस, जैसे आपने कुछ देर पहले बात की, वो रन्स दे सकती है बैटिंग को। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। इवन आपने खुद भी बात की कि 5 विकेट गिरने के बाद भी 300 रन जो है वो बना या चेस हुआ, तो अभी भी इन दोनों के पास एक अच्छा मौका है। 350 प्लस चेस हुआ था और इधर काफी बार चेस हुआ है ये, और इस बार 4 रन्स बनेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट था बॉल और साद नसीम ने बड़ा क्विकली उसको प्लेस किया मिड विकेट के ऊपर से और अर्ली साइंस हैं कि ये पिच कितना अच्छा बैटिंग पिच होगा कि थोड़ा सा भी अगर शॉर्ट बॉल गिरा है तो बैटर ने बड़े इजीली उसको प्लेस किया और अभी यहाँ पर टर्न कम होता जाएगा, सिवाय लेग स्पिनर के शायद मुश्किल होगा किसी और बॉलर के लिए यहाँ पे बॉल को टर्न करना। इस तरह की मजीद बाउंड्रीज चाहिए होंगी प्रेशर से निकलने के लिए।
और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट जरूर है। स्ट्रोक खेलने जाते हैं लेकिन अपने शॉट को बिल्कुल आखिरी लम्हात में चेक करते हैं, जो कि बेहतर है इस वक्त। जैसे पहले गलतियां की वो इस पार्टनरशिप में ना हो। देखिए इस टाइम डैमेज रिपेयर हो रहा है और इसमें केयरफुल तो रहना पड़ेगा। उन्हें पता है कि इसके बाद बैटिंग उस तरह की नहीं है जिस पे वो डिपेंड कर सकें, और ओवर बहुत सारे हैं और ये दोनों मोस्ट सीनियर प्लेयर्स में से हैं। कैप्टन भी हैं साद नसीम, तो ऐसे में दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 16 ओवर्स का अख्ताम, 45 पे 4 लाहौर वाइट्स। सर काफी सोचो विचार में है। मौसम बेहतर है लेकिन जो क्रिकेट है, आबिद अली हमें डगआउट में नजर आ रहे हैं और इखलाक। और अगर इखलाक और आबिद इस टीम में खेल रहे हो, दोनों ओपनर हैं और दोनों हाई क्लास बैटर्स हैं, और जो दोनों ओपनर्स हमने आज देखे, तो ये कितनी बड़ी बैटिंग लाइन बनती है और कितनी एक्सपीरियंस्ड साइड ये बनती है। उमैर और फाइक जिस जगह पर खेल रहे हैं, यहाँ पर इखलाक और अगर आबिद अली हों तो एक हाई क्लास टीम बनती है। ऑब्वियसली नॉट टू से अभी इनका स्टार्ट है, दोनों यंगस्टर्स हैं, अर्ली डेज हैं, बट अगर आपके पास इतने सीजन्ड प्लेयर्स हैं, यहाँ पर कट खेला एक बार फिर शॉर्ट एंड वाइड, और हुनैन शाह शॉर्ट एंड वाइड बॉल्स का सिलसिला जारी रखे हुए और बैटर्स उसका फायदा उठा रहे हैं। इस दफा तैयब ताहिर ने शॉट खेला और कट किया इसे गैप से 4 रन्स के लिए। 49 रन्स पे स्कोर पहुंचा लाहौर वाइट्स का। और अब एक फील्डर स्लिप से बाहर आएगा और पॉइंट फील्डर जो हैं वो बाउंड्री पे जाएंगे। ये देखिए हुनैन शाह इस पिच को जिस लेंथ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और शॉर्ट लेंथ जो है वो बैटर्स के लिए खासी आसानी है उस पर। काफी हद तक पिच जो है वो बेहतर होती चली जा रही है और बेहतर है कि आप विकेट टू विकेट रखें, क्योंकि हुनैन ने जो भी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर किए, मेरे ख्याल से 1-2 बाउंड्रीज उन्हें लगी ज़रूर। इससे पहले साद ने भी एक बैकफुट पॉइंट पे उन्हें चौका लगाया और अभी भी जो विथ दिया उन्होंने उस पर भी चौका लगा। तो अभी जो बॉल था जो कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप के करीब था, वो लाइन बेहतर है। कि वनडे क्रिकेट के अंदर स्पेशली जैसे जैसे बॉल थोड़ा पुराना होता है और स्विंग कम होती जाती है, तो बड़ा ज़रूरी है कि बॉलर्स जो हैं वो स्टंप्स के अंदर बॉलिंग करें और लेंथ उनकी बड़ी प्रिसाइज हो। बेहतर गेंद एक बार फिर और एक और डॉट बॉल, और ये वो जगह है जहां पर इन्हें कंसिस्टेंटली बॉलिंग करनी चाहिए और बैटर्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते। यहाँ से अगर स्ट्रोक बनाना है तो बैटर को क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें रिस्क का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट एंड वाइड करेंगे तो रिस्क फ्री रन्स हैं और बैटर्स पे प्रेशर नहीं आता। आमिर जमाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, एक उभरते हुए ऑलराउंडर और पाकिस्तान के लिए T20 का डेब्यू कर चुके, और उस डेब्यू गेम में लास्ट ओवर किया था और बहुत एक प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान को इन्होंने मैच जितवाया था, और सर्टेनली ऑलराउंडर्स में ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। अच्छे नर्व के जो प्लेयर्स हैं उनकी ज़रूरत है इस वक्त टॉप ऑर्डर पे, क्योंकि ओवर द ईयर्स अभी भी अगर हम इन दोनों बैटर्स की इनफैक्ट अगर बात करें तो इनके नर्व्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त है जो पार्टनरशिप है और करंट रन रेट, ये दोनों चीज़ें भी मद्देनजर रखनी होंगी, क्योंकि ओवर अभी काफ़ी हैं, फिर भी रन रेट अगर ना भी बेहतर हो इतना ज़्यादा। इजाज़ ये दोनों प्लेयर्स जो हैं इनकी कैपेबिलिटी है अपने ये बॉल्स को कवर कर सकते हैं बाद में। तैयब ताहिर की हमें इनिंग्स याद है इमर्जिंग में इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में 5 विकेट्स गिर चुके थे और उसके बाद आके उन्होंने एक बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट पे सेंचुरी बनाई थी। और यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा पिच रिस्पांस दे रहा है, बॉल को मदद मिल रही है बॉलर्स के लिए, तो सेंसिबल खेल रहे हैं इस वक्त। अपनी विकेट थ्रो नहीं करेंगे तो ये बॉल्स कवर कर सकते हैं दोनों। ऑन साइड पे टक किया और एक दूसरे रन के लिए भी पलटे, और इस 2 रन के इजाफे के साथ 50 रन भी टीम के मुकम्मल हुए। इनफैक्ट
51 पे पहुंचा है टू बी प्रिसाइज। और पहले मैच में जो कि एक इम्पैक्ट नजर आ रहा था ओवरऑल पहले 10 ओवर्स में कि बॉलर जो हैं वो काफी धावा बोल रहे हैं बैटर्स पे, और अब रिपेयर वर्क है। और देखना ही है कि इस क्रीज पर ये दोनों कितनी देर तक अपने जो जोड़ी है वो रहेगी और मजीद कितने रन बना पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा बॉल चाहिए यहाँ पर ताकि ये पार्टनरशिप ब्रेक हो। जो ऑलरेडी प्रेशर था उसको दोबारा ला सकें। स्लिप ली है, अच्छा बॉल। इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 17 ओवर गए, 51 पे 4। इस वक्त काशिफ भट्टी कंटिन्यू कर रहे हैं और फाइन लेग का फील्डर जो है उसको थोड़ा सा तब्दीली ला रहे हैं। थर्ड मैन थोड़ा सा वाइड है, स्लिप ले रखी है। थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन बॉल रखा, बाउंस बेहतर है काशिफ के पास। और चौथे ओवर में अच्छा कंटेन करके रखा है काशिफ भट्टी ने। गोके ने विकेट नहीं मिला लेकिन सिर्फ 6 रन दिए और उनके चौथे ओवर की जो शुरुआत हो चुकी है। और यही इस वक्त चाहिए भी स्पिनर से कि जो प्रेशर फास्ट बॉलर्स ने डाला था उसको कैरी करें। बेसिकली दो चीज़ें हैं, विकेट भी लेना चाह रहे हैं और जल्दी जल्दी ओवर्स भी गुजारना चाह रहे हैं इस टाइम पे जबकि प्रेशर है अभी बैटर्स के ऊपर। और जैसे जैसे रन्स बनेंगे, पार्टनरशिप लंबी होगी, पिच जो है वो आसान होती जाएगी, तो फिर आप डिफरेंट टैक्टिक्स को देखेंगे फील्डिंग साइड की तरफ से। लेकिन अभी जिस पोजीशन पे हैं मेरे ख्याल में इन्हें थोड़ा अटैक और करना चाहिए। ये क्रॉस खेलने पे बैटर को मजबूर कर सकते हैं। अगर ये स्वीप को ऊपर रखे, अगर मिड ऑन को ऊपर रखे तो अगेंस्ट द स्पिन ऊपर से मारने पे मजबूर कर सकते हैं और ऐसे में इन्हें और विकेटें मिलने का चांस है। लेकिन अभी एक ईजी पैसेज लग रहा है बैटर्स के लिए क्योंकि इनफ कैचिंग पोजीशंस या एंटाइस नहीं कर रहे हैं इनफ। ये सिंगल नहीं होना चाहिए। खैर ये तो नहीं होने दिया हुसैन तलत ने, लेकिन मिड ऑन अगर ऊपर हो तो बैटर्स के लिए मजीद मुश्किल होगी, उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा। और ये वो चीज़ है जहां पर हमें अपने कैप्टन्स उतने प्रोएक्टिव नजर नहीं आते जितने उन्हें होना चाहिए। करंट रन रेट भी इस वक्त काफी बिलो पार है कंसिडरिंग वनडे गेम 45 ओवर्स। तो वो भी चेक में रखा है, रन रेट भी, विकेट्स भी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है इस वक्त वो बॉलिंग की तरफ टिल्ट है। इस बार 2 रन्स की कॉल है और अच्छा प्लेस किया इसको तैयब ताहिर ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करके और आसानी से 2 रन हासिल किए। 18 ओवर्स का खेल ख़त्म हुआ और 54 पे 4 लाहौर वाइट्स। Change in the bowling. We see Hussain Talat for the first time. He will like bowling in these conditions. There's something for him still. That average needs to just improve a little bit. 31 wickets at this level. Best of 4 for 54. He can bowl. And definitely these conditions will suit him. It's all Lahore Blues since morning. 18 overs, 54. And they have lost 4 wickets, Lahore Whites. Imran Butt will be a very happy captain
winning the toss, bowling first, getting 4 early wickets. But now the concern is this partnership, Tayyip Tahir and Saad, both motoring along very well. First delivery from Hussain Talat. It's wide, but Noman Chaudhary alongside me in the commentary box. Noman, although this is a wide, but still some swing for Hussain Talat early on. Well, absolutely. Hussain Talat is a kind of a bowler who's not very express, but he can land the ball in the right areas. Have a look at this one. Once again, it pitched on about 5th or 6th stump channel, and it went further away from the right-handed batter. Edged, but away. It will fly away towards third for 1. This is where this bowling of Lahore Blues needs to be disciplined, because they've done the hard work. They've got that start that was required, Noman. It's about capitalizing it. It's about keeping the pressure on. Well, absolutely. And to talk about the perspective of the Lahore Whites, they need to build on from this point on, where 34 of 61 is the partnership. But we know the caliber that Tayyip Tahir and Saad Naseem possesses. Especially Tayyip Tahir is someone who can accelerate, who can up the ante, who can shift gears. And so far, it has been a slow progress for Tayyip Tahir as well. But it's just on when and how is he going to attack, how is he going to change the gears? He can. That's Hasib, is not playing. A good all-round cricketer. Qasim Akram, sort of cricketer, off-spinner batter. This length. It's all about keeping it right there, tight line and length. And this is what Hussain Talat will do. He'll keep bowling at those lengths. But this is a defensive line at length, you can say. When you've got to top 4 wickets early, you need to be consistent. Well, absolutely. You're spot on. And we were mentioning about Tayyip Tahir. Has got the bulk of runs for his side, for whatever side he's played. He's featured for Central Punjab and Southern Punjab as well back in the days. He's got 3 centuries, over 1,500 runs in over 30 odd games. So that shows the caliber. And the best part about Tayyip Tahir has been his strike rate. He's been striking among 90s. So the caliber he possesses, surely his side would want him to stick around for quite some time, score the bulk of runs. Yeah, right up there with the best in the business. Umar Amin, Khurram Manzoor, Adil Amin, Hasibullah, all very talented players. Shajil Khan also in the list. Qasim Akram also there, so definitely in the company of elites at this level. Because he's flexible. You know, the best thing about him, you can make him bat at any number. He's a good opening batter. He can bat in middle order also. He's somebody who looks very busy all the time. Somebody who looks for runs all the time. And that is what you want to see, especially in this format. Somebody playing in middle, searching for runs. Good player of the spin, equally good in the fast bowling. So yes, I think Pakistan has missed the trick going into the World Cup, not grooming him. I think he showed a lot of potential in the last Pakistan Cup. He was the best batter there. And since then, he's just been pushed a little back. Noman, we've been talking about, he's been around in the Pakistan side, but somehow or the other, he has not been given enough chances to play in playing 11. We'll continue talking about him more, because more needs to be talked about him. 19 overs gone, 57 for 4. Abid Ali also in the camp. I like his attitude. Although he's not playing, it's not easy for a senior member when he's not included in the side. It's very easy for a senior member to go sit inside and keep yourself in the shell. But the good part about Abid Ali, he's a team man. He's always involved. He's always encouraging the young batters. We've seen him do that a lot of times. So, Noman, these are the sort of characters you need in your team. As we see another change in the bowling.
Usman Qadir for the first time. Well, absolutely, Usman Qadir has been brought in the attack. 58 wickets in 41 games. Look at the economy, 5.67. Best of 6 for 79. He is much more talented than his numbers. He's got a slip in place for Usman Qadir. Outside the off stump. See, this is going to be the most important passage of the play. How these two, Tayyab and Saad, negotiate Usman Qadir from here on. They're trying to fetch that one from outside off and sweep that. Outside the line of off stump. That's the reason why he survived. Well, coming back to the point of Tayyab Tahir, he is the kind of a player who can adapt in different situations. We have seen him scoring a magnificent 100 in the final of Emerging Asia Cup. He walked out to bat when team was struggling. Struggling at 187 for 5, and at that point onwards, he scored a brilliant 100 of 69 balls. And the best part about that 100 was his counter-attacking approach. So you need to have such players in your ranks who can play the second fiddle, who can play the defensive role when needed, who can attack when needed. So that shows the caliber he possesses, the style he has. Yeah, definitely. I'll totally agree with you. He's flexible. He can play in different conditions. And that is why I said earlier that Pakistan national side has missed just a little hint of trick, not grooming in just before the World Cup, because he had that potential. Remember, he was the best player last year and the year before. 2 years in a row, he's been the best batter of Pakistan Cup in this format in 50 over game. So you need somebody who can build in and who can finish also. But definitely he's got a lot of cricket left in him. He's still young. He's still very much hungry for success. So time will come. Good start by Usman Qadir. Just 2 runs coming off his first over. 59 for 4. Hassan Rizwan, Amir Jamal, 2 batters to come. But definitely this partnership has to go long. At least till 35, 38 overs, they need to bat till that time. If they want to have that total that can challenge Lahore Blues, because we know that Lahore Blues is a very good side. Although bowling is their strength, but they've got some quality batters in their side too. So they must be eyeing somewhere 230 to 50 in their allotted 45 overs from here on. Although in this ground 245 is never enough in a one-day game, but still considering they were 4 down pretty quickly, from there they will be a happy team if they can get to 230, 240 from here on. Oh, was there an edge? Seemed like there was a noise. Naman, what do you think? Yeah, that was a good delivery first up. Went away from the right-handed batter, but not a good shot by Saad Naseem, chasing way outside the line of off stump, hanging his bat. We have seen a number of dismissals today where the batter tried to force a shot that was not on the offer. Surviving on this occasion is Saad Naseem, and a lot is dependent on Saad as well. The very experienced cricketer. Over 100 first-class game, over 100 list A games. He's played for Pakistan's national team as well. Good single. That's good running between the wickets. That is one of the ways you can negate the pressure, get some quick singles. If the boundaries are not coming, you got to make sure that you rotate the strike. Yeah, not just the way, Noman, it's the most important way. You got to do it. If you're under pressure, this is the best way to release that pressure. Put the pressure back on the fielders and the bowlers by running. If you're not hitting the boundaries, put the pressure through singles. Good cricket. You'll expect that from these two. Nice use of the wrist. Just one more run added to the total. So far, it has been a steady partnership. Tayyab Tahir and Saad Naseem.
quite unusual at the Rawalpindi Cricket Stadium. You've seen the team struggling. 61 for 4 in the 21st over. You gotta give the credit to the bowling lineup of Lahore Blues. They made a right call at the toss. Imran Butt opting to bowl first. The bowlers responding to the call of the skipper. Oh, that's a good fielding. Very good fielding at point. That's Rizwan Hussain. Someone who's very much improved in his fitness. Wonderful work. That was a fuller delivery. Stepping out of the crease on this occasion was Saad Naseem, but have a look at this for the stop. The backward point fielder coming into play and stopping a certain few runs for his side. You were just giving the credit to the bowlers. I think the credit has to be given to the captain for winning the toss. And we're going to see that happen here at Rawalpindi, Numan, that teams who will win the toss will bowl first. A, because there is something for the bowlers early on. B, because this is a 9:30 start. So that half an hour extra that bowlers are getting early morning, it will definitely help bowlers extract that moisture that that pitch has. Otherwise, it's a belter. It's a run feast. But that half hour, 1 hour, 45 minutes early on, it's going to be a bowler's delight. And we've seen that happen. 4 wickets going down inside first hour. It's in the air but away. They will definitely look to get 2. Yes, easily done in the end. Yeah, that was a good shot delivery by Hussain Talat. 2 runs there to end the over. So 21 done, 63 for the loss of 4 wickets. Right, we were talking about early morning start. But what about this for an early morning? A perfect desi nashta here at Rawalpindi. Halwa puri, chane with bakar khani. Just love these things. Makes me hungry any time. That halwa looks really good. Naman Javed, your city. The speciality of this, all these desi breakfast, you just cannot live away from it. And that tea also, kadak chai they call it here in Rawalpindi. Wonderful. Feeling hungry, Naman. Big 1 bounce and over the ropes. Umpire still checking, but this is a good counter attack by Tayyib Tahir. Pitched up and dealt with some power. Yeah, it was a long time coming, this boundary from Tayyib Tahir. And ever since he saw the bowler pitching it up, his eyes lit up on this occasion. Tayyib Tahir dances down the track, went to the pitch of the ball. Good game awareness. He understands that the fielder was inside the circle on mid-on, over the head of the fielder, and gets a welcome boundary. Very surprisingly, Naman, when Kashif Bhatti was bowling, a finger spinner has got more control. The fielder at long on, the fielder at the moment is at mid-on, but was at long on. But now for Usman Qadir is brought inside the circle, enticing batters, but shorter one, over the head again. And this has gone all the way. First 6 of the match, first 6 of the tournament, going to Tayyib Tahir. Yeah, that was a poor delivery from Usman Qadir. First up, it was pitched up. Now it was a back of a length delivery. Went on the back foot, Tayyib Tahir. That has been his strength. Went on the back foot. He knew the fielder was inside the circle. All he had to do was to place it well, time it well. And the result went in the favor of Tayyib Tahir. Boundary followed by a 6, turning out to be a good over for Tayyib Tahir. Quicker one. Hurried on to Tayyib Tahir this one. I was not sure about this plan from the captain Imran Butt, having that fielder inside the circle when you know that Usman Qadir does bowl this delivery, that half length deliveries, shorter in length deliveries. The point where you need to be safeguarding your leg spinner. Gave away easy boundary. Well, equally poorly bowled by Usman. The partnership is 52 runs of 82 deliveries, and this has definitely made Lahore Whites make a comeback in this game. It's not done yet.
They need to bat longer. This is a good partnership, I tell you, in these conditions. 22 gone, 74 for 4. The partnership is building, and soon we'll be talking about how Lahore Blues can break this partnership, because it's getting a little threatening at the moment. Oh, that one, good swing, very good swing, very lucky to survive that. He could have easily dragged on into the stumps, Tayyib Tahir. It definitely cut in to Tayyib Tahir. Well, it seems like losing a little focus on this occasion was Tayyib Tahir. Came back in, trying to play it away from the body. Lucky to survive on this occasion was Tayyib Tahir. 33 of 61. Slowly building on the opportunity. Building on the start he's got. A gully in place. This is a good leave. It's a change in Tayyib Tahir. He's valuing his wicket more now, because he realizes that this is an important inning, not just for the team, but for himself also. It's important to get off to a good start in the first game of the tournament. Absolutely, and with Tayyib Tahir at the crease, it was always the matter of when. When is he going to change gears? Not about how, it was the matter of when. He will attack, he will shift the gears, he'll try to take on the opposition. I've seen him doing that in the last over. Bisfield will give one extra run. This is where he's so good. Quickly onto the back foot. The sooner you realize the length, the better it gets, the easier it gets. You're spot on, especially in terms of picking up the lengths. We have seen in modern day cricket the players who are good in terms of picking up the lengths, adjusting their shots. They are the modern day greats. Have a look at this one, punched off the back foot. And that was a valiant effort by the fielder. Rizwan Hussain, the fitter looking Rizwan Hussain, was surprised to see him at the first glance, because the type of stuff you get to remember about Rizwan Hussain is the bulky, hard-hitting batter. But now he has lost weight, looks better in shape, and that's what the level demands. Again, length delivery outside the off stump. You wanted to fetch it. This is what you know about Saad Naseem. He'll poke you. He'll just keep on nudging you around and keep those singles, and without you realizing it, he'll get to that score that he desires. He'll get to that 50 very quickly without even being noticed. He's that sort of a player. Down the track, flat batted it. Lucky that he did not time it. It would have gone straight to the fielder. Here trying to clear the mid-off fielder on this occasion was Saad Naseem. He's been striking at less than 50. I understand that this is not the situation where you can strike and strike well. Look at that shimmy down the track. And that was more like a tennis ball bouncer. Last delivery of a good over from Hussain Talat. Just one run coming off Hussain Talat's third over. 23 gone, 75 for 4. See, that's where the trouble is, Noman. Those dot deliveries, the first thing you see is 98 dot deliveries, just 23 singles, 5 twos also. That makes 16 overs. Those dot deliveries, 98.
I think that's going to haunt them. Because once setting a target, you're never sure how much target is enough here at Rawalpindi. Because ball flies here, the batting gets easier second time. We are absolutely spot on with the number of dot balls, but you talk about the batters of Lahore Whites. Good quicker delivery. One argument that can get in their favor is that they've lost number of wickets. But once again, if you have lost wickets, the way you can come back in the game is by scoring quick singles, quick runs, rotating the strike. Dot balls are never defendable. That's a good shot. Tayyab Tahir leans onto that one and gets a much needed boundary. He moves to 38 with the boundary. Yeah, some extra bounce for Usman Qadir. And this is what you expect, because he's tall, high arm action. He's bound to get that extra bounce, and on top of it very quickly. This is the beauty of Tayyab Tahir, the way he negotiates with that extra bound also. He adjusts well. Look, not much of the footwork, but it was all hands by Tayyab Tahir. He's such a delight. It surprises me every time I see him bat, Tayyab Tahir, why he has not been groomed to play for Pakistan side, because he's been performing year and year again and again. It's never easy for a cricketer himself, Noman, when you keep on performing and you're not being given that opportunity to play at higher level. So yes, Pakistan has definitely missed out on it. That's cheeky. Just one-handed sweep shot will earn him a couple of runs. Better running. Yes, coming back for the third. This is good call by Saad Naseem. Yeah, that was a poor delivery once again by Usman Qadir, leaking 3 runs. Staying down on the leg side, on the leg stump, was Usman Qadir. .24 done, 82 for 4. Seven runs coming off Usman Qadir's over. It's been expensive, considering the other bowlers, the way they have bowled. 3 overs for 20 runs without a wicket. Usman Qadir. Now we're seeing the field being scattered around. The field is going to the boundary line. There's a deep square leg in place, deep cover also in place. Third and fine leg also. Because now these two batters, Numan, are looking quite easy, at ease. Now they're looking to score runs, looking to score boundaries. Now we are at that passage of the play where batting has become slightly easier at the Rawalpindi Stadium. So from now on, it's just a matter of how you rotate the strike, you get a boundary every odd over, and how you shift that momentum in your favor and how you transfer the pressure on the bowling side. Beautiful. Width given and accepted by Tayyab Tahir outside the off stump. He's not going to miss out on those. He's too good a player to be missing out anything outside the off stump. Superb. Yeah, width was on offer, and all Tayyab Tahir had to do was to guide the ball in the vacant region. Perfect hand-eye coordination. His hands went through the ball, and perfect placement to get another boundary for Tayyab Tahir. He looks on song today, that's for sure. The man of crisis. Oh, it was there. It was there. Wide call though. We'll call it a good leave. He's not happy. And somehow, I do agree with him just a little. Because he followed it. Have a look at this. Tayyab Tahir went after him, followed it. Marginal. Marginal. Yes, absolutely. Marginal being the right word for this.
Tayyip Tahir has got away with that. We got a gully in place. We got third man. Got sweeper cover. Ball him! Wonderful delivery. Came in sharply after pitching. What a huge wicket that is of Tayyip Tahir, and what a time to get it for Hussain Talat. Just when he was looking to score some runs, looking to be threatening, he's just been bowled with a beauty. Against the run of play, Hussain Talat has struck gold. What a delivery. Came back in. That was an end dipper. He was not expecting that, and he looks absolutely dejected, and rightly so. What a wicket in the context of the game by Hussain Talat. He has dismissed the inform. Tayyip Tahir was looking good. 42 of 72 for Tayyip, and the struggle continues for Lahore Whites just when they were building the innings. 87 for 5. What a delivery. Hussain Talat will remember this, at least for the whole of this season, that he bowled a peach of a delivery that came in sharply. He bowled a similar delivery in the last over, but Tayyip Tahir did survive that. But now it's time for Hassan Rizwan, another very talented all-round cricketer. He's a batting all-rounder, a batter who can bowl. He's an off-spinner by nature. Plays for Model Town Cricket Club. A very handy cricketer to have in your limited cricket. He's a white ball specialist, and he's got a job to do, Numan, because Hussain Talat has bowled a ripper to get rid of Tayyip Tahir. And one may think that you needed a delivery like that to get rid of somebody like Tayyip Tahir, was looking so good. And just would realize, just at a wrong time for Lahore Whites. Beautiful. What a spell. What conditions. But what about that delivery? Tayyip Tahir was clueless. Had no idea how the ball came in. Seamed in. Look at that. It was ready to leave it even. But that was a sharp end dipper. Best of the best might have beaten that. Just a touch inside edge also. We'll consider him unlucky because the ball did came in sharply. He survived similar delivery in the last over, but could not quite survive this one. 42 runs he scored. Well, that's probably not the ideal situation for the debutant to come in. 87 for 5. The ball's moving around, and you come into bat at number 7. Your team struggling, your first game, and that can just go as a blessing in disguise in your favor as well. If you step up on a big occasion, score a good 50, 70 odd runs for your side, so things or your career can just turn around with just good start to it. Absolutely, spot on. That's how I think. That there is a difficult condition, you come in, yes, team is struggling, you perform. Easy. Not so easy at the moment for the batters. 25 gone, 87 for 5. आमिर जमाल जो हैं वो अभी मुंतज़िर हैं, हालांकि नंबर 7 पोजीशन पर इनको भी भेजा जा सकता था। अभी जिस तरह के हालात हैं यहाँ तजुर्बा की ज़रूरत है टीम को, लेकिन अपना पहला मैच खेल रहे हैं। और हसन के बारे में यही ख्याल है कि स्पिन बॉलिंग के साथ
ये बेहतर बैटिंग भी कर सकते हैं। स्पिनर के खिलाफ तो यहाँ पर रन्स बनाने की गुंजाइश होनी चाहिए नए बैट्समैन के पास भी, क्योंकि यही एक एंड रह जाता है जहां पर आपको कुछ रन्स मिल सकते हैं, क्योंकि इस पिच पर जितनी मदद मिली है फास्ट बॉलर्स को, और अगर आप फास्ट बॉलर नहीं भी हैं, आप मिलिट्री मीडियम हैं हुसैन तलत की तरह, और अच्छी जगह पर गेंद गिरा देते हैं तो विकेट से खुद ही वो रद्द-ए-अमल जो है वो हो जाता है। पिच जितनी मदद कर रही है यहाँ पर पेस की, उसी के सबब लाहौर की टीम इस वक्त दीवार से जा लगी है। और उस्मान के पास भी अब सुनहरी मौका है, एक बार फिर ये ग्रुप में वापस आए, अपना रिदम जो है खोया हुआ वो बहाल करें। उस्मान कादिर जो और अब तक जो तैयब ताहिर है वही हाईएस्ट रन गेटर है 42। शानदार और स्टंप आउट करार दे दिया गया। उस्मान कादिर जो है उनने अपना रिदम बहाल किया है, डेब्यूटेंट को बुरी तरह उनने मात दी, कोई जवाब नहीं था। साद नसीम थे सेट बैट्समैन को उनने चलता किया। जो और बड़ी प्राइस विकेट, क्योंकि दोनों जो बैटर्स थे इनफैक्ट जो कि पार्टनरशिप बना रहे थे या मुश्किलात से अपनी टीम को निकाल रहे थे, वो जा चुके हैं। फॉरवर्ड लेकर आए, बॉल को हल्का सा ब्रेक किया और बाकी का काम विकेट कीपर के हाथों। जहां रीड नहीं कर सके, जहां पांव वाज़ेह तौर पर इनका बाहर था, इसलिए अंपायर का असर कुछ ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। तो दोनों जो सेट बैट्समैन हैं वो यके बाद दिगरे गए, पहले तैयब, उसके बाद साद नसीम, 89 पर 6। जहां आमिर जमाल की याद दहानी थी, आ गए इस वक्त वो मैदान में। अभी इब्तिदाई अय्याम है इनके, और ये जवाबी वार करेंगे या फिर ये कैच का दावा किया है। कासिम अकरम जो है शायद आने वाले कैच की रिहर्सल कर रहे थे। जी हाँ, ये बॉल थोड़ा साफिश था लेकिन ड्राइव किया था। लम्हात इस वक्त बम था, गो के हवा में जरूर थी, लेकिन बम कैच। और यही कुछ हो रहा है, सेलिब्रेशंस काफी देर से लाहौर ब्लूज की टीम मना रही है। दो नए बैट्समैन इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, क्योंकि साथ जो हैं ये आमतौर पर स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। ये शानदार डिलीवरी इस बार ड्रिफ्ट देखने में आई, और उसके बाद टर्न। देखिए गेंद जो है ये आई लाइन के ऊपर से आई। ये क्लासिक की विकेट थी लेग स्पिन बॉलर की। लेग स्पिन बॉलिंग इनके घर की बांधी है उस्मान कादिर की। आपेश मिड ऑन के सर के ऊपर से बॉल निकल गया, और इस वक्त खतरात अभी भी मंडला रहे हैं लाहौर वाइट्स की टीम के सर पे। अच्छा ताकुब, यकीनी तौर पर रन्स बचाए। खासा आगे खड़े हुए थे, क्योंकि इतने ज्यादा सामने रन्स बने नहीं हैं, लेकिन हसन जो है ये लंबे कद के बैट्समैन हैं, इनके लिए फील्डर को थोड़ा सा पीछे रख सकते थे। हुसैन तलत ज्यादा कदावर भी नहीं है। हुनैन शाह
इसलिए इनको क्लियर करना आसान साबित हुआ। हवा में खेला और गेंद निकल गई खुले मैदान में। ये पहला चौका हसन का। वो इस वक्त काउंटर अटैकिंग मूड में। अच्छा, जब भी बॉल फुलर पड़ा थोड़ा सा बाहर, वहां पर बैटर्स ने एंजॉय किया बैटिंग को। ये देखिए इसका डिस्प्ले थोड़ा स्लोअर वन लग रहा था, फिंगर्स को रोल किया, और लेकिन उससे बढ़कर उसका रिप्लाई एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन हासिल किए। किसी किस्म का जो प्रेशर है वो नहीं ले रहे। ऑलरेडी उनका जो विकेट कॉलम है काफी डिस्टर्ब है, 6 विकेट गिर चुके हैं। यहाँ पर जवाबी हमला जो है ये करना, इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है, क्योंकि विकेटें गिरी हुई हैं दोनों एंड से, जो है वो विकेटें गिर रही हैं। तो यहाँ बॉलर्स जो हैं उनको लाइन और लेंथ से, खासतौर पर लेंथ से हटाने का ये अच्छा हरबा है। जब आपके पास वैसी डिफेंसिव टेक्निक ना हो जो कि ज़रूरी है इस पिच पर। पचास ओवर या ये जो 45 ओवर की क्रिकेट है एजाज, इसमें भी कई बार आपको टेस्ट क्रिकेट की जो सलाहियतें होती हैं उनको बरूकार लाना पड़ता है। उसकी आज कमी लगी है लाहौर की इस बैटिंग लाइनअप में, लाहौर वाइट्स की। जी हाँ, ओवरऑल जो पार्टनरशिप्स हैं हमने देखा कि शुरू से अब तक सिर्फ एक ही पार्टनरशिप लगी जो कि इतनी नहीं है, और कर्टसी कहना चाहिए कि उसी पार्टनरशिप की वजह से 95 रन हैं। अदरवाइज जो विकेट कॉलम है वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रन्स। फुल लेंथ गेंद थी, खड़े खड़े खेले। एक बार फिर वही लैक ऑफ टेक्निक, लैक ऑफ फुटवर्क, लेकिन बाल बाल बचे। हसन रिजवान देखिए बिल्कुल गेंद की पिच की तरफ आई नहीं, वहीं पर खड़े खड़े खेल गए। अगर अगला पांव आगे लेकर जाते तो ड्राइव कर सकते थे, ड्राइवेबल बॉल थी ये। जी एग्जैक्टली, इसके साथ डॉट बॉल हुआ, ओवर का हुआ इख्तिताम। ये ज्यादा बेहतर फील्ड है। इस वक्त लॉन्ग ऑन पर हुनैन शाह आ गए हैं उस्मान कादिर के लिए, क्योंकि इनके शुरू के ओवर्स में हैरानकुन तौर पर सामने फील्डर नहीं थे जब इनको जरूरत थी अपना एतमाद बहाल करने की उस्मान कादिर की। वैसे भी लेग स्पिनर किसी भी मैदान पर खेल रहा हो, उसका जो पहला एक आध ओवर होता है उसमें कप्तान को उसको डिफेंसिव फील्ड देना चाहिए होते है। जी, और आज ऑलरेडी काफी कॉन्फिडेंस था बॉलिंग में, और हमने देखा कि पहले जो प्लेटफॉर्म था उस्मान कादिर के लिए सेट था, और यहाँ पर आज उन्हें, जैसे आपने बात की रिदम की, कि पिछले एक आध ओवर में हमने देखा कि उनका बाजू, उनका बॉल अच्छा आ रहा है। तो इस वक्त इन्हें 1-2 विकेट और निकालनी चाहिए, ताकि वो जो विकेट कॉलम पे 3 विकेट लगी हो, मैच के इख्तिताम पे आपने 20-25 रन दिए तो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है, 6 विकेटें हासिल की थी अपने सीजन के इकलौते फर्स्ट क्लास मैच में भी लाहौर में। और इनके पास सबसे ज्यादा वैरायटी है पाकिस्तान में, जितने भी लेग स्पिनर डिस्प्ले पे हैं, का वो पाकिस्तान की इस वक्त वर्ल्ड कप टीम के साथ हूँ या डोमेस्टिक क्रिकेट में। और अगर ये ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे या डोमेस्टिक क्रिकेट, तो इनकी जो मसल मेमोरी है, बॉलिंग की जो मसल मेमोरी है, सिर्फ वही बेहतर होने वाली है। और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ ये लंबे स्पेल करें। ये अच्छा है, 5वें ओवर का स्पेल कर रहे हैं। ये स्पेल जो है ये 7 ओवर्स का होना चाहिए, 8 ओवर्स का होना चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी टेल शुरू है और टेल के खिलाफ लेग स्पिनर वो ज़्यादा मोहलिक हो जाता है। इस पर हम मजीद बात करते हैं एजाज से। 97 पर 6।
ये अब तक का बॉलिंग कार्ड है और इकॉनमी देखें लगभग अगर हम एवरेज निकालें इस इकॉनमी की तो 2.5 या 3 और 45 ओवर्स गेम में जब आपके बॉलर्स इतना कंटेन कर रहे हो दूसरी तरफ से विकेट्स निकाल रहे हो तो सबके सब में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप होता है, रेज होता है और नीचे विकेट को देखें फॉल ऑफ विकेट भी वो कंटिन्यूसली रही है, कहीं बड़ी कोई पार्टनरशिप नहीं बनी अब तक। ये इमरान भट्ट जो है इनको उस्मान कादिर पे और ज्यादा एतमाद जतलाने की जरूरत है। अभी ये जो बॉलिंग कार्ड हमने देखा ये 6ठे नंबर पे बॉलिंग करने के लिए आए हैं, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि कप्तान जो है ये इनका एतमाद नहीं है इन पे इतना ज्यादा। हम समझ सकते हैं कंडीशंस जो है फास्ट बॉलिंग के लिए आइडियल है, उसमें ये अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को पहले लेकर आए, लेकिन फिर भी जो लेग स्पिनर है ये हर हालात में ये आपका विकेट टेकर होता है और कप्तान को इसका एहसास होना चाहिए होता है। और अभी अर्लियर ऑन जो हमने देखा उस्मान कादिर ने एक विकेट हासिल की, उसमें जो कंडीशंस थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए फेवरेबल हैं। क्योंकि जितने भी लेग स्पिनर हमने देखे हैं दुनिया भर में या पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिसालें हैं, उनके लिए अच्छा कप्तान होना बहुत ज़रूरी है। लेग स्पिनर जो है वो सिर्फ उसी वक्त उभर के सामने आ सकता है जब उसको ऐसा बड़े दिल वाला कप्तान मिले और जो अगर रन्स जाते हैं 1-2 ओवर्स में 3 ओवर्स में वो बुरा ना बनाए। अगर यहाँ पर ये किसी भी क्रिकेट मैच में 50 ओवर के मैच में अगर ये 70 रन देकर 3 आउट कर जाते हैं तो कप्तान को उस पर खुशी होना चाहिए और इनमें ये सलाहियत है। जी एग्जैक्टली, लेग स्पिनर की आपने बात की, मुझे सकलैन मुश्ताक का ईरा याद है। अच्छा बॉल था लेकिन उतना ही अच्छा प्लेसमेंट, तो उसमें मुझे याद है कि वसीम अकरम ने उन्हें यूटिलाइज किया डिफरेंट ओकेजन्स पे, इवन इन टेस्ट क्रिकेट, इन वनडे, बहुत ज़्यादा विकेटें वो लेते गए। आपने बिल्कुल सही कहा कि कप्तान पे बहुत डिपेंड करता है, कोई भी बॉलर है या कोई भी इवन बैटर है कि उसको किस प्लेसमेंट पे खिलवाना है। इसके साथ 100 रन मुकम्मल हुए, लेकिन विकेट कॉलम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अब भी। यहाँ 100 रन मुकम्मल हुए, ये पहले विकेट को इस्तेमाल में ला रहे थे लेकिन अब यहाँ पर स्विंग करने चले गए। अच्छा शॉट, बाउंड्री राइडर ने गेम को आ लिया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा हाशिम इब्राहिम थे, नौजवान क्रिकेटर। हाशिम इब्राहिम हाल ही में इन्होंने सेंचुरी बनाई गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, लाहौर ब्लूज के लिए उभरते हुए खिलाड़ी हैं। ये दूसरी निस्फ सेंचुरी है, ये 70 गेंदों में बनी है, निस्बतन तेज बनी लाहौर के लिए। एज हुआ लेकिन स्लिप से काफी दूर था। बोले एक अच्छी चीज जो अब तक देखी कि ऑलमोस्ट 80% जब पेसर्स थे तो स्लिप ले रखी है, सपोर्ट कर रहे हैं अपने पेसर्स को कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी एज निकला कि कहीं ना कहीं किस्मत दोबारा मेहरबान और एक और विकेट यहाँ पर मिल जाए। यहाँ स्लिप के फील्डर जो है वो खासे वाइड खड़े हुए थे। कासिम अकरम है जिनको हम कम ही स्लिप पोजीशन पर देखते हैं, ज़्यादातर पॉइंट पर फील्डिंग करते हैं। कासिम अकरम स्पेशलिस्ट हैं। ये पहले सोचा, इनको शौक है पुल और हुक करने का हसन को, क्योंकि लंबे कद गए हैं, लेकिन आखिरी मौके पर जाने दिया स्कोर बोर्ड की नज़ाकत को समझते हुए। जी इससे पहले भी देखा कि जिस वक्त बॉल उनके जोन में था तो वो चौका या बड़े हिट लगाने से गुरेज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी गए ज़रूर थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये था कि यार ऑलरेडी 6 विकेट गिर चुके हैं, यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहिए। ये मुश्किल बॉलिंग एक्शन भी है, ये पुल और हुक शॉट खेलने के लिए जो कि सलमान अपनाते हैं। शुरू में जब लासित मलिंगा आए थे तो उस वक्त और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था उस बाउंसर को समझना। ये आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन के साथ जो है ये पुल शॉट खेलना, हुक शॉट खेलना, ये इतना आसान होता नहीं। 104 पर 6।
उस्मान कादिर, इनमें ये सलाहियत है, साइड स्पिन कर सकते हैं, इसके अलावा ओवर स्पिन कर सकते हैं क्योंकि अच्छा लंबा कद है, खूबसूरत एक्शन है। और अभी जैसे 104 रन हैं, 6 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है या एसेट नहीं है बैटिंग में भी पर वाइट्स के पास। और फ्लिपर और आउट करार दे दिया गया। आमिर जमाल जो है गेंद की लेंथ और रफ्तार दोनों पे मात खा गए। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा उस्मान कादिर की जानिब से। अलीम डार के जहन में कोई शक नहीं था। जी हाँ, इस वक्त उस्मान कादिर अपने भरपूर रिदम में, ये देखिए बहुत उम्दा बॉलिंग, रिसीव किया बैकफुट पे और कामयाबी समेटी। और यूं आमिर जमाल रवाना हुए 6 रन बनाकर 104 पे 7 और इसके साथ ड्रिंक्स ब्रेक। वेल, कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं बन सकी, एक के बाद एक बैटर आता और चलता गया। लाहौर ब्लूज के बॉलर्स ने खूब बॉलिंग करवाई, शुरुआत अच्छी नहीं थी, एज हुआ, आसानी के साथ जुनेद ने कैच थामा, उसके बाद लेग बिफोर उमैद की अच्छी बॉलिंग, दोबारा अपने जिस्म से दूर खेला और एज किया। जहां उमर अकमल कैच की पेशकश थी और ये बहुत ही शानदार डिलीवरी थी, बिलाशुबा मैच की बेहतरीन गेंद थी। उसके बाद उस्मान कादिर इन्होंने सेटअप किया, आमिर जमाल को लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये अचानक जो है ऐसा फ्लिपर करेंगे, अनप्लेएबल। आज ज्यादा गुगली का इस्तेमाल नहीं किया उस्मान कादिर ने, यही वजह है कि सेटअप करने में कामयाब हुए। और अब मुश्किल होने वाली है इस टेल को लेग स्पिन बॉलिंग, क्वालिटी लेग स्पिन बॉलिंग को यहां पर झेलना। एक बार फिर शानदार डिलीवरी, और ये होता है जब सामने दोनों तरफ टर्न करने वाला बॉलर मौजूद हो। और अभी उस्मान के पास बड़ा अच्छा मौका है कि अपने विकेट कॉलम को इंप्रूव करें। थोड़ा सा बाहर था ये बॉल, गैप से निकालने में कामयाब हुए, प्लेसमेंट बेहतर है लेकिन सिर्फ 2 के लिए पलटे। कुछ बैटिंग कर लेते हैं कामरान अफजल,
इससे पहले भी हम इनको देख चुके हैं गागब। इनको आज रमीज जूनियर जो लेग स्पिनर हैं लाहौर वाइट्स के, उन पर तरजीह दी गई अपनी बैटिंग सलाहियतों की वजह से ही। उस्मान कादिर जो हैं, इनको यहाँ जो है वो अपना रिदम जो है बरकरार रखना चाहिए और हर गेंद पर विकेट हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर लेफ्ट हैंडर के सामने जो कि बेहतर निगोशिएट कर सकते हैं लेग स्पिनर को। ये बेहतरीन शॉट था, गेंद जमीन से लगी गई। एक और कामयाब ओवर उस्मान कादिर का, जिसमें उन्हें 6 रन दिए और विकेट भी 111 पर 7। रिस्क फ्री शॉट था ये, आसानी के साथ इसको ड्राइव किया और ये जानते हुए कि फील्डर सर्कल के अंदर है। प्लेसमेंट बेहतर थी, फुटवर्क अच्छा था, तमाम तर जो प्रेशर उस्मान कादिर इस वक्त डाल रहे हैं हल्का सा पीछे धकेला। खासी खून सुबह थी रावलपिंडी में, खून पिच थी, इस वजह से फास्ट बॉलर को फायदा हुआ। हालांकि उतनी ज़्यादा घास नहीं है, उतनी हरियाली नहीं है जो जिसकी शोहरत है और जिससे बैट्समैन घबराते हैं रावलपिंडी में मौसम सरमा में आकर खेलने से। जी एग्जैक्टली, और थोड़ा बहुत फ्रॉस्ट जो है वो भी घास पे मौजूद था अर्लियर ऑन। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पिच का कलर है वो ये बताता है, इंडिकेट करता है कि ये अच्छी बैटिंग सरफेस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम है उसने बॉलर्स को सपोर्ट किया। यहाँ अच्छी तरह तैयार की गई है पिच, आप देख सकते हैं बिल्कुल हमवार है शुरू से आखिर तक, लेकिन अच्छी टेक्निक नहीं थी कि जो पहले 10 से 15 ओवर जो हैं वो संभल कर खेल सकें। उसके बाद यकीनी तौर पर रन्स यहाँ मौजूद थे, वो तैयब ताहिर ने दिखाया भी था। तो ये ऐसी पिच नहीं है कि 112 पर आपके 7 खिलाड़ी आउट हो जाएं। जी एग्जैक्टली, ओवरऑल जो बाउंस है वो अच्छा है। हमने देखा कि बैटर्स जो है इवन क्रॉस खेला वो ट्रस्ट कर रहे थे इस सरफेस के बाउंस पे, और इवन विकेट कीपर के पास भी जब बॉल गया तो अच्छे हाइट पे उन्होंने टेक की। रफ्तार में रद्दोबदल, अच्छी दौड़ लगाई, शॉट के साथ खेलते चले गए कामरान। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं कामरान अफजल। सलमान जो हैं इनके फेवरेट बॉलर जो हैं वो जाहिर है लासिद मलिंगा होंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये अंदाज अपनाया था, इतना ज़्यादा साइड आर्म से बॉलिंग करना, फास्ट बॉलिंग। और शुरू में बहुत मुश्किल होती थी दुनिया की हर टीम को, पाकिस्तानियों को भी, लासिद मलिंगा, क्योंकि वो अपनी नौइयत के मुनफरिद थे उनको खेलते हुए। लेकिन अब पाकिस्तान में इस तरह के बॉलर आ गए हैं, जमान खान, सलमान। यहाँ पर रन नहीं मिलेगा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में क्योंकि सलमान हैं, जमान हैं, तो इस तरह के बॉलर आ गए हैं, तो पाकिस्तान को इस तरह की या इस सेक्शन के बॉलर्स को खेलते हुए अब इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी इतनी मुश्किल पेश नहीं आ रही। हमने पत्थराना को पाकिस्तानियों को खेलते हुए देखा है, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी उनकी बहुत पिटाई हुई पाकिस्तानी बैट्समैनों के हाथों, क्योंकि आदी हो चुके हैं इस तरह की बॉलिंग को डोमेस्टिक क्रिकेट में, PSL में खेलने की वजह से। लेकिन क्योंकि लेग स्पिन बॉलिंग या रिस्ट जो स्पिन बॉलिंग है बाएं हाथ की, दाएं हाथ की, वो नहीं ज़्यादा खेल रहे हमारे बैट्समैन, तो अब वो मुश्किल हो रही है। तो इसलिए रिस्ट स्पिन को यहाँ पर जो है ज़्यादा एक्सपोज करना भी ज़रूरी है कोचेस के लिए, और बैट्समैनों को खेलना भी ज़रूरी है, तभी आप जो हैं वो आदी हो जाएंगे और फिर मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। और इसके साथ सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम, यस इट इज 31 ओवर गए 114 पे 7।
उस्मान कादिर अच्छा लंबा स्पेल कर रहे हैं और ये गेंद लंबे सफर पर निकल गई, वहां पर डाइव करते हुए नजर आए उमैद आसिफ। ये अच्छा खेल रहे हैं ये दोनों बैट्समैन स्पिन बॉलिंग को। जी इवन जब हसन आए थे विकेट गिर रहे थे उस वक्त से उनका यही तकरीबन खेलने का अंदाज है, हार्ड हिटिंग या फिर प्लेसमेंट भी उनकी अच्छी है। इस दफ़ा भी ऑन साइड पे अच्छा प्लेस किया क्योंकि ताक़ुब ज़रूर था डीप मिड विकेट के फील्डर का, लेकिन बेसूद उमैद आसिफ। फिर से फ्लिपर करना चाहते थे लेकिन गेंद निस्बतन ज्यादा शॉर्ट हो गई। उस्मान कादिर जो है इनका कंट्रोल बेहतर लगा है, ये 7 ओवर के स्पेल में इतने कंट्रोल के साथ हमने इनको बॉलिंग करते हुए कम देखा है। अगर ना अक्सर आप देखते हैं एक ओवर में एक फुल टॉस या एक पुल या कट शॉट जो है ये रिसीविंग एंड पर रहते थे, लेकिन आज ऐसा कम देखने को मिला है और ये अच्छे आसार हैं। जी हाँ, कॉन्फिडेंस में भी देखिए रॉन्ग वन, और तकरीबन आप कहते हैं कि जब आप बैटर डिक्टेट कर रहा हो तो यहाँ पर ये टर्म यूज कर सकते हैं कि उस्मान कादिर अपनी बॉलिंग को डिक्टेट कर रहे हैं और जहां पर वो चाह रहे हैं वो अपनी बॉल को करवा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि इन्होंने काम किया है ऑफ सीजन में, इस साल हवा में खेला, शॉट कमजोर था, लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए आए काशिफ भट्टी। खासा काम किया है इन्होंने अपनी बॉलिंग में एक तसलसल को लाने के लिए जिसकी कमी रही है। उस्मान कादिर ने अपने भाई सलमान कादिर के साथ, खुद स्पिन बॉलर रहे हुए सलमान कादिर, तो नजर भी आ रहा है यहाँ इनकी बॉलिंग में। आज हमने देखा बेहतरी देखी है। ये लाहौर में भी 6 विकेटें इन्होंने हासिल की थी फर्स्ट क्लास के इकलौते मैच में, तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब ये ज्यादा बेंच पे नहीं बैठेंगे, ये मैदान में नजर आएंगे जिस तरह की ये नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं। एक और अच्छा ओवर 122 पर 7। $122 for 7 at the end of 32 overs. Umaid Asif has been brought in the attack. It has been a dismal batting performance by the Lahore White side, although they got good batters in their ranks. But they just never got going today. Outside edge. The ball runs across to the third man fence. That'll just be a single. So a single to start Umaid Asif's over number 6. What a struggling display it has been by the Lahore White side. That was a leading edge. The ball, it did not carry the fielder. Look at that. Leaning into that one, was never in control. Went off to the fielder at third man for a single. Oh, that's a beautiful delivery. Absolutely no answer to that, Hassan. Yes, it is the 33rd over in progress, and the bowling so far has been top-notch from the Lahore Blues, and they have totally justified their decision to bowl first. They have bowled the right channels,
given the ball ample of opportunity to swing and seam. And also in the spin department, we saw Kashif Bhatti was very miserly, didn't give much away. And Usman Qadir got the ball to spin and took wickets. And he bowled brilliantly. That's gone in the air. Hassan has cleared the infield. Both of these batters will settle across for 2 runs. So they got to show some intent now. They have lost 7 wickets. They got to show that they have got the talent and the skill set to get some runs at the fag end of the innings. Well, at the moment, I think the important thing for them is to last the 45 overs and get to something which is respectable and maybe give their bowlers a chance to fight. And for that, they need to exist for the remaining overs. And then maybe have 2 or 3 good overs, big ones, and get to 230, 240 runs. Because at the moment, they are tottering 125 for 7. And this one is pulled, and it's a big shot. And the fielder trying to come under it. But the ball sails over the boundary. A maximum there. And Hassan on debut hits the first 6 of his innings and of his list A career. Yeah, he has picked up the length well, Hassan. Umaid Asif banging in shot. Had all the time in the world to put it on the onside. Read the length well and has deposited it over the mid-wicket stand. That's the second 6 of the game. Hassan moves to 24 on debut, doing the rescuing job for the Lahore Whites. Short ball, pulled well in the gap. That's a good fielding effort. They will come back for 2 runs. That's good cricket by Hassan. Yes, Hassan has been hustling between the wickets, and he's done well. It's his debut. It is the 3rd debutant playing today, and he's shown good temperament. When he came in, the side was in trouble. It still is, but if he can get to 70 odd and get his team to plus 225, it would be a very good effort, especially keeping in mind that it's his debut. There is Imran Butt fielding at mid-off. This one is wide down the leg side, and Hassan is a tall lad, stockily built, strong boy, and his pull strokes were nothing more than a short arm jab, but he cleared the boundary easily, and he didn't middle that one, but he still was able to clear the boundary. So if he gets a few from the middle of the bat, with his strength, we might see more 6s. And that's what Lahore Whites require at the moment. They don't only want 6s, they want him to stick around for quite some time. Cuts, but will find the fielder at a point. Dot ball there to end a very good over for Lahore Whites. 33 done, 134 for 7. Early wickets today for Lahore Blues, and they bowled particularly well. Just the channel outside the off stump got the ball to move. This one came back in. Ahmed Shahzad was LBW of Umaid Asif, and then another one trying to chase the ball far from his body, paying the price. And then we saw Umar Akmal again doing the same thing, playing far away. And then came this beautiful delivery, seaming off the track, leaving Tayyib Tahir bowled. Then came Usman Qadir, and he bowled brilliantly. Classic leg spinner's dismissal, one off the leg break and the other one off the flipper. As Tariq Bhai mentioned, that leg spin in this family, it's a special art with them. And God has blessed them with this art. Usman, whenever he dismisses batters, most of them are classic leg spinners dismissals. And that is why he's special among all the leg spinners currently playing in the circuit. You're absolutely spot on. It runs in the family, it runs in the blood. The great Abdul Qadir, his son Salman Qadir, Usman Qadir. Salman has also played cricket at the under-19 and the regional level in Pakistan. Usman has represented Pakistan. Also Imran Qadir as well, he was another good leg spinner. So far it has been a good over. Kashif Bhatti, 4 dot balls on the trot. Loud shout, Kashif Bhatti. That was another good delivery.
What an over this has been by Kashif Bhatti. What a spell this has been by Kashif. Yes, if we talk about the bowling of Lahore Blues, they have been special in their efforts today. They have bowled the right channels, bowled at the right lines and lengths, and another made in there. 34 gone, 134 for 7. Ijaz Jr., the head coach of Lahore Whites, and has a very concerned face at the moment. And why not? 7 batters and dismissed, and only 134 on the board. So not much of a relief for him. With him as the assistant coach, and he's just loosening up. There is first there will be lunch, and then he can bowl. So where the bowlers have done well, the batters have been equally disappointing on the other side. It was always going to be the first 45 minutes to 1 hour where the batters had to show some application, which they refused to do so. And as a result, they are suffering now with 7 wickets down for 135. Well, absolutely, Silvan. You've mentioned in the first commentary stint as well that batting will become easier as soon as you apply yourself. We have seen that from Tayyab Tahir. He applied himself. He's got some quick runs for his side. We have seen that from Saad Naseem as well. But the disturbing part was the batters being dismissed. After getting settled, that's a good delivery. It's again Umaid Asif, very consistent in terms of bowling in the right channels. Yes, one thing which has obviously been very impressive from Imran Butt and Lahore Blues is that they've always had these catching positions today. Even now you can see a wide slip standing there waiting for an edge, and that is what puts pressure on the batting team. Once they are definitely behind in the game, they've lost early wickets. So it's important that you keep them down. You don't let them come up. Exactly what Lahore Blues have done. They have picked up wickets at regular intervals, haven't allowed any big partnerships, and bowled well, taken the right field positions. You're spot on in terms of captaincy, Imran, but he's made a right call at the toss. His bowlers responded him well. Has made some brave decisions. Once again, change of length from Umaid Asif. Slightly back of a length this time. 135 for 7. Yes, after this over, we'll enter the last 10. But the thing that is not in the favor of Lahore Whites is they only have 3 wickets to play with. And this is where it becomes dicey, the decision to go after the bowling or not. And in this case, definitely they need to play out their full overs and try to maximize the runs. This one again bowled outside off, enticing the batter to go after it, and he did. Fortunately for him, didn't edge it. Kamran is a young all-rounder. He's a left-arm spinner. He can bat well. He's a skillful player. But on this occasion, this ball was wide, angling across and going further. Yeah, that has been the story. Fetching the ball from outside off stump, chasing the ball. Shorter delivery, was not in total control of pulling that one. A single will complete another good over. The last 2 overs have yielded only 2 runs. 35 done, 136 for the loss of 7 wickets. The struggling run continues for the Lahore Whites. That's what we were mentioning before. The dismal batting performances, and look at the number of dot balls, 139 dot deliveries. That is huge in terms of percentage when you talk about strike rotation and the importance it carries in the context of a white ball game. Then definitely this is something which is a huge point of concern for Lahore Whites.
and their running between the wickets and their strike rotation ability, that comes under question. Out of 35 overs, 23 plus overs, dot balls. And this one has been pulled for a huge 6 this time. Short Kashif Bhatti and full advantage taken there by the batter. And the ball has gone out of the stadium. Huge hit. And umpire Aleem Dar signals for the replacement ball. Yeah, that was a poor delivery by Kashif Bhatti. Have a look at that. On the back foot. Picked up the length and has deposited it over the mid-wicket stands. Good connection there on this occasion. Numan, Kashif Bhatti being so experienced, but he's so predictable. Every over he bowls this shorter one, a quicker one, and the batter is mentally ready that now it's coming. So it's something that he needs to work at. He's in the later part of his career, and you can't be that predictable with modern field restrictions in this modern game, especially in ODI cricket. And Ibtisam, son of the great Inzamamullah, coming in with the balls, and the replacement ball will be shown to the umpires to select something which is just as good as the one which we have just lost. Well, absolutely, Salman. Coming back to the point that you have mentioned about the 23 overs being the dot balls, that's the concerning part. That's where the teams, they need to work upon, especially the modern day cricket, the modern day technique we have seen. Nowadays, the team scoring over 400 runs. Numan, last night, Pakistan's game, and Fakhar Zaman scored 81 runs of 74 deliveries. 10 balls, he scored 54 runs, 7 sixes and 3 boundaries. So the remaining 64 balls, he scored only 26 runs. So you can imagine the amount of strike rotation and the dot balls that went into that. Obviously, the 7 sixes covering up the whole thing. But even if you do well, that is where good teams do critical analysis and get better in the next matches to come. You're spot on. With all the modern day technique, with all the modern day cricket, the cricket revolutionizing, 370, 380 becoming the power total in modern day cricket. You got to adapt the modern day methods and techniques, especially in terms of drawing out the number of dot balls. Because that's the basic thing. That's how you can overcome the challenge. You can overcome the pressure by rotating the strike, by getting single every now and then. Yes, and it eases off the pressure. The opposition has to keep changing the field settings, and it builds more pressure on the opposition when the batters run well and they rotate strike more and more. And the partnerships keeps on building. It keeps both the batters relaxed. It has so many benefits. And this one, this time, was a good run, a cheeky one. And the fielder on that occasion was not expecting maybe. Imran Bhatt is generally a very quick fielder. He's a live wire. But this time the batters, they took the single really easily. Yeah, that's what we were talking about. Quick runs, quick singles, putting the opposition under pressure. What Kashif Bhatti has done after conceding a 6, that he has not offered a lot of pace. Has made sure that he gives enough loop to the ball. It's amazing what we are just seeing. So on the offside, Salman Irshad at point, Umaid Asif at cover, the two fast bowlers standing at the two key positions. So this is something for the captain to make sure doesn't happen much, because these two are the fast bowlers and these two positions require the most agile of the fielders. Yeah, absolutely. With dot ball 36 overs come to an end, it's 144 for 7. So the power play 3 starts now, and about 3 wickets falling in the second power play. And this was a straight boundary from Tayyab Tahir. Then he cut one. Then we saw Saad Naseem pulling one over mid-wicket, short and wide, and Tayyab taking advantage of Hunain Shah. Beautiful straight shot over mid-on, and then this 6 brilliantly played from the back foot. Difficult shot to play, and then cutting one for another 4, unless this happened. Hossain Talat came in and bowled to start with short and wide, but then he surprised the batter later on.
this we are seeing the repeat of those cut strokes that he played. And then one clipping the bails. What a nice sound it is for the bowlers. Hunain Shah comes back in. He's got a decent delivery first up. 16 in his first 4 overs. And we are down to the last 9 overs of the Lahore Whites innings. From this point on, this partnership needs to carry. They need to make sure that Salman has already mentioned that this partnership, they need to go at least till 40, 41st over, get run a ball, and from the last 3-4 overs, you can carry on the momentum to score some quick runs. Hunain Shah is back. He's in his 5th over. The captain expecting him to take wickets and close the innings as soon as possible. Will have to definitely bowl within the stumps. The pitch is not what it was in the morning and the balls are old now. It's just that the wickets have fallen and the batters are reluctant to go after the bowling in the way that they would like to at this point of time. And this is where in the future games here, because they start at 9:30, the sides who bat first, they will have to make sure the first 10 overs, minimum damage has to occur. Thumbs on the onside. Hassan has got a good connection and gets another boundary for Lahore Whites. 150 raised up for Lahore. From the very start, he was looking to play this one over mid-wicket. The way he created that position in the replay, we would see there he goes his back foot and he lines the bowler up. He had the area of mid-wicket in mind. There was the big gap and he did it to perfection. Hunain Shah, while he watched him do all that, could have been outside the off stump with a fuller length, but he opted to go maybe something which he had pre-planned. Now the fielder after that boundary has been sent back to the mid-wicket fence. So we got backward square leg, we got mid-wicket, we got long on at the fence. It's quite much of a leg side dominant field there by Hunain Shah. Yes, the pitch is getting better, the gaps are huge, and the batter, he can go big. I've seen him play club cricket really well, and he is one batter who likes to bat long. He gets big scores, plays for the Model Town Club in Lahore, famously known as the Nawab Club, and that is where he comes from. And this is out. Exactly the ball that we talked about, that if he bowls one full outside the off stump, he will challenge his position, and he ended up nicking one. Well, that's a good delivery by Hunain Shah, slightly fuller. He's got the outer part of the bat. Have a look at that one. Playing that one away from the body once again. The outer edge carries to the wicket keeper. And against the run of play, just when the partnership was building for Lahore Whites, Hunain Shah has struck and has got the batter of Hassan Rizwan for 33. Yes, bowling the right line, the right length, and bowling outside off stump, taking the wicket when it was required, and Hassan when he was looking good. Important wicket for Lahore Blues. So it's Ahmed Daniel, the new batter, and I've been told that it is the 4th debut. So it's raining debuts today for Lahore Whites, and he's somebody who can bowl really fast. His team would love to see some fast runs scored from his bat today, because they're in dire need of some runs. To put up a good show, a good competition, they need something on the board which is decent. Hassan looked good, but then again he became predictable with his setup, which looked very clearly that his only target was to go over mid-wicket. And the bowler, he learned quickly, took the intelligent option, bowled it outside the off stump, away from his range,
taking his wicket. Solidly behind that one was Ahmed Danial, a dot ball to end the successful over by Hunain Shah. 37 done, 150 for 8. Well, Ahmed Danial is here because a flashing blade outside of Hunain conceding a boundary, coming back and dismissing Hassan. And have a look at this for the celebration. Much relieved Hunain Shah. Kashif Bhatti, 17 from his 6 overs. He needs to wrap up the tail now. But I tell you what, at this situation, Imran Butt would surely want to wrap up the innings as soon as possible. They would not want to let the tail get some quick runs here. Well, Usman Qadir was looking deadly dangerous, picked wickets, gave 36 runs off his 7 overs, and now when the tail is on, I wonder what the captain is thinking, not bowling him his full quota, because certainly leg spinners with the range of variety that they have, the googlies, the straighter ones, the flipper, the leg break, are more likely to pick up wickets, and especially when he's landing the ball in the right areas. So a strange decision again, where some things Imran Butt has done well, but there are other question marks. Kashif Bhatti, at his very best, will just spin it a little bit. And this is something which is beyond me. Why not Usman Qadir? You're absolutely spot on. We have seen on numerous occasions that the tail enders, they have struggled to cope up with the leg spin. Especially considering the varieties the leg spinners have, considering the threat that leg spinner possess. And we saw Kamran Afzal beaten on the googly numerous times. He wasn't picking up Usman Qadir well, and Kashif Bhatti, as soon as he came in, there was a huge 6 out of the ground, and this one has been driven to long off. Will be one only, but he seems far more confident in when facing Kashif Bhatti than he was facing Usman Qadir. You're absolutely spot on, and with the natural angle, it becomes slightly easier for the left-handed batter to play against the left-arm spinner. With the angle, he can play the ball on the onside, can get a couple of boundaries. That was a sharp end dipper, quicker one to end the over. 38 gone, 153 for 8, Lahore Whites. Change of shoes for Hunain Shah at the moment going on, and this is Hassan on your screen talking to the experienced Clark, who I don't know why is sitting out today, because we have seen 4 debutants in the first game of the competition, and here is Imran Butt looking good in his glasses, but he needs to realize that picking up wickets is more likely to be done with the leg spinner, and this is something, some trick which he has missed. Maybe he has some other ideas which we do not know about. But what we saw happening, Usman was much more deceptive and more likely to pick up the wickets. Well, now he is continuing with his faster man, Hunain Shah, against Kamran, who looked impressive, 22 of 28. He's got the rebuilding done with Hassan Rizwan. We were mentioning earlier on about the families of cricketers. Hunain Shah, he comes from the Shah family.
Naseem Shah represented Pakistan. His brother Ubaid Shah playing for Pakistan under-19 team. Hunain Shah has been playing Pakistan's domestic cricket. So it's just the fact that the fast bowling, it runs in this family. Another dot ball, and yes, you mentioned the family and certainly abundance of fast bowling talent in the Shah brothers. Ubaid at the moment playing this game. Hunain just completed the series against Sri Lanka. He made his debut in the under-19s and was the top wicket taker. And then Naseem Shah, we all know, he's the best Pakistan fast bowler across formats at the moment. Very skillful and pacey too. Played with soft hands out to the fielder at point. We're into the last power play, the last phase of the innings. There was one wicket-keeping family, Kamran Akmal, Umar Akmal and Adnan Akmal. And then this is the fast bowling family. But the point is that 3 fast bowlers can play at a time for a team, but you can only have 1 wicket-keeper keeping at one time. So I wonder how that decision was taken. That's a good shorter delivery by Hunain Shah. A couple of lengths ball followed by a good shorter one. What an over by Hunain Shah. Because that happened at a time when the format was also not 3. So to have 3 keepers would only give one a chance to play, but they were all outstanding cricketers, no doubt about it. And especially Adnan Akmal with the gloves was an exceptional talent with the gloves. Kamran Akmal was a complete package with his aggressive batting, especially at the top of the order. Well, 2 brothers at once played for Pakistan, Umar and Kamran. But we got to wait and see that when are we going to see 2 or 3 fast bowling brothers playing for Pakistan. Well, we might, because Naseem Shah is very young. The upcoming brothers are also young. So we might. It all depends on their performance. And there is the third one, Umar Akmal, the very skillful. The range of shots this guy had was amazing. And the time that he had to play against bowlers who could bowl 150 kilometers per hour. I'm not saying 140, which is a norm. 140 was not considered to be absolute express pace. And this guy against the top bowlers like Dirk Nannes, Mitchell Johnson, and people like them, Sean Tate, he could take them to the cleaners, and he did on a number of occasions. Well, absolutely. The intent, the modern day intent that we talk about nowadays, he used to do that back in 2009, 10, 11, 12. You know what? They start calling modern when they realize what is going on. Because when Pakistan were the first ones to come in with the reverse swing, so everybody was saying fishy things about it. But when others learned, they said the art of reverse swing bowling. And now, what these boys did with the bat years ago, when others have adapted, now it has become modern cricket. Whereas Pakistan, if you look at the times, last 10 overs, if there was Abdur Razak batting or any batters batting, they would score nearly 100 runs in the last 10 overs. And there was Sri Lankan batters, Kaluwitharna and Jasuria, the first pair to take the first power play advantage in the 1996 World Cup. So when it starts from here, they don't call it modern. You're absolutely spot on. It's just on how you label it, how you give it a tagline. But you're right about the Akmal family. Very skillful, very talented. Last delivery of Hunain's over. Fuller. And out to the fielder, a short mid-wicket, a maiden to end the over for Hunain Shah. 39 done, 153 for 8.
लाहौर ब्लूज की टीम जो है यकीनी तौर पर इस वक्त ज़्यादा मुतमईन और ज़्यादा खुश टीम। 29 ओवर खेल के बाद उन्होंने 8 विकेटें हासिल कर ली हैं। अच्छा टॉस जीता इमरान भट्ट ने और उसके बाद उनके बॉलर्स ने जिस तरह से इस पिच का इस्तेमाल किया उस पर अलग ताली बजनी चाहिए, क्योंकि टॉस जीतना ये एक जो है और बात है, और बेहतरीन बॉलिंग करना, उन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाना वो एक दूसरी बात है। तो अपने जो कप्तान और कोच के मंसूबे थे उनको सही जामा पहनाया है सलमान ने। उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, उनके साथ दूसरे एंड पर उमैद आसिफ, वो भी अपने तजुर्बे को बरूए कार लाए। और जो बाद में आने वाले बॉलर्स से ख़ास तौर पर सलमान कादिर, उनने बहुत अच्छा बैकअप किया। तो हम कह सकते हैं कि ये बेहतरीन सेशन है और बहुत ही अच्छा आगाज़ है लाहौर ब्लूज के लिए इस टूर्नामेंट का। अली यूनुस, या नो डाउट अच्छे से इन कंडीशंस को यूज किया है फास्ट बॉलर्स ने। अच्छा शॉट है लेकिन एक ही रन बनेगा। और कुछ गलतियां लाहौर वाइट से भी हुई, हमें इनका भी जिक्र करना चाहिए। जैसे इनएक्सपीरियंस था बैटिंग लाइनअप में, स्पेशली अर्ली ऑन कंडीशंस थोड़ा बॉलर्स को सूट कर रही थी और इनएक्सपीरियंस नजर आया हमें। फाइक बट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रन्स करके आए हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ दानियाल, दोनों यंग ओपनर बैटर्स। और जो बात हम पहले सेशन में कर रहे थे, जो आपने पॉइंट आउट किया था कि आबिद अली को ना खिलाना इन कंडीशंस में, ये थोड़ा इनकी अगेंस्ट जा सकता है लाहौर वाइट्स के, और वही हुआ। इनएक्सपीरियंस ने मैच काफ़ी हद तक पीछे ले गए मैच में। यॉक करने की कोशिश की, लो फुल टॉस, तो काफ़ी कोशिश करना पड़ेगी। इमरान भट्ट, काशिफ भट्टी थे दरअसल जो इमरान भट्ट के साथ बहुत क्रिकेट खेले बलूचिस्तान में भी, आखिर में अच्छा रोका, झुक गए काशिफ भट्टी। ये जो फील्डर्स को टीज करने वाली ये पेस थी बॉल पे, कि ना चौका हो रहा था ना सिंगल रोका गया, क्योंकि उनके साथ भागते चले गए। अच्छी एफर्ट, और ये आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीनियर मेंबर से। जब आपका सीनियर मेंबर इस तरह की एफर्ट करे, एक एक रन रोकने की कोशिश करे, तो टीम अच्छे ट्रैक पे है, सही ट्रैक पे है। एलबीडब्ल्यू गेंद शायद स्लाइटली जो है लेग स्टंप की तरफ जा रही थी या फिर बल्ले से भी लगी थी। अलीम डार ने इसे रन्स करार दिया है, या उनके जहन में कोई शक नहीं था। 2 आवाजें आई भी थी, या यही चीज बचा सकती थी, क्योंकि शफल करके विकेट्स के बिल्कुल सामने आ गए थे, और अगर इनसाइड एज नहीं होता तो ये डेफिनेटली बॉल लगता जाके लेग स्टंप को। जी हाँ, ये डेफिनेटली मिडल हैंड लेग को बॉल लगता। बहुत जल्दी एहसास हो गया था अंपायर को कि ये इनसाइड एज है, और इसी वजह से अलीम डार दुनिया के बेहतरीन अंपायर हैं। जी हाँ, कोई शुबा नहीं, 444 इंटरनेशनल मैचेस कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों मुझे अलीम डार एकेडमी में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ एक बोर्ड पर इनकी तस्वीर लगी हुई थी और साथ लिखा हुआ था 444 नॉट आउट। यहाँ भी जो है ये मजीद अपने इस रिकॉर्ड को बेहतर करते जाएंगे। तैयब ताहिर ने 42 रन बनाए, 33 रन बनाए हसन रिजवान ने, और उसके बाद अच्छी मुजाहिमत की है कामरान अफसल ने, नॉन स्ट्राइकर ने। काफ़ी आगे चले गए थे, रन आउट का इम्कान रहेगा नंबर 10 और 11 के साथ, ये अक्सर देखने को मिलता है। 159 पर 8। यहाँ जिक्र अभी हो रहा था अलीम डार और इनकी क्वालिटी का, जितनी अच्छी अंपायरिंग ये करते हैं। और एक और सहरा भी इनके सर जाता है कि जब एक टाइम पे सिर्फ क्रिकेट खेलना ही एवेन्यूज़ होते थे, जो लड़के क्रिकेट खेलते थे, और जब से अलीम डार एलीट पैनल में गए तो एक दरवाज़ा भी खोल दिया है कि आपके पास क्रिकेट के अलावा भी क्रिकेट में करियर बन सकते हैं। वो अंपायरिंग का करियर है, क्योंकि इन्होंने वो हाइट अचीव की अपने अंपायरिंग करियर में, जो कि यूजुअली पीपल विश करते हैं। और उसके इनके आने के बाद फिर दरवाजे खुल गए बाकी अंपायर्स के लिए। एहसन रजा भी हम देखते हैं आईसीसी एलीट पैनल का हिस्सा है।
राशिद रियाज आए, उनके बाद फैसल आफरीदी आए और बहुत सारे अंपायर, अच्छे अंपायर जो बड़ी सीन पे आना शुरू हो गए। तो सेहरा बिलाशुबा अलीम डार के सर पे जाएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये स्टेप लिया था कि अंपायरिंग में करियर पाकिस्तान में किसी का होना चाहिए। और उस वक्त नौजवान थे, सन 2000 में इनका इंटरनेशनल अंपायरिंग करियर शुरू हुआ था। और अलीम डार उससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, लाहौर में बहुत सी क्लब क्रिकेट खेले, कॉलेज क्रिकेट खेले। ये शानदार शॉट, दिलकश तरीके से कट किया, इसे दूर दूर तक मौका नहीं था काशिफ भट्टी के लिए। और ये बेहतरीन इस्तेमाल एंगल का और रफ्तार का जो कामरान ने कर दिखाया। यहाँ अपनी सिलेक्शन को यहाँ पे सही प्रूव करते हुए कामरान, बहुत शानदार प्लेसमेंट, जैसे आपने कहा कि पेस को इस्तेमाल किया, प्लेसमेंट बहुत शानदार थी क्योंकि अच्छी पेस है हुनैन शाह की। आप सिर्फ बल्ला लगाएंगे और थोड़ा तिरछा बल्ला लगाएंगे, प्लेस करेंगे तो यकीनन 4 रन आपको इस एरिया में मिलेंगे इस पेस के साथ। क्योंकि जब प्लेइंग 11 अनाउंस हुई थी थोड़ा सरप्राइज हुआ था हमें इन्हें देख के, लेकिन अपनी सिलेक्शन को 100% यहाँ पे सही करार देते हुए। अच्छी वापसी, हुनैन शाह की गेंद लगने के बाद तेज से उछल कर निकल गई। ये इस तरह की पिच है जहां आप जो है कप्तान जो है 41वें ओवर में भी स्लिप खड़ी कर सकता है, इसमें कोई मुजायका नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 विकेटें बाकी रह गई हैं और इनको 45 ओवर का सोचना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। इमरान भट्ट को आउट करने की फिक्र होनी चाहिए। 45 ओवर तक अगर ये खेल गए, खासतौर पर कामरान अगर नॉट आउट रहे, तो ये स्कोर जो है ये फिर बआसानी जो है 185 तक पहुंच जाएगा। उम्दा शॉट, इस बार फिर कट कर दिया और ये गेंद ज्यादा दूर गई। इस तरफ बाउंड्री का फासला निस्बतन कम है, लेकिन ये पहले ही गिर गई थी। 4 रन। ये बेहतरीन गेम अवेयरनेस है कामरान की जानिब से। अपर कट खेला, लेकिन जो प्लेसमेंट थी उस अपर कट की वो बहुत ही कमाल की रही। ऑल्दो थर्ड पे फील्डर मौजूद है, लेकिन ये थर्ड और पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट है। ये बिल्कुल गैप में खेला गया, हवा में गैप में तलाश किया इन्होंने। शानदार प्लेसमेंट। यहाँ इस तरफ 72 गज की बाउंड्री है, क्योंकि ये सेंट्रल पिच से हट के पिच इस्तेमाल हो रही है। कामरान की लेग साइड में बड़ी बाउंड्री है। अच्छी डिलीवरी, फेंड ऑफ आखिर में किया और फिर थ्रो से बचने के लिए आगे चले गए। यहाँ थोड़ा हीटेड मोमेंट भी है और ये एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्योंकि नौजवान है, पेस है, अग्रेशन है और उनके सामने कामरान है जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 2 चौके लगा चुके हैं, तो कभी भी किसी फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं लगा इस तरीके से चौके खाना। और बहुत कंफर्टेबल चौके, अथॉरिटेटिव चौके दोनों लगाए हैं कामरान ने। जब टीम अनाउंस हुई थी तो बड़ा सरप्राइज हुआ था रमीज जूनियर को ना देख के, क्योंकि उन्होंने बहुत इंप्रेस किया कायद आजम ट्रॉफी में हमें। तो उनकी जगह पे कामरान को बुलाया गया और वो अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर रहे हैं। या वो इसीलिए खिलाया गया कि ये उनसे बेहतर बैटिंग कर सकते हैं। लेग साइड में खेलने के लिए गए काशिफ भट्टी की, आज बहुत दौड़ लगी आउटफील्ड में और ये चौका भी नहीं बचा सके। ये अच्छा ओवर, खासा 12 ओवर रहा लाहौर वाइट्स की बैटिंग के लिए। 171 पर 8। यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन जितनी अच्छी फॉर्म में है, जितना ये अच्छा एज लगा है, थिक आउटसाइड एज है, लेकिन आज कुछ गलत नहीं हो रहा है कामरान के बल्ले से। ये थिक आउटसाइड एज इतना अच्छा प्लेस हो गया कि बॉल 4 रन के लिए चला गया। थोड़ा जल्दी खेल गए थे शॉट में। शानदार ओवर रहा है ये कामरान के लिए। 3 चौके हासिल किए हुनैन शाह की बॉलिंग पे। तो ये अच्छी रिकवरी, और अब यहाँ से लाहौर वाइट्स को अच्छा फिनिश करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होप रखनी होगी कि लाहौर ब्लूज की बैटिंग में थोड़ी वीकनेस है। सिर्फ 3 प्रॉपर बैटर्स के साथ लाहौर ब्लूज खेल रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसा चैलेंजिंग टोटल 210 तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा मैच हो जाएगा। सेकंड इनिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यहाँ जिम्मेदारी से खेल रहे हैं अहमद दानियाल, और उनका यही फर्ज था कि वे 1 रन लेते और अपने सीनियर पार्टनर को सामने लाते। कामरान अफजल ने मुसलसल 3 चौके लगाए पिछले ओवर में।
अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। उन्होंने फाइट करने का फैसला किया, एक जुर्रत दिखाई है, एक लड़ाई करते हुए नजर आए हैं। और जब आपके टेल एंडर ऐसी लड़ाई लड़ते हैं तो फिर से एक जज्बा जाग उठता है मैच में वापस आने का पूरे ड्रेसिंग रूम के लिए। जहाँ पूरे एटमॉस्फेयर आप लिफ्ट कर देते हैं और जो मोमेंटम है वो अपनी तरफ ले आते हैं, स्पेशली अगर आप फिनिश अच्छा कर पाएं यहाँ से। और यहाँ पे पूरा मौका है कामरान के लिए, अपने 50 रन भी करें, टीम को भी वो जो रिक्वायर्ड मोमेंटम है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इनिंग के एंड पे जिस टीम के साथ मोमेंटम होता है तो अगला जो इनिंग आगाज होता है वो भी मोमेंटम के साथ ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इनिंग है कामरान के लिए, उनके अपने करियर के लिए, लाहौर वाइट्स के लिए। सलमान ने आज जब ये पहला स्पेल किया तो उस वक्त जाहिर है विकेट्स इनको मदद थी, गेंद भी नहीं थी। विकेट में अभी भी मदद है, लेकिन इस दूसरे स्पेल में इन्होंने ज़्यादा अपने वेरिएशन यॉर्कर का इस्तेमाल करना चाहा है। हालांकि अभी भी इस पिच पे ये गेंद मार सकते थे, वो कि इनकी स्ट्रेंथ नहीं है सीम बॉलिंग करना, लेकिन इस पिच में क्योंकि मदद मौजूद है तो आप वो जो रिवायती हरबे होते हैं, रिवायती वेरिएशन यॉर्कर करना, उसकी निस्बत अगर पिच को ये प्ले में रखें तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता। अली क्या कहेंगे आप? या मैं आपसे पार्शली एग्री कर सकता हूँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सलमान की लिमिटेशंस और उनकी स्ट्रेंथ्स का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ आगे बॉल करना है, ये यॉर्कर लेंथ को प्रेफर करते हैं। और ये जब जिस तरीके से उन्होंने नए बॉल बॉलिंग की, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, जैसे आप कहते हैं कि विकेट से मदद मिली, बाहर की तरफ स्विंग होता हुआ नजर आया बॉल, थोड़ी ख़राब शॉट सिलेक्शन भी दोनों बैटर्स की जानिब से, जिसने मदद की इनको 2 विकेट्स हासिल करने में। ये इनकी नेचुरल लेंथ है, हमने इनको ज़्यादातर देखा है T20 क्रिकेट में भी और वाइट बॉल क्रिकेट में भी, कि ये जब भी पुराने बॉल से आएंगे तो ये यॉर्कर ही करेंगे, और इनमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, जो सबसे ख़ास बात है इन यॉर्कर्स की। मुझे नहीं लगता है कि हमने जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले 2 सालों में कवर की है, इस लेवल ऑफ क्रिकेट में इतनी एक्यूरेसी किसी के यॉर्कर्स में हमने देखी हो जितनी सलमान इरशाद में है। और अभी अच्छी फॉर्म में भी हैं, CPL खेल के आए, कैरिबियन प्रीमियर लीग, 5 मैचेस में 10 विकेट्स वहाँ पे हासिल की, 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी हैं, जिसका यहाँ पे नज़ारा हम देख रहे हैं। यहाँ एक बार फिर वो दुरुस्ती हमने देखी, बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में ही इनका यॉर्कर ख़त्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि रिवर्स स्विंग नहीं है तो इसलिए बैट्समैन जो हैं वो निमट रहे हैं उससे। 175 पे 8। ये रमीज जूनियर हैं जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया हम सबको ही। और तारिक भी हमने भी आखिरी जब कायदे ट्रॉफी के फाइनल में पोस्ट मैच शो में, प्री मैच शो में बात भी की थी कि फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट 4 डे में अगर हम बात करें तो यही नज़र आए थे, रमीज जूनियर जैसी क्वालिटी बॉलिंग, जिस चैनल में इन्होंने बॉलिंग की कंसिस्टेंटली, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिस आउट किया है लाहौर वाइट्स ने। लेकिन उनके जो मुतबादिल आए हैं वो रन्स कर रहे हैं, 39 रन पे हैं कामरान। जी हाँ, उस्मान कादिर को जो बॉलिंग करते हुए देखा होगा तो ज़रूर इनने सोचा होगा कि आफ्टर थॉट जो आती है कोच और कप्तान के जहन में, कंडीशंस मुखालिफ टीम के बॉलर्स को देखकर। आज आला बॉलिंग किया उस्मान कादिर ने, इसमें कोई शुबा नहीं और कोई मुबालगा आ रही भी नहीं है। जिस तरह इन्होंने 7 ओवर का स्पेल किया, इनके पूरे 10 ओवर्स जो हैं, इनके जो पूरे 9 ओवर्स हैं अली, क्योंकि मैच 45 ओवर्स का है, ये कप्तान क्या कराने के मुतालिक सोच सकते थे? जब नंबर 9, 10, 11 खेल रहा हो, लेग स्पिनर हमेशा कप्तान सोचता है क्यों ना उस टेल का सफाया कराया जाए, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं लेग स्पिनर्स टेल के लिए। या ऐसा हो सकता था, लेकिन शायद एक वजह ये हो सकती है कि कामरान जो वो लेफ्ट हैंडर हैं, क्योंकि यही एक वजह है जो मुझे नज़र आती है। अदरवाइज तो आप बॉलिंग करें और आप लेग स्पिनर हमेशा ही एक अटैकिंग ऑप्शन होता है। और एक और हैरानगी वाली बात, जो हमने कासिम अकरम को आज बिल्कुल बॉलिंग करते हुए नहीं देखा।
इस तरफ बाउंड्री का फासला ज़्यादा है, इसलिए एक ही रन पर इक्तिफा करना पड़ा। बहुत पीछे से आना पड़ा बाउंड्री से उस्मान कादिर को। वो रन एक देना भी चाहते थे कामरान को ताकि वो जल्दी स्ट्राइक से हट जाएं। ये हमारे जो डोमेस्टिक कप्तान हैं वो ये हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ तक कि बाबर आजम भी है, वो कई बार 50 ओवर का ज्यादा सोच लेते हैं। ये अच्छा शॉट, इस बार स्लो डिलीवरी थी, बहुत ज्यादा वक्त मिल गया अहमद दानियाल को और ये दन-दनाती चली गई। अच्छा स्ट्राइक। जी हाँ, अहमद दानियाल ने फैसला कर लिया है कि बहुत हुआ। एक बार फिर बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी कटर करने की कोशिश, लेंथ दूर थी। अगर आपने ये वाला बॉल करना है तो थोड़ा आगे बॉल करना होगा, क्योंकि ये लेग स्पिन की तर्ज की ये बॉल की थी। अपने पाम को मोड़ा जिससे लेग स्पिनर बॉल करते हैं, लेकिन लेंथ दूर कर दिया जिसकी वजह से बहुत आसानी होगी दानियाल को। फ्लैट बैट कर दिया 4 रन के लिए। अच्छी बैटिंग समझदारी के साथ। अब ये 33 रन की पार्टनरशिप हो गई है और ये खतरनाक पार्टनरशिप है। लो स्कोरिंग ये मुकाबला है। गो के विकेट अब बैटिंग के लिए बेहतर होती जा रही है, लेकिन अली जिस मोमेंटम का जिक्र कर रहे थे वो लाहौर वाइट्स को बिल्कुल मिल जाएगी अगर इनने 200 के हिस्से को छू लिया। और एक और चीज जो लाहौर वाइट्स के फेवर में जाएगी मोमेंटम के साथ है कि अभी भी मूवमेंट, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, ऑफ द पिच मूवमेंट मौजूद है। और जब लाहौर वाइट्स बॉलिंग करने आएगी कि उनकी बॉलिंग में भी वो क्वालिटी मौजूद है, अहमद दानियाल मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे क्योंकि 43 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। 183 पर 8 लाहौर वाइट्स। या जिक्र कर रहे थे आप, अभी भी आपने भी कहा और बिल्कुल सही कहा कि अभी भी ऑफ द पिच मूवमेंट मौजूद है। बॉल स्विंग और सीम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें अभी तक, ऑल्दो हम ऑलमोस्ट 2 ओवर बाकी हैं पहली इनिंग के ख़त्म होने पे, तो अच्छा लगेगा। अहमद बशीर हम जानते हैं ये अच्छे सीम बॉल कर लेते हैं। अहमद दानियाल तो तेज़ हैं, उनके साथ हैं आमिर जमाल। आई थिंक ये 3 फास्ट बॉलर्स इस पिच की कंडीशन से अभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लो स्कोरिंग गेम है, ये आसान नहीं होगा, स्पेशली अगर मोमेंटम यहाँ से जिस तरीके से लाहौर वाइट्स की तरफ जा रहा है और यहाँ अच्छे फिनिश करते हैं। 2 ओवर में मजीद 20 से 25 रन भी और बनाते हैं तो 210 रन तक अगर ये पहुँच जाते हैं तो ये चैलेंजिंग टोटल होगा लाहौर ब्लूज़ की कमज़ोर हद तक, मैं कहूँगा, बैटिंग के लिए। लेग साइड में खेलने के लिए गए, 1 रन मिल जाएगा। मिड विकेट के ऊपर हेड लगाना चाहते थे, जो तकरीबन हर बैट्समैन का जोन होता है। इस तरफ आप जितने भी कमज़ोर बैट्समैन हो, ये हेड लग जाती है इस इलाके में, आपका हाथ खुल जाता है। ये मिड विकेट एरिया, लॉन्ग ऑन का एरिया ऐसा है जिसमें आपकी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ लग सकती है, पूरा स्विंग लग सकता है, इसलिए ज़्यादातर बैटर्स इस एरिया को प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे अब तो इन दोनों बैटर्स के पास लाइसेंस टू थ्रिल है कि आप जाइए और जैसे मर्जी आप खेलिए, क्योंकि आखिरी 2 ओवर हैं, बड़े हिट्स चाहिए, रन्स चाहिए। इस बार अपनी रफ्तार को कम किया, यही वजह है कि सामने शॉट नहीं खेल सके। अच्छी इनिंग्स 41 रन की अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कामरान अफजल ने खेली है। अपनी सिलेक्शन को उन्होंने सही साबित किया। लेकिन लाहौर की जो बैटिंग है ये बहुत कुछ सीख कर जाएगी इस इनिंग्स से कि आइंदा मैचेस में रावलपिंडी में, जहां पर काफी दिनों से उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, कुछ हफ्तों से। इस बार कासिम अकरम, अच्छी कोशिश उन्होंने की, दूर से भाग कर आए और बाएं तरफ डाइव की, सामने को गेंद हाथ नहीं लगी, लेकिन कोशिश के पूरे नंबर मिलेंगे कासिम को। क्या शानदार एफर्ट है, काफी दूर से जैसे आपने कहा भाग के आना था। और ये फिर वही एरिया है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान का एरिया, जहाँ पे आपको पूरा स्विंग मिलता है, पूरी फोर्स आप लगा सकते हैं इस शॉट में। ऑल्दो ये बल्ले के ऊपर वाले एरिया में थोड़ा बॉल लगा तो उस तरीके से टाइम नहीं किया था, लेकिन स्टिल फोर्स इतनी ज्यादा थी और प्लेसमेंट इतनी शानदार थी कि दोनों फील्डर्स के दरमियान से होते हुए बॉल 4 रन के लिए गया। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं
अहमद दानियाल कोशिश कर रहे हैं कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेले जाएं। उन्होंने अच्छा साथ दिया है। क्रिकेट खेल ही ऐसा है जिसमें जब पार्टनरशिप लगती है तो ये जो है जब दो अच्छा खेल रहे हो तो 2 और 2 11 हो जाते हैं। एक अकेला 2 11 तो यही टीम अप होता है। एक अकेला जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मुखालिफ टीम का। कोशिश पूरी थी एक बार फिर मिड विकेट एरिया की तरफ जाने की, लेकिन स्मार्ट बॉलिंग कर रहे हैं उनैन शाह, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों बैटर्स इसी तरफ इस एरिया में ही बॉल को खींच के लेके जाएंगे, इसलिए स्मार्ट बॉलिंग आउट स्विंगर किया। थोड़ा लेंथ भी शानदार थी, थोड़ा तेज बॉल गया, बल्ले के ऊपर वाले हिस्से में बॉल लगा है कामरान के, क्योंकि उनको भी अब थोड़ा ईगर होंगे, क्योंकि 42 रन पे हैं। वो भी चाहेंगे कि आखिरी ओवर है इस 2 बॉलों के बाद कि अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की जाए, और डिजर्व करते हैं 50 रन यहाँ पे। एक बार फिर अच्छी कोशिश ही अहमद दानियाल। इनकी बॉलिंग में वेरिएशन है, बैटिंग में वेरिएशन दिखा रहे थे स्ट्रोक प्ले में, लेकिन ये सीधी फील्डर को निकल गई 191 पर 8। काफी चीकी शॉट, अच्छी अटेम्प्ट थी ये, हवा में बॉल लेकिन सेफ हो जाएगा। कोशिश तो दोनों जानिब से पूरी हो रही है, लेकिन वो कनेक्शन हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि उमैद आसिफ अपनी एक्स्ट्रा हाइट और हाई आर्म एक्शन की वजह से इनकी जो लेंथ है वो जज करना बैटर्स के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप इनएक्सपीरियंस हो तो। जी हाँ, क्योंकि बहुत बुलंदी से गेंद को लाकर ये पटकते हैं। पंद्रह एक्स्ट्रास भी स्कोर में शामिल हैं, जिसमें 12 वाइड गेंदें। लेग साइड में खेलना चाहते थे, निकल गई गेंद और पीछे छोड़े जा रही है ये सलमान को, पहले विकेट कीपर को, और ये कलीदी रन्स लाहौर वाइट्स के लिए, जिनको एक उम्मीद अब लगने लगी है। रन आने चाहिए। ये ज्यादा खूबसूरत अंदाज तो नहीं था, लेकिन ये टिपिकल टेप बॉल वाला शॉट है, क्योंकि महारत रखते हैं टेप बॉल में भी। अहमद दानियाल अपनी लेफ्ट लेग को क्लियर किया और फुल स्विंग ऑफ द बैट, और यही खासियत थी कि अगर आपने स्विंग करना है तो इतनी जोरदार करिए कि इवन आपका जो थिक आउटसाइड एज है वो भी कैरी कर जाए बाउंड्री तक, और यही यहाँ पे दानियाल ने किया। इतनी जोरदार वो स्विंग था और इंपॉर्टेंट बाउंड्री हासिल की है। फिर से इनटू द पिच, स्लो डिलीवरी। इनके लिए अच्छा मैदान अहमद दानियाल के लिए रहा है। इन्होंने अपना जो पहला फर्स्ट क्लास डेब्यू का सीज़न था, यहाँ पर बहुत विकेटें ली थी, मुतासिर किया था तेज़ बॉलिंग से सेंट्रल पंजाब के लिए खेलते हुए। तो आपको आप मानूस हो जाते हैं एक मैदान से, इससे आज बेहतर बैटिंग करते हुए नजर आए, लेकिन आदत नहीं है इतने ज़्यादा रन्स बनाने की और इतनी देर तक मैदान में रहने की, और लगता है कि इनको गेंद लगी है, या ये गेंद बल्ले से टकरा के लगी है सीधा जाकर इनके जिस्म पे। ऑल्दो एक स्लोअर बाउंसर था, इनटू द पिच बाउंसर किया था, स्लोअर वन किया था उमैद आसिफ ने, लेकिन वो इनसाइड एज होने की वजह से थोड़ी पेस बढ़ सी गई, और ये चेस्ट एरिया, रिब केज एरिया में बॉल पेनफुल हो सकता है। लेकिन दाद तो देनी होगी अहमद दानियाल को कि जिस नडर तरीके से उन्होंने सामना किया इस बॉलिंग का और साथ दिया है कामरान का। ये पार्टनरशिप
आई एम श्योर काफ़ी ख़तरनाक होगी लाहौर ब्लूज़ के लिए, क्योंकि इसने एक तो वो रिक्वायर्ड मोमेंटम दे दिया है और स्कोर को भी 200 रन तक पहुंचा दिया है, जो कि एक टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा था 200 तक भी पहुंचना लाहौर वाइट्स के लिए। फिर इनटू द पिच, इस गेंद को किया लेग साइड की बाउंड्री को खेल में रखना चाहते थे उमैद, जो बड़ी बाउंड्री है। या यही स्मार्टनेस है, यही एक्सपीरियंस है उमैद आसिफ का। वो रियलाइज करते हैं कि बैटर्स किस एरिया को ढूंढ रहे हैं, इसलिए दूर कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप लेफ्ट हैंडर को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट पिच डिलीवरी करेंगे अच्छी पेस के साथ, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बॉल खड़ा हो जाएगा। और यही कोशिश यहाँ पे उमैद आसिफ की, और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। उस तरीके से कनेक्शन मिला नहीं है बैटर्स को। हवा में बहुत जोरदार शॉट था, झुकना आसान नहीं था, लंबे कद गए उमैद आसिफ, तेज भी आई और अब ये बल्ला है, तब्दील करना चाहते हैं इस आखिरी गेंद पर। बुरी आवाज सुनाई दी थी बैट्समैन को, बल्ले की क्यों एंड पे लगी। या मे बी आज से कुछ साल पहले एक टीनेज उमैद आसिफ ये कैच जरूर पकड़ लेता, क्योंकि ये बहुत एथलेटिक है। यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होंगे, अब डेफिनेटली एज के उस हिस्से में है जहाँ पे उस तरीके से फ्रीली आप डाइव नहीं करते हैं। स्टिल बहुत फिट हैं, बहुत लीन है, बहुत कमिटेड क्रिकेटर हैं उमैद आसिफ। जी हाँ, अभी भी फिट है, हालांकि बालों में चांदी उतर आई है, लेकिन फिट हैं, आज जान मारते हुए नजर आए हैं। अच्छा स्पेल किया शुरू में नई गेंद पे और अच्छा इख्तिताम भी किया है। क्या ये 22 का रन शुमार होगा, और इस तरह ये इनिंग्स और ये सेशन यही मुकम्मल हुआ। 199 रन लाहौर वाइट्स ने बनाए, 8 विकेट के नुकसान पर 49 रन की ये पार्टनरशिप जो अपनी टीम के लिए सहारा बनी। कामरान अफजल नाकाबिल शिकस्त रहे, 45 रन पर उम्दा बैटिंग की उनने मुश्किल हालात में। उस्मान कादिर, उमैद आसिफ बेहद खुश, साथ साथ सलमान भी। और 200 रन जो हैं इस पिच पर ये बनने चाहिए। बॉलर्स की जो मेहनत है, देखना ये है कि वो कितनी रंग लाएगी यहाँ लाहौर ब्लूज के लिए, जिनको टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना पूरी तरह रास आया। बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिली हमें इस पहले मैच में, पहली इनिंग में। शुरू में जब टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया लाहौर ब्लूज ने, तो अच्छा सपोर्ट किया इस डिसीजन को बॉलर्स ने। 4 अर्ली विकेट्स हासिल की थी, जिसमें उमैर, फाइक, अहमद शहजाद और उमर अकमल शामिल थे। उसके बाद थोड़ा सहारा जरूर दिया था तैयब ताहिर की 42 रन की इनिंग ने, लेकिन उन्होंने शायद बॉल ऑफ द मैच अभी तक हुसैन तलत ने किया और विकेट हासिल की। साथ नसीम ने थोड़ा सर्वाइव किया 19 रन के लिए, हसन भी अच्छे लगे 33 रन के लिए, लेकिन एंड पे कामरान ने जिस तरह से इनिंग के लिए 45 रन बनाए सिर्फ 52 बॉलों पे, और एक मोमेंटम दे दिया अपनी टीम को, और एक ऐसे टोटल तक ले गए जो कि चैलेंजिंग हो सकता है जब ये बॉलिंग करने आएंगे। 199 रन 45 ओवर में। बॉलर्स के लिए तो शानदार दिन रहा, स्पेशली नए बॉल बॉलर्स के लिए। बहुत अच्छी नए बॉल से बॉलिंग की सलमान ने, और उमैद आसिफ ने 2-2 विकेट्स हासिल की। हुनैन शाह ने 1 विकेट हासिल, लेकिन अच्छी तेज बॉलिंग की है। काशिफ भट्टी विकेटलेस रहे, 20 रन दिए 7 ओवर में, लेकिन कंट्रोल जरूर दिया उन्होंने मिडिल में। हुसैन ने 1 विकेट हासिल की। उस्मान कादिर ने अच्छी स्पिन देखने को मिली, अच्छा कंट्रोल देखने को मिला। 7 ओवर्स में 36 रन दिए और 2 विकेट्स हासिल किए, और इनिंग को 199 रन पर सिर्फ ही महदूद रखा। जहां आज टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने की दावत मिली लाहौर वाइट्स को, जल्दी ब्रेक थ्रू दिलाया सलमान ने। लेग साइड में क्लिप किया था फाइक बाट ने, एक दूसरे एंड पर अहमद शहजाद एलबीडब्ल्यू आउट हुए। फाइक बाट ने इस गेंद का पीछा किया, विकेट कीपर बुकाई दे बैठे। दिलकश स्ट्रोक था, अच्छा आगाज किया था उमर अकमल ने, लेकिन फिर जल्दी को वापस जाना पड़ा। कासिम अकरम ने आसान कैच लिया, लेकिन यहाँ से तैयब ताहिर ने मुजाहिमत के दौर का आगाज किया। उनके साथ कप्तान मौजूद थे, दोनों एंड से स्ट्रोक्स खेले गए। तैयब बहुत अच्छे लग रहे थे इस विकेट पर, चार्ज भी उन्होंने किया। उस्मान कादिर को ये बैकफुट पर जो उन्होंने छक्का लगाया, ये काबिल दीद था, नाकाबिल यकीन
शॉट था, यहाँ लगता था कि दोनों की जानिब से बड़ी इनिंग्स देखने को मिलेगी, लेकिन फिर बोल्ड हुए इन स्विंगर पर उस्मान कादिर ने फिर आकर 2 विकेट हासिल की। अच्छा स्टंप किया विकेट कीपर जुनैद अली ने। और उसके बाद उस्मान कादिर ने बहुत शानदार कंट्रोल से बॉलिंग की है। कामरान अफजल की इनिंग का आगाज किया था अच्छे शॉट के साथ। ये वो पार्टनरशिप थी जहां पे हसन मोहसिन और कामरान ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया। यहाँ पे इस तरीके से शॉट्स देखने को मिले, काफी पॉजिटिविटी नजर आई दोनों यंगस्टर्स में। और फिर विकेट हासिल की, बड़ी विकेट थी हसन की, नैन शाह ने विकेट हासिल की और एक वो जो पार्टनरशिप को तोड़ा कामरान अफजल। लेकिन दूसरे एंड पे बहुत शानदार शॉट्स खेलते हुए नजर आए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। एक ओवर में 3 चौके भी हासिल किए। अहमद दानियाल ने एंड पे अच्छा साथ दिया। कामरान का जो मोमेंटम रिक्वायर्ड था तो दानियाल की फ्री हिट्स जिस तरीके से उन्होंने खेलते रहे, क्योंकि लाइसेंस था उनके पास बड़ी हिट्स खेलने का, और कामयाबी से फिनिश किया इस इनिंग और एक मोमेंटम अपनी टीम को दे दिया। 200 रन बनाना है लाहौर ब्लूज को यहाँ जीत के लिए। तो इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खाने का वक्फा है, जिसके दूसरी जानिब हम आपको फिर मिलेंगे।
एक बार फिर आपका खैर मकदम है पोठोहार के इस खूबसूरत इलाके में, जहां पर पाकिस्तान कप की आज इब्तिदा हुई है। लाहौर बनाम लाहौर वाइट्स और ब्लूज का ये मुकाबला है, जिसे आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त देखते हैं। 199 रन बना सकी लाहौर वाइट्स की टीम। उनका आगाज खासा तबाहकुन था, क्योंकि पहले 5 में से 4 बैट्समैन डबल फिगर में नहीं आ सके। तैयब ताहिर ने 42 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, और उसके बाद हसन ने 33 रन बनाए, 2 विकेटें हासिल की सलमान और उमैद ने नई गेंद के साथ। और बाद में उस्मान कादिर ने अपनी लेग स्पिन बॉलिंग का जादू यहाँ पर जगाया। उनके पूरे 9 ओवर्स देखने में नहीं आए, 36 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। अच्छे कंट्रोल के साथ बॉलिंग की उस्मान कादिर ने। तो जवाबी दौर अब शुरू होने को है। काशिफ इब्राहिम जो हैं, हाशिम इब्राहिम इमरान भट्ट के साथ इनिंग्स का आगाज करने के लिए पहुंचे हैं। सलमान भट्ट बहुत अच्छी तरह जानते हैं हाशिम इब्राहिम को। मजीद उनके बारे में उन्हीं की ज़बानी। जी बहुत शुक्रिया तारिक भाई। हाशिम इब्राहिम बिलाशुबा बड़े टैलेंटेड बैटर हैं, और इस सीज़न इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ और एक सेंचुरी और एक निस्फ सेंचुरी अभी तक बना चुके, जो 3 मैचेस इन्हें मिले और इम्प्रेसिव रहे। उसमें देखना होगा कि आज अपना लिस्ट ए करियर में अच्छा बॉल था। और अच्छी चीज़ ये कि हाशिम का बैट जो था बॉडी के करीब रखा उन्होंने, और सुबह जिस तरह हमने देखा कि ओपनर्स बॉल को चेज कर रहे थे, दूर वाले बॉल के पीछे जा रहे थे, वो चीज़ अवॉइड की। तो अर्ली डेज हैं, हल्की फुल्की मूवमेंट आज सुबह से है, धूप उस तरह से निकली नहीं। तो देखना होगा कि बैटर्स किस तरह पहले 10 ओवर्स में किस तरह इसको टैकल करते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सबसे मुश्किल पोजीशन है। अगर आप पोठोहार में हैं, विंटर क्रिकेट है, तो ओपनिंग ये सबसे मुश्किल काम होता है। वो हम देख सकते हैं इस बार जो है गेंद पहुंची नहीं दूसरी स्लिप तक, लेकिन ये बेहतर लाइन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें राइट हैंडर को। जी बहुत अच्छी लाइन है, और 2 स्लिप्स हैं और गेंद बाहर की तरफ निकाल रहे हैं जो अहमद बशीर हैं, और बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल किया। और आज सुबह भी हमने देखा कि लाहौर ब्लूज़ के बॉलर्स ने भी बहुत ही अच्छी लाइन के ऊपर दिन का आगाज़ किया, और बाय एंड लार्ज पूरा दिन ही उन्होंने अच्छे एरियाज में, अच्छे चैनल्स में बॉलिंग की। बैकफुट पर जाहिर है ये सहल रहेंगे। ये बड़ा दिन है हाशिम इब्राहिम के करियर में। हाल ही में इनने लाहौर में अपनी अव्वलीन फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई, और आज लाहौर वाइट्स के जो दोनों ओपनर्स थे, दोनों नौजवान उमैर दानियाल और मोहम्मद फाइक, वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन ये चाहेंगे कि यहाँ अपना निशान छोड़कर जाएं। जी बिल्कुल, अच्छा आगाज़ इनके लिए बेहतरीन होगा, और अगले मैचेस में जो है उनका एतमाद बढ़ेगा अगर आज अच्छा आगाज़ करते हैं। बहुत ही शानदार गेंद, बड़ी अच्छी लाइन से अवे स्विंगर, और हाशिम बीट हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि दूर नहीं जा रहे बैट को लेके। वो गलती अभी तक नहीं दोहराई जो सुबह हमने ओपनर्स की तरफ से देखी। और एक चीज़ और जो मैं जहन में आती है इनको देखकर, कि यंगस्टर्स को नए बॉल के ऊपर अर्ली ऑन हमने देखा, सुबह दोनों ओपनर्स यंगस्टर आए, और अभी भी फेस जो कर रहे हैं वो हाशिम इब्राहिम अपने डेब्यू पे कर रहे हैं। तो सीनियर प्लेयर्स वाला जो रोल है वो इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी विकेट के करीब आ गए थे। रिजवान हुसैन माजी में ये ओपनिंग करते रहे, उनके बारे में देखा जा सकता था। जुनैद अली ये भी टॉप ऑर्डर में खेलते रहे सेंट्रल पंजाब के लिए जब खेल रहे थे पाकिस्तान कप में, क्योंकि ये सबसे मुश्किल पोजीशन है। अगर आप नए आ रहे हैं, आप ओपनर हैं, लाहौर से आ रहे हैं मज़ीद नॉर्थ की तरफ, तो ये और मुश्किल पोजीशन बन जाती है इस मौसम में ख़ास तौर पर। लेकिन ये आबैल मुझे मार, ये वैसी गेंद थी। जी हाँ, चकमा देना था बैटर को, लेकिन अपनी टीम को दे बैठे। इन स्विंग करना चाह रहे थे, और बहुत लूज गेंद, ये कंट्रोल से बिल्कुल बाहर, और विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं किसी तरह भी इसको रोकने का। यहाँ पर इन स्विंग
हुआ ज़रूर, लेकिन वहाँ जहाँ ना कीपर था ना बैटर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इन स्विंग करते नहीं है, इसलिए फील्डर भी फाइन लेग की बजाय वो लॉन्ग लेग पर है। शानदार बॉलिंग, बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ, और इस ओवर में 12 उन्होंने आउटसाइड एज को बीट किया अहमद ने। एक ओवर के बाद स्कोर है 5। लाहौर ब्लूज का बेंच आपने देखा, जहां पर कामरान नजर आए थे, जो उनके हेड कोच हैं। कामरान खान माजी के क्रिकेटर हैं। आमिर जमाल, जी हाँ, ये इनका एक ज़माने में होम ग्राउंड था आमिर जमाल का। यहाँ बहुत सी क्रिकेट खेली, 24 में से ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो इन्होंने यहीं पर खेले। तो 200 रन का हदफ है 45 ओवर्स में। निस्बतन चैलेंजिंग पिच पर ओपनर्स की सोच होनी क्या चाहिए कि टेस्ट मैच की तरह की बैटिंग की जाए यहाँ? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ मेरिट पे खेलना है। और इनिशली 2 नए बॉल हैं, थोड़ा सा पिच में मदद रही है वेदर की वजह से, तो अर्ली ऑन आपने गलत शॉट नहीं खेलना, बॉडी से अवे नहीं खेलना। रन्स हैं पिच के अंदर, और यहाँ देखिए एक और 5 रन्स बनेंगे, और बॉलर्स अपनी लाइन लेंथ पे काबू नहीं रख पा रहे, और ये बड़ा ज़रूरी है इस छोटे टोटल को डिफेंड करने। आपके मुंह की बात जो है वो छीन ली बॉलर ने। रन्स हैं इस पिच पे किसी भी तरह से। जो बॉलें हम देख रहे हैं, 7 वाली पिच पे भी रन्स है। यहाँ लेकिन अगर लाइन से हटेंगे तो जाहिर है फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है इस पिच में, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, भी उतना ही ज़रूरी है। इस बार ऑफ द सीम कट हुई और बाल बचे। ये गेंद जो है लेंथ से कट हुई और बिल्कुल बैट्समैन जो है बेबस हो जाता है नई गेंद पर जब इस तरह से सीम मूवमेंट हो। बाउंस भी था। आज धूप अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं निकली अभी तक, और उसी की वजह से मूवमेंट जो कि एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट आवर होगी वो प्रोलॉन्ग कर गई, और अभी तक अच्छी खासी मूवमेंट हमें न्यू बॉल पे देखने को मिल रही है। और बैटर्स को थोड़ी आज अच्छा टेक्निकल डिफेंस दिखाना होगा। एक बार फिर बाउंस, पेस, ये अच्छी लाइन। आप की बात से मुझे याद आया कि इसी वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, इसके अंदर जब इंडिया ने 3 विकेटें गंवा दी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो विराट कोहली ने केएल राहुल से ये कहा था कि टेस्ट मैच की तरह खेलना। तो जैसे आपने अभी पूछा कि क्या टेस्ट की तरह खेलना, और अगर इतनी मूवमेंट है और बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो अगर आप आधा घंटा टेस्ट की तरह निकाल भी दें तो आगे जाके खुद ब खुद वनडे बन जाएगा। जी हाँ, आपने दरअसल उस सेशन को देखना है और रिस्पेक्ट करना है उससे। ये तकरीबन अनप्लेएबल होल चले, बैक साइड में खेलने को देख रहे थे। और ये ऐसा फॉर्मेट है सलमान, ये जो 50 ओवर की क्रिकेट है, ये जहाँ पर बिल्कुल फ्लैट बैटिंग कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर ये कभी कभार ये T20 की एक्सटेंशन हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर ये टेस्ट मैच के ही करीब है। ये 50 ओवर का जो फॉर्मेट है, ये टेस्ट मैच की एक्सटेंशन लगता है, ना कि T20 की। और एज ए प्रोफेशनल आपने कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करना है। जो आपकी अडेप्टेबिलिटी है, जो आपने अपने आप को
कह लीजिए कि उस रंग में ढालना है जहाँ पर सिचुएशन की क्या डिमांड है, पिच कैसी है, उस तरह की क्रिकेट आपने खेलनी। और आज जो है टेक्निकल टेस्ट है प्लेयर्स का, पिच में मूवमेंट है, बॉलर्स को अच्छी मदद मिल रही है इन द एयर ऑफ द पिच, और ऐसे में फिर आपकी जो कॉम्पिटेंस है एज ए जेन्युइन ओपनर और एज अ बैट्समैन, आपका जो टेक्निकल आपकी साइड है वो कितनी स्ट्रांग है, इसका आज कड़ा इम्तिहान है। फिर से लाइन से हट गए थे, मूवमेंट कंट्रोल में नहीं आ रही। उमर अकमल इस गेंद तक नहीं पहुंच सके। 4 रन का और इजाफा। और ऐसी फ्री बीज जो हैं वो देने से गुरेज करना चाहिए। सिर्फ 199 रन हैं बचाने के लिए लाहौर वाइट्स के पास। देखिए थोड़ा सा शायद बॉलर्स जल्दी विकेटें लेना चाह रहे हैं और जोर लगा रहे हैं, हालांकि ऐसी पिच है जिसमें इतना कुछ है बॉलर्स के लिए कि अगर वो सिर्फ पेशेंस से एक जगह बॉलिंग करें तो जिस तरह का वेदर है, ओवरकास्ट कंडीशन है, बॉल मूव हो रहा है, तो काफ़ी चांसेस बन सकते हैं बैटर्स को आउट करने के। और जो बॉल अच्छी जगह पे हमने देखे हैं वहाँ पे बैटर्स बहुत तंग हुए हैं। यहाँ दूसरी इनिंग्स में और ज़्यादा मूवमेंट है, क्योंकि आसमान पर ये बादलों का जो साया सा हो गया है, उससे धूप और कम हुई। ये महंगा ओवर 11 रन दे चले आमिर, स्कोर है 16। पांच रन बनाए हैं इमरान भट्ट ने। हाशिम इब्राहिम अभी तक स्कोरर्स की सहमत नहीं दे सके। ये देखिए यहाँ एजाज चीमा जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि बॉलर्स जो हैं वो सही लाइन में बॉलिंग करें। ये जो मैट बिछा हुआ है, ये जो उसके अंदर बॉलिंग करें। जी बिल्कुल। जो लाइन का पाथ है वो पूरा पिच पे ड्रॉ किया गया था ये स्ट्रिप्स को लगाकर, और इसका मकसद बिलाशुबा यही था कि आप इसके अंदर बॉल को पिच कीजिए और मैक्सिमम स्टंप्स में बॉलिंग कीजिए। और एजाज चीमा का जो आइडिया था इस प्रैक्टिस को कराने का वो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अब एग्जीक्यूशन का वक्त है। और यहाँ पर बॉलर्स जितना इस पाथ के अंदर बॉल करेंगे उतना बैटर्स के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। और ये बेहतरीन मिसाल थी कि एक जो कोच है वो क्या कर सकता है, अपने बॉलर्स को किस तरह की सोच दे सकता है पिच के एतबार से। उम्दा शॉट, पिल पड़े इस बार, शॉट और वाइड, और सजा भी अहमद बशीर के लिए। बहुत खूबसूरत शॉट। जब भी विड्थ मिलेगी, जब भी रूम मिलेगा ऑफ साइड से बाहर, तो बैटर्स के लिए वो फ्री हिट बन जाता है वाइड बॉल क्रिकेट में। और ऐसी पिच पे जहां पर मूवमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे अगर शॉर्ट बॉल करेंगे तो वो वाहिद सेफ ऑप्शन बनती है बैटर के लिए, और उसका पूरा फ़ायदा इमरान भट्ट ने उठाया। पूरे कंट्रोल में थे इस स्ट्रोक के। कोई रद्द-बदल नहीं ऑफ साइड की फील्ड में। अच्छा सिंगल पिंच किया, गेंद को गिराया, दौड़े चले गए। बहुत अच्छी क्रिकेट ये। बाउंड्री के बाद अगला बॉल बॉडी के करीब खेले और दोनों बैटर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और 1 रन। और स्ट्राइक रोटेशन से प्रेशर नहीं आने देंगे अपने ऊपर भी, बल्कि ऑपोजिशन पे इस प्रेशर को शिफ्ट कर देंगे। ये अच्छा स्टार्ट है। हालांकि इतनी मूवमेंट है, बॉल बीट हुए हैं, फिर भी 20 रन बन चुके हैं और तीसरा ओवर है जिसमें जाहिर है बॉलर्स के जो 2 वाइड बॉल वाली बाउंड्रीज हैं उन्होंने भी बहुत मदद की है। यहाँ हम वापस आते हैं कि एक कोच जो है वो क्या कर सकता है, बैट्समैन को बता सकता है कंडीशंस के एतबार से कि कौन सी शॉट्स यहाँ खेलने हैं। बॉलिंग कोच जो है वो आपको लेंथ और लाइन के बारे में बता सकता है। एजाज चीमा ने ये पूरी कोशिश की कि बॉलर्स जो हैं वो इन लाइंस को अपनाएं जहाँ से गेंद जो है वो विकेट्स के आसपास रहे, लेकिन जाहिर है कि आप घोड़े को वही पानी तक ला सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते। एक कोच भी जाहिर है वो इतना ही कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, घोड़े भी ज़िद्दी होते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर घोड़ा प्यासा हो, कोई हो सकता है पानी पी के आया हो।
और आजकल तो घोड़े गैटोरेड भी पीते हैं। अच्छी चीज़ जो हाशिम में हम देख रहे हैं कि बॉडी के करीब बॉल को आने दे रहे हैं, चेज नहीं कर रहे, और यही की रहेगी। अगर ऐसा करते हैं तो चांसेस हैं कि ये ओपनिंग पार्टनरशिप सरवाइव करेगी और रन्स भी बनेंगे। जी हाँ, और शायद उसकी वजह ये है कि वो बॉडी खुल भी नहीं रही, अपनी बॉडी को खुलने भी नहीं दे रहे कि बल्ला और हाथ जो हैं वो दूर चले जाएं। ये अच्छी क्रिकेट, अच्छी ओपनिंग बैटिंग। 3 ओवर्स के बाद 21 किसी नुकसान के बगैर। आमिर जमाल अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे पवेलियन से। जाहिर है कि इनसे बड़ी उम्मीदें हैं लाहौर वाइट्स को। उनकी टीम के स्ट्राइक बॉलर हैं जो पेनिट्रेट कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा पुरजोश नहीं होना है इन कंडीशंस को देखकर, नई गेंद को इतना ज़्यादा सीम होते हुए देखकर। सही जगह पर अगर गेंद गिराएंगे तो हमने देखा था हुसैन तलत भी विकेट ले गए थे, अनप्लेएबल गेंद उनकी भी हो गई थी एक सेट बैट्समैन तैयब ताहिर के सामने। बिल्कुल, लगातार अच्छी जगह पे बॉलिंग करने की ज़रूरत है और पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी। एज अ बैटर भी अगर आप बहुत बैटिंग कंडीशंस में होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने शुरू करें तो आउट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह बॉलर्स के लिए भी इस तरह की कंडीशंस में पेशेंस ज़रूरी है। जब जमाल जोर लगा रहे हैं, शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, इस पिच के ऊपर थोड़ी फुलर लेंथ जो है उसमें खासी स्विंग और सीम देखने को मिल रही है और बैटर्स वहीं से परेशान होंगे। जितना शॉर्ट बॉल करेंगे उतना बैटर्स के लिए आसानी होगी और बैटर्स के साथ साथ मुश्किलात जो हैं वो उम्र अकमल के लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि बॉल गुजरने के बाद भी देखे बॉल स्विंग हो रहा है और जाहिर है उमर जो है वो कीपिंग बहुत रेगुलर नहीं करते। ऐसे में जब बॉल इतना स्विंग हो रहा है तो ज़रूरी है कि लाइन लेंथ अच्छी हो। यार उनका काम और मुश्किल बना रहे हैं आमिर, जो बैट्समैन के दोनों तरफ इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो विकेट कीपर को और ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं। देखिए इस बार भी आखिरी लम्हे पर संभाल सके। जाहिद फजल जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में भी थे, 1992 की वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे। सलमान ज़ाहिर है आप भी उनके साथ जो है उनके खिलाफ खेले होंगे कुछ और हवा में और हाथों में भी। और ये विकेट, ये सही जगह पर बॉलिंग करने का सिला मिल गया आमिर जमाल को और इमरान को जाना होगा। हसन ने कैच लिया। जी हाँ, डेब्यूटेंट का एक अच्छा कैच सेकंड स्लिप के अंदर, तेज कैच था और यहाँ आमिर जमाल ने एक बॉल ऐसी जगह किया जहाँ उन्हें तमाम बॉल करने चाहिए और इमरान बट न जाने क्या सोच रहे थे, वो तो खेले ही थर्ड मैन की तरफ है जबकि 2 स्लिप्स वाइड खड़ी थी और एक आसान कैच उन्होंने सेकंड स्लिप को दिया और लाहौर ब्लूज़ को पहला नुकसान। अच्छा खेलते खेलते गलत शॉट का ऑप्शन लिया इमरान बट ने, 10 रन बना सके, 23 पे 1 लाहौर ब्लूज़।
रिजवान हुसैन नए आने वाले बैटर नेचुरली बड़े एग्रेसिव बैटर हैं और अपने शॉट्स को खेलते हैं और बड़ी दिलेरी के साथ अपनी बैटिंग करते हैं। जितनी देर भी खेलते हैं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और आज इनकी टीम को इनसे अच्छे स्टार्ट की उम्मीद होगी क्योंकि स्टार्ट अच्छा होते होते विकेट गिर गई ऐसे मौके पर जहां पर अभी इनिंग्स बिल्ड हो रही थी। और आज के ये चौथे टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं जिन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर पोक किया है और यहाँ पर तो ऐसे लगा है कि जैसे उनको याद ही नहीं रहा हो कि स्लिप खड़े हैं। फिर तेज गेंद ऑफ द विकेट और ज्यादा तेज आई और उछली भी रिजवान हुसैन की लगी है जाकर उनकी रान पे। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और रिजवान हुसैन उसको कंप्लीटली मिस कर गए। एट टाइम्स ये अच्छा भी होता है एक बैटर के लिए कि आते ही एक ऐसा बॉल लग जाए तो आप जाग जाते हैं और आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आंखें खुली रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में बॉलर अगर आपकी आंखें खोल दे तो उम्मीद है कि काफ़ी देर तक खुली रहती हैं। एक और वाइड बॉल और वही प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी, लगातार एक जगह बॉल कराने में नाकाम नज़र आ रहे हैं आमिर जमाल। हालांकि अच्छी खासी मूवमेंट उन्हें मिल रही है इन द एयर ऑफ द पिच और बैटर्स के लिए बहुत सी परेशानी का सबब बन सकते हैं अगर अपनी लाइन पे बॉलिंग करें। यहाँ पर उमर अकमल ने सेकंड स्लिप के आगे से ये बॉल को कलेक्ट किया। 45 ओवर्स बॉलिंग की लाहौर ब्लूज ने। ऐसी पिचेस पर वाइड हो जाती हैं वनडे क्रिकेट में, लेकिन इनने 14 वाइड गेंदें कर दी हैं लाहौर वाइड से। अभी ये चौथा ओवर ही खत्म नहीं हुआ, 14 वाइड्स के रन जो हैं ये दे चुके हैं। इस गेंद को सरका दिया, एक रन का इजाफा। अच्छी फील्डिंग की फाइक बट ने। और अब एक और मुश्किल है आमिर जमाल एंड कंपनी के लिए कि इस वक्त राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। हम बात कर रहे थे कि टेस्ट मैच की तरह की बैटिंग की ज़रूरत है और टेस्ट मैच में ये शॉट नहीं खेला जाता। ये थर्ड मैन की तरफ ये बिल्कुल कैचिंग प्रैक्टिस थी। 2 स्लिप्स जब मुंतज़िर थी तो वहीं आसानी से क्या दे गए। ज़्यादा हिलना भी नहीं पड़ा अपनी जगह से हसन को। ये दोनों तरफ लगता है अहमद शहजाद को बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि पहला बॉल भी उनके आगे से उमर ने पकड़ा और ये वाला बॉल भी अहमद की आगे से पकड़ा है। सो दोनों स्विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में जब एक बॉल सही जगह पे होता है तो बैटर के लिए वो बाले जान बन जाता है क्योंकि आप बार बार स्प्रे कर रहे होते हैं बॉलिंग को। और ऐसे में एक बॉल अच्छी जगह से जब हो जाए तो कई बार बैटर्स जो हैं वो बेबस नज़र आते हैं। ये देखिए सलमान, जब गेंद बहुत ज़्यादा मूव हो रही होती है, स्विंग हो, तो बैट्समैन को यही नसीहत की जाती है कि आप जो है वो एक ही स्विंग को खेलें। और यहाँ जब दोनों तरफ स्विंग कंट्रोल ना हो रही हो, फास्ट बॉलर जो है ये क्या कर सकता है। देखिए एक बार तो फिर ये गेंद बहुत ज़्यादा वाइड थी और उसका फ़ायदा उठा लिया और 4 रन यहाँ पर मिल गए। गेंद जो है टो पर लगी थी हाशिम के। जी तारिक भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जितने भी यंग फास्ट बॉलर्स अगर वो सुन रहे हैं इसको तो देखिए, अगर आपका स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप क्रॉस द सीम बॉल पकड़ सकते हैं। और आजकल तो दुनिया में बहुत सारे न्यू बॉल बॉलर्स जो हैं वो क्रॉस सीम से बॉलिंग करते हैं और क्रॉस सीम के अंदर आपको बाउंस में वेरिएशन मिल सकती है, स्पीड में वेरिएशन मिल सकती है क्योंकि जब सिलाइज लगती है पिच पे तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस एट टाइम मिल जाता है और जब लेकर लगता है तो फिर आपको बॉल स्किट होता है क्योंकि बॉल नया है। जी हाँ, एक और सीमा डिलीवरी थी, एक और शॉर्ट गेंद। ये कतई अच्छी बॉलिंग नहीं और उसका भरपूर फायदा उठाया। अच्छा शॉट खेला हाशिम ने। 2 चौकों के साथ 19 ओवर का खात्मा किया। 34 पर 1।
अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हाशिम, दिलेरी के साथ खेल रहे हैं और इस शॉर्ट बॉल को वॉच किया एंड तक। हालांकि बॉल इतना बाउंस नहीं हुआ, लेकिन उसको क्योंकि आखिर तक देख रहे थे तो पिवट करने में कामयाब रहे और उसको गैप में प्लेस कर दिया और अच्छा आगाज़ किया इन्होंने बैटिंग का। यकीनन इस पिच पे ओपनर्स के लिए एक कड़ा इम्तिहान है, स्पेशली पहले 10 ओवर्स। अराउंड द विकेट आए हैं अब अहमद बशीर। विकेट सी वो वाहिद रास्ता है जिससे लाहौर वाइट्स की टीम इस मैच में अब कामयाबी हासिल कर सकती है और कैप्टन को बहरहाल अटैकिंग रहना है थ्रू आउट। इस बार हैरान किया यॉर्कर के साथ, लेकिन एक रन हासिल कर लिया। और इतने ज़्यादा एक्स्ट्राज के रन देना है और इतनी ज़्यादा वाइड बॉलिंग करने का एक नुकसान ये है कि ये गेंद की जो सीम है वो जल्दी नरम हो जाएगी। मुखालिफ टीम को ज़्यादा तगो करने के बगैर ही रन्स मिल रहे हैं। और दूसरा नए, क्योंकि जो दोनों बैट्समैन थे वो सेट नहीं थे। हाशिम इब्राहिम भी सिफर पर थे पिछले ओवर से पहले और रिजवान बिल्कुल नए आए थे। तो इस तरह के साइडर मिल जाते हैं बैट्समैन को बगैर कुछ किए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, जितना देर आप बैटर को रन से दूर रखें उतनी देर उसकी वनरेबिलिटी ज़्यादा रहती है और यकीनन जब उसे रन्स मिलते हैं तो वो खासा रिलैक्स फील करता है। और यहाँ पे हाशिम 2 बाउंड्रीज़ के साथ बिलाशुबा उनका इत्मीनान में इजाफा हुआ है और शुरू से एक चीज़ जो अच्छी कर रहे हैं कि बॉडी के पास खेल रहे हैं और अभी आउट ऑफ ऑल जितने भी बैटर्स ने बैटिंग की है नए बॉल के अगेंस्ट ये सबसे इजी लग रहे हैं अभी तक। आई होप कि ये कमेंटेटर्स का अर्स ना हो। यहाँ इस बार थोड़ा सा लूज शॉट खेलने चले गए, लेकिन जाहिर है कि ये बिल्कुल नए हैं। ये अच्छी डिलीवरी भी थी क्योंकि ये पहली लाइन थी इसकी, वो यूं लगा कि गेंद अंदर कोई आ रही है, पड़ने के बाद बाहर चली गई। तारिक भाई एक सवाल है, आप भी क्रिकेट बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जाहिर है जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी तब से आप इस गेम को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और शॉट अक्रॉस द लाइन खेला, लकी रहे इस बार पॉइंट के सर के ऊपर से एक ही रन बनेगा और फील्डर भी तैयब ताहिर थे और खुशकिस्मत हैं कि उनकी रेंज से बाहर था। कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त अक्रॉस द लाइन जाने की और स्पेशली जब गेंद बाहर निकल रहा है तो ये तो दुगना रिस्क बनता है। और ऐसा है कि जैसे प्री प्लान स्ट्रोक खेला कि किसी तरह बॉलर के ऊपर प्रेशर डाला जाए, जबकि ऑलरेडी 5 ओवर्स नहीं हुए और 36 रन हो चुके हैं और ज़रूरत जिस रन रेट की है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे किसी किस्म की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैटर्स जो हैं शायद आजकल इम्प्रेशन उनके ऊपर ये है कि तेज ही खेलना है, खुला ही खेलना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के ज़रूरत क्या है टीम को। इस बार नरम हाथों के साथ खेला, बहुत ज्यादा फाइन, एक ही रन यहाँ पर बन सका। हालांकि दूसरे के लिए ये वापस जा सकते थे। जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये थी कि पहले जब क्रिकेट होती थी तो कोचेस इतने ज़्यादा नहीं थे, कोचिंग का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन प्लेयर्स में आपको टेक्निकल बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आती थी। लेकिन आज जबकि कोचेस का एक कह लीजिए कि भरमार है और हर जगह पे हर लेवल पे इवन क्लब्स के अंदर भी कोचिंग है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह हो सकती है इसकी? इस पे करते हैं बात। एक और वाइड गेंद, एक मुमकिन वजह ये हो सकती है कि जब आपके इर्द गिर्द जो है कोचेस नहीं होते तो आपको खुद ज़्यादा सोचना पड़ता है। एक खिलाड़ी को अपने खेल के मुतालिक जो है कि वो कहाँ बेहतर हो सकता है, क्या कमज़ोरी है। और आजकल मुमकिन है कि खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को रहमो करम पे छोड़ देते हैं और फिर
खराब शॉट खेला हाशिम ने ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद विकेट कीपर के पास गई। 38 पर 1। कि शायद ये भी वजह है कि आजकल अगर आप बैट एंड पैड अच्छा खेलें या अच्छा बॉल छोड़ें तो उस तरह से सराहा नहीं जाता, लेकिन एक बड़े हिट को उसके इंटेंट को ही बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को सराहा ज़्यादा जाता है, जिस चीज़ की चर्चा ज़्यादा की जाती है, यंगस्टर्स ऑटोमेटिकली उस तरफ माइल हो जाते हैं। और शायद ये भी एक वजह है कि उस तरफ ध्यान कम जाता है, जबकि इनकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग होने के की जो कह लीजिए बेसिक रीज़न है वो उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ होगी और उसके ऊपर वो अपना बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं। अहमद दानियाल नए आने वाले बॉलर अपनी बॉलिंग का आगाज कर रहे हैं। जी हाँ, बेसिक्स जो हैं वो तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दौड़ने से पहले आपको जो है वो चलना आना चाहिए। और ये आप देखिए यहाँ पर ये कमज़ोर बेसिक्स थी स्विंग बॉलिंग के सामने, जो आज सुबह हमने देखी। अहमद शहजाद जो हैं, अहमद शहजाद शायद इन स्विंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और खेल ना सके उसको। और ये भी जो विकेट गिरा है ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये बॉल था और लो परसेंटेज शॉट था, यानी हाई रिस्क था ये शॉट में 2 स्लिप्स की मौजूदगी में। अहमद शहजाद तो खैर बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, लेकिन सुबह मुश्किल वक्त था जब वो बैटिंग कर रहे थे। और उमैद आसिफ बहुत लाजवाब बॉलिंग की आज उन्होंने, अच्छी लाइन अच्छी लेंथ, दोनों तरफ बॉल को स्विंग किया। आमिर जमाल को 2 ओवर्स के बाद हटा लिया गया। अहमद दानियाल बासलाहियत बॉलर हैं, 20 विकेटें हासिल कर चुके हैं अपने मुख्तसर से करियर में। दरअसल ये इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फिगर्स हैं। इस पिच पर बहुत अच्छे लगे थे पिछले बरस, इन्हें बहुत मुतासिर किया था अपनी बॉलिंग कारकर्दगी से। उनका डेब्यू ईयर था, इस साल इंजरी के बाद वापस आए, लंबे स्पेल किए हैं इन्होंने लाहौर में, लाहौर के मैचेस में। रिजवान हुसैन एक एग्रेसिव बैटर हैं और इनकी जो आउटलुक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज से वो एग्रेशन जो है वो शो होती है। और ऐसा बैटर जब फ्लो में होता है तो वो ऑपोजिशन के लिए बड़ा इंटिमिडेटिंग बन जाता है और उसकी प्रेजेंस जो है वो तंग करती है बॉलर्स को। तो बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को मौका दें आज उस तरह की इनिंग्स खेलने का जो इनके मिजाज से मिलती है। जहाँ इस बार फुटवर्क ना होने के बराबर था, 2 रन का और इजाफा। आज सुबह से ही फुटवर्क की किल्लत रही है मैच में। ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि टेक्निकल बात अभी काफ़ी देर से चल रही है, शायद पावर हिटिंग के ऊपर जो एक्सेस है बातचीत का और जो ट्रेंड है, जाहिर है पावर हिटिंग जब आप करते हैं तो आपका फुटवर्क जो है वो बड़ा मिनिमम हो जाता है, क्योंकि आपने बैट के लिए एक क्लियर पाथ बनाना होता है। तो आप बॉल के नज़दीक नहीं जाते, आप रूम क्रिएट करते हैं। और बहुत बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद आई नहीं ठीक तरह से बल्ले पर। दूसरे रन के लिए भी वापस लौट गए। और यहाँ पे रिजवान हुसैन ने अपनी जो फ्रंट फुट है उसको लेग स्टंप की तरफ निकाला और वही पाथ जिसकी हम बात कर रहे थे, अपने लिए वही पाथ क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बॉल को मिडल नहीं कर पाए। ये देखिएगा, ये देखें, मिड ऑन की तरफ अपनी टांग को निकाला और अपने बैट का रास्ता क्लियर किया। लेकिन क्या अभी इस टीम को इसकी ज़रूरत है? यहाँ पे 5 ओवर्स में 42 रन बन चुके और 200 रन को चेस करना है, 4-4.25 रन की एवरेज चाहिए। और पहला मैच है, कोई रन रेट भी नहीं ऐसा कि जब आपने रन रेट बीट करना। यहाँ बल्ला जो है वो तब्दील करना पड़ा है। को पीएसएल फ्रेंचाइज वाले तो ये मैच नहीं देख रहे। जाहिर है मैच तो सभी देख रहे होते हैं, नजर होती है डोमेस्टिक क्रिकेट पर सभी स्काउट्स की भी।
ये अच्छी क्रिकेट, इस बार गेंद को अपने ज़्यादा करीब आने दिया, बिल्कुल निगाहों के नीचे डिफेंड किया। 6 ओवर्स के बाद 42 पर 1। बहुत खूबसूरत बॉल, और इस वक्त दरकार भी कुछ यही है कि अच्छी बॉलिंग की जाए, जल्द से जल्द 1-2 विकेटें उड़ाएं, क्योंकि 42 रन पे जा पहुंची है। क्या खूबसूरत चैनल, ऑफ स्टंप के बाहर ये रीजन रहा है आज सारा दिन, यहाँ पर बैट्समैनों के लिए मुश्किलात रही हैं। ये बड़ी टेम्पटिंग लेंथ होती है, अक्सर औकात बैट्समैन डबल माइंड हो जाता है कि इस गेंद को खेला जाए या छोड़ा जाए। हाशिम इब्राहिम ये अपने डेब्यू पर हैं। हल्का सा हवा में बॉल उठा जरूर, लेकिन कोई खतरा नहीं है। जो चीज़ हमें पहली इनिंग में, इनफैक्ट वाइट्स की इनिंग में नजर आई कि लैक ऑफ पार्टनरशिप्स यहाँ पर इन दोनों के दरमियान, गो के थोड़ा सा एग्रेशन या तेजी ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी चीज़ कि पार्टनरशिप जो है वो कोशिश में है कि लगे। अभी भी हल्का फुल्का सा सीम जरूर है। जी हाँ बिल्कुल, हम 7वें ओवर में हैं, कदरे नई गेंद है अभी भी, और अहमद के लिए 2 स्लिप्स ले रखी हैं। रिजवान हुसैन से इनका सामना है, और रिजवान जिस तरह से पिछले स्पेल में भी बात कर रहे थे सलमान बट के, जाने जाते हैं अपनी बड़ी शॉट्स के लिए। अच्छी लाइन है ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि जिस वक्त कप्तान ने आपको 2 स्लिप लेकर दी हुई हो, तो उसमें आपका लाइन ऑफ अटैक भी ऑफ स्टंप से बाहर होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉल करें, और जिस फील्ड की हम बात कर रहे थे, 2 स्लिप्स ले रखी हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद हैं, डीप थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद हैं, दायरे के अंदर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर को रखा गया है, मिड ऑन मिड ऑफ दायरे के अंदर मौजूद हैं। तो इस फील्ड के अकॉर्डिंगली गेंद करनी है पहले पावर प्ले में अहमद को। इस दफा डीप बैकवर्ड पॉइंट, और इस तरीके से आसान, बहुत ही आसान डिपार्चर रिजवान हुसैन का। बड़ा जबरदस्त कैच तैयब ताहिर का, यह सॉफ्ट डिसमिसल रिजवान हुसैन जो आज बड़े शॉट्स के लिए जानने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी अहमद की, इसको नीचा नहीं खेल पाए, गेंद बॉडी से दूर थी, कट करने के लिए गए, काफी देर तक गेंद हवा में रही, और बैकवर्ड पॉइंट पर तैयब ताहिर के महफूज हाथों में यह गेंद गई। इस तरह दूसरी विकेट का नुकसान लाहौर ब्लूज को। रिजवान हुसैन 7 रन बनाने के बाद पवेलियन की जानिब गामजन। चौथे नंबर पर बारी करने आए हैं बड़े पुरएतमाद, बड़े रिलायबल हुसैन तलत। ये ऐसी सूरत हाल में बारी करने के लिए जाने माने जाते हैं, ये लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। 87 लिस्ट मैचेस का तजर्बा, 2000 से जायद रन्स, 35 से जायद की औसत। ये नंबर्स हुसैन तलत का तजर्बा बोलते हैं, इन्हें पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास लिस्ट, पाकिस्तान सुपर लीग, तमाम तर्ज की क्रिकेट खेलने का तजर्बा हासिल है, और आज अपने इस तमाम तजर्बे को बुरुए कार लाना होगा लाहौर ब्लूज की टीम के लिए, जिन्हें 157 रन मजीद दरकार है और 1-2 पार्टनरशिप्स की जरूरत है। जी इतना मुश्किल नहीं है इस वक्त, अगर इस टारगेट को देखा जाए, रन रेट रिक्वायर्ड इतना ज्यादा नहीं,
सिर्फ 4.10 है, लेकिन जो विकेटें गिर रही हैं, इनफैक्ट हमने देखा कि कुछ देर पहले हुसैन डिपार्ट हुए। अच्छी बॉलिंग एंगल से इस बॉल को अटैक किया ऑन द पैड्स। या अच्छे एंगल के साथ ये गेंद अंदर की जानिब आई और हुसैन इसको पूरे तमाद अंदाज से नहीं खेल पाए। ऑन साइड पे खेलने की कोशिश थी हुसैन तलत की, और रिजवान हुसैन जो आउट होकर भी डगआउट में गए हैं। बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पर छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन बड़ा अच्छा कैच तैयब ताहिर का। जो पॉइंट और बैकफुट पॉइंट का रीजन होता है, यहाँ पर बड़ी चाबुक दस्ती के साथ आपको गेंद को रोकना होता है, क्योंकि गेंद बहुत जल्दी आती है इस रीजन में। ऑन साइड पे हिट लगाने गए थे, लेकिन प्रॉपर्ली उसको टाइम नहीं कर पाए। बिल्कुल यही बात है। और इस वक्त जो सूरत हाल है इस मैच की, अगर हम चेज की बात करें कि रन रेट इतना ज़्यादा नहीं है। इस सिंगल के साथ 7 ओवर गए, 45 पे 2। हम बात कर रहे थे रन रेट की कि आज कुछ देर पहले हमने देखा कि पहली इनिंग में भी इनफैक्ट जो अर्लियर ऑन विकेट गिरे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज थोड़ी जल्दी में है। लेकिन इस वक्त चूँकि प्रेशर नहीं है, रन रेट इतना ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग नहीं है, अपनी जो स्किल है, अभी जैसे हमने देखा हुसैन तलत के ऑलरेडी 6 सेंचुरीज हैं, तो एक अच्छा वक्त है, एक अच्छा मौका है इनके लिए कि एक 100+ या 50+ रन स्कोर करें। इवेंट का आगाज़ है, एक अच्छे नोट पे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ें आगे। जी हाँ, बिल्कुल। पहली इनिंग्स में भी हमने बहुत से बैट्समैनों को ऐसा देखा कि जल्दबाजी में उन्होंने अपनी विकेट गंवाई, क्योंकि ये विकेट, ये सरफेस ऐसा है एजाज कि आपको अपने आप को अप्लाई करना होगा, आपको थोड़ा वक्त गुजारना होगा रावलपिंडी की इस विकेट पे, और जब आप वक्त गुजार लेंगे तो बैट्समैनों के लिए यहाँ पर फिर रन्स के अंबार लग सकते हैं। वैसे इस वक्त टारगेट भी तकरीबन मिडल स्टंप या ऑफ स्टंप पे है, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का डिलीवरीज जो है वो ऑफ टारगेट हो रही हैं, लेग स्टंप पे ज़्यादा। लेकिन लाइन ऑफ अटैक जो है हमने देखा कि मैक्सिमम अभी जो है वो तकरीबन मिडल एंड ऑफ है बॉलर्स की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी लाइन ऑफ अटैक की वजह से स्लिप में फील्डर ले रखा है कप्तान, और बहुत ज़रूरी है साद नसीम, इन्हें भी उसी तरह की प्रोएक्टिव कप्तानी करनी है जिस तरह आज इमरान बट की तरफ से हमें देखने को मिली कि थ्रू आउट द इनिंग्स उन्होंने अटैकिंग फील्ड सेट के साथ अप्रोच किया, और इसी वजह से 199 पर ऑल आउट किया लाहौर की टीम को सॉफ्टली। और यही इस वक्त की भी ज़रूरत है कि आप अपनी इनिंग को बिल्डअप करें। हालात साजगार, इतना ज़्यादा जो है वो पैनिक नहीं है, पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत भी नहीं कि आप अच्छी पार्टनरशिप लगाएं। और जैसा कि ये सरफेस है, हमने सुबह भी देखा कि बज़ाहिर इसका कलर, इसकी जो हैयत है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है बैटर्स के लिए, अगर आप अपनी गलती से खुद आउट ना हो। या हाशिम इब्राहिम ये अपना पहला मैच खेल रहे हैं। पर सही तरह टाइम नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा शॉर्ट फाइन पर फील्डर की जानिब से। और हाशिम से मुतालिक हम बात कर रहे थे कि बड़ा अहम होता है कि जब आप अपना पहला मैच खेलें, आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है, आप लंबी बारी खेलने की कोशिश करें, आप पूरे तमाद अंदाज से इनिंग्स का आगाज करें और अपनी बारी को आगे लेकर जाएं। जो उससे बढ़कर आपके साथ जो कंपेनियन है आपका, वो इतना टैलेंटेड हो, जिसके पास वसी तजर्बा है, तो यकीनी तौर पर आपकी जो इनिंग है वो अच्छी बिल्टअप होती है। बखूबी जायजा लेते हुए हुसैन तलत, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनका मौजूद होना इस वक्त हाशिम के साथ बहुत प्लस होगा उनके लिए। देखें, किसी तरह का कोई रैश स्ट्रोक नहीं है, उन्हें पता है कि ऑलरेडी रिजवान हुसैन एक गलती करके आउट हो चुके हैं, तो इस वक्त हमें विकेट इंटैक्ट रखनी है, कोई भी एरी फेरी शॉट अब नहीं मार रहे। जिस तरह आपने कहा कि यही वक्त की ज़रूरत है, रिजवान हुसैन अभी तक अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया है। ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, ये से 1-2 सीजन काफ़ी बल्की हुआ करते थे,
लेकिन इस सीजन में बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं। कि बाहर बैटिंग में ज्यादा मुतासिर नहीं कर पाए, और इस चीज का ज्यादा दुख होता है जब आपको आगाज मिले, स्टार्ट मिले, लेकिन आप उसको बड़े रन्स में नहीं कन्वर्ट ना कर पाए। एग्जैक्टली और प्लेटफॉर्म भी है कि देखें, इतनी जिसको कहना चाहिए कि बुरी सूरत हाल नहीं है। आप एक मॉडरेट टारगेट के पीछे हैं और उनके पास वक्त था। अभी अच्छे खासे ओवर थे, छठा ओवर चल रहा था जब विकेट गंवाया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर परेशान होना बनता है। अहमद दानियाल की अच्छी गेंद, इसको खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की जानिब, डबल माइंड हुए इस डॉट बॉल के साथ। ओवर का अख्ताम हुआ 8 के बाद 49, 2 विकेट्स के नुकसान पर। well, इस वक्त करंटली लगभग रन बॉल खेल रही है ब्लूज की टीम, और लगता भी यही है कि शायद थोड़ा सा अर्ली फिनिश करने की कोशिश में हो इस गेम को। जस्ट हैंगिंग लेजी शॉट खेलने गए थे, लकी रहे। जी हाँ, इस मोड ऑफ डिसमिसल में हमने काफी प्लेयर्स को ऐसे आउट होते देखा है आज, कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को आप अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहे हैं, आप बॉल की पिच तक नहीं जा रहे, आपकी रीच जो है वो बेहतर नहीं रही। और काफी बैट्समैन को हमने बिल्कुल इस तरह, इसी अंदाज में आज आउट होते देखा है। और हुसैन तलत, जितना तजर्बा इनके पास है, जितने बड़े लेवल की क्रिकेट इन्होंने खेली है, इनसे काफी बेहतरी की तवक्को है। एक और सरप्राइजिंग डिलीवरी, और अहमद बिल्कुल भी जान नहीं पा रहे कि किस वजह से और किस लिए यहाँ पर जो 2 अच्छे बॉल थे वो बीट हुए, अदरवाइज एक आध विकेट यहाँ पर आना था। जी हाँ, एंगल के साथ गेंद पढ़ा और अपनी लेंथ पर कैरी रहा। ये कहते हैं कि पिच होने के बाद गेंद बिल्कुल सीधा हो गया, और ऑल एंड्स अप यहां पर बीट हुए। हुसैन तलत, 2 अच्छी गेंदें, और अब एक गली के फील्डर को लिया है कप्तान ने। और इस दफा भी स्क्वायर ऑन हुए, लेकिन बॉल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए एक रन के साथ 50 रन टीम के मुकम्मल हुए। गो के कह सकते हैं किसी हद तक कि अच्छा सेंसिबल प्ले है, लेकिन पिछले लगभग जब से रिजवान हुसैन की विकेट गिरी है उसके बाद से बॉलिंग जो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जान आई है। ये बहुत जरूरी होता है, खास तौर पे जब आप रन रोक रहे हो और आपको 1-2 विकेट्स मिल जाएं अर्ली ऑन, तो ये कॉन्फिडेंस में, एतमाद में बहुत हद तक इजाफा करती है ये चीज बॉलर्स के। और ये 200 रन हैं, ये आप विकेट से ही रोक सकते हैं। 45 ओवर्स में रिस्ट्रिक्ट करना काफी मुश्किल होगा। लाहौर ब्लूज की टीम को उठा दिया हाशिम ने, इस गेंद को टाइम नहीं कर पाए, काफी देर तक ये गेंद हवा में रही और फील्डर की दस्तरस से दूर जाकर गिरी। ससना में 2 रन हासिल किया हाशिम इब्राहिम ने। अच्छा, इस वक्त सेटअप करने की कोशिश में, इससे पहले हमने देखा कि तकरीबन बॉल जो थे वो ऑफ स्टंप पे थे, इस दफा थोड़ा सा बैक को बेंड किया, टेस्टिंग डिलीवरी थी, खड़े खड़े शॉट को खेला ऑन साइड पे, टाइम नहीं कर पाए, लेकिन इंटेंशन जरूर है कि किसी न किसी तरीके से इस प्रेशर को जो कि हल्का फुल्का सा पाइल अप हो रहा है बैटिंग पे, रिवर्ट कर सकें। खूबसूरत शॉट हाशिम इब्राहिम का, गेंद पलक झपकते बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। उम्दा बैटिंग, और इस बाउंड्री के साथ इस ओवर का बड़े उम्दा अंदाज से इख्तिताम किया हाशिम इब्राहिम ने।
वेल एक्सीलेंट, बहुत ही उम्दा बॉल, बैग योर पार्डन शॉट, क्योंकि बॉल जो है वो थोड़ा सा विद था और प्लेसमेंट अच्छी थी, गैप निकाला, हार्ड हिट थी, ऐसा दूर जरूर थे अपनी बॉडी से इस बॉल को खेलते हुए, लेकिन एग्जीक्यूट जो किया उसी के रिजल्ट्स हासिल किए। ऑन साइड पे इस दफा ऐसा गैप यकीनी तौर पर मौजूद है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, 4 रन हासिल किए। यहाँ 2 तवातुर से बाउंड्रीज निकाली हैं हाशिम इब्राहिम ने, बड़ी अच्छी बैटिंग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और की बार इसको लेंथ को पिक किया और एरिया का इंतखाब किया मिड विकेट और स्क्वायर लेग की जानिब गैप मौजूद था। पहला पावर प्ले ये बिलाशुबा नाम रहा लाहौर ब्लूज की टीम के, जिन्होंने 9 ओवर में 60 रन किए हैं 2 विकेट्स के नुकसान पर। जैसे नोमान अभी बात कर रहे थे कि पावर प्ले जो है वो लगभग बैटिंग के लिए साजगार रहा, थोड़ा सा हाइट फैक्टर है, माजबी दानियाल की कॉल अच्छी थी, क्वेश्चन अच्छा था। बड़ा जबरदस्त आगाज इस ओवर का दानियाल की जानिब से और जी हाँ बिल्कुल ये अंपायर से इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या ये हाइट फैक्टर है। अच्छे चैनल्स में गेंद कर रहे हैं, ये गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ी। जी हाँ बिल्कुल, ये शायद हाइट की वजह से बचे हैं हुसैन तलत। बड़ी जबरदस्त अपील थी अहमद दानियाल की जानिब से। वेल हुसैन काफी देर से पेसर्स के अगेंस्ट स्क्वायर ऑन हो रहे हैं। इस दफा बाबर किया कि बॉल जो है वो बिल्कुल बल्ले के दरमियान लगे, 2-3 ऐसे और स्ट्रोक्स अगर खेलें, मिडल करें बॉल को, उसके बाद थोड़ा सा फ्रीली जा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेकी है। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह इस सरफेस की इस विकेट की कहानी रही आज पूरा दिन, लगभग 55 ओवर इस विकेट पे हो चुके हैं। यही चीज देखने को मिली है कि आप विकेट पर अपने आप को अप्लाई करें, आप थोड़ा वक्त गुजारें इस सरफेस पे और उसके बाद आप बेहतर अंदाज से अपने शॉट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बॉल ड्रैगन और बहुत बड़ी प्राइस विकेट। काफी देर से कोशिश में थे कि बॉल को जो है वो चॉप करें ऑफ साइड पे, लेकिन इस दफा रिजल्ट जो है वो दानियाल की फेवर में। लूज शॉट हुसैन तलत की जानिब से, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद से एक मरतबा फिर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार ये इनसाइड है जो कर गेंद स्टंप्स को जा लगी। अहमद दानियाल ने बड़ी कामयाबी दिलाई, फेच करना चाह रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर से, सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन इनसाइड है जोकर गेंद स्टंप्स पर जा लगी। तीसरी विकेट का नुकसान यहां पर लाहौर ब्लूज की टीम को। हुसैन तलत सिर्फ 4 रन बना पाए, 63 विकेट के नुकसान पर लाहौर ब्लूज। वेल रन्स इतने ज़्यादा नहीं है, या कहना चाहिए सफ़र इतना मुश्किल नहीं, लेकिन यही वो सूरत हाल है जिससे वाइड जो है वो देखना होगा कि यके बाद दीगर अगर इसी तरीके से छोटे छोटे गैप्स के बाद विकेटें गिरती गई तो मुश्किलात का शिकार हो सकती है ब्लूज। कासिम अकरम नए आने वाले बैट्समैन, ये पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान ए और पाकिस्तान इमर्जिंग टीमों की भी कप्तानी कर रखी है। नौजवान बासलाहियत खिलाड़ी, इन्हें पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का मुस्तकबिल कहा जाता है।
46 लिस्टे मैचेस में 1300 से ज्यादा रन्स, 35 की एवरेज, 95 का स्ट्राइक रेट। इनके पास वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं कि ये पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकें। इन्हें अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। अगरचे रन रेट बेहतर है, लेकिन अभी भी 140 रन्स करने हैं। 2 स्लिप्स ले रखी हैं कासिम अकरम के लिए। थोड़ा सा फुलर डिलीवरी थी। और एक और चीज जो यहाँ एरर नजर आ रहा है कि एक बार फिर यहाँ पर कासिम की जो कहना चाहिए शॉट थी वो जिस्म से काफी दूर थी। 2 स्लिप्स इस वक्त वेट कर रही हैं क्योंकि ऑलरेडी एक विकेट अभी गिरा। ये देखिए अपने जिस्म से दूर खेला और ड्रैग ऑन हुए, सीधा बॉल जाकर स्टंप्स पे लगा। माइट भी थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे या सेकंड स्टंप पे होते तो खुद को बचा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक विकेट। और यही वो जरिया है कि आपको जल्द अज जल्द विकेट लेने हैं क्योंकि रन्स इतने नहीं हैं जिसको आप डिफेंड कर सकें। डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। ये लिस्ट करियर की पहली कामयाबी थी अहमद दानियाल के लिए। उसके बाद डाउन द लेग साइड कंट्रोल नहीं कर पाए बेहतर अंदाज से यहां पर अहमद दानियाल। अभी अभी एक विकेट मिला, 2 स्लिप ऑफ स्टंप पे हैं, थोड़ा सा माइट भी ऑफ टारगेट या ज्यादा जान लगा रहे हैं बॉल को अंदर लाने के लिए, जिसकी वजह से लेग साइड पे ड्रैग हुआ। ये बेहतर शॉट थी कासिम अकरम की, बिल्कुल आई लाइन के नीचे गेंद को खेले, गेंद को अपने तक आने दिया। और यही वक्त की जरूरत है लाहौर ब्लूज की टीम के लिए कि इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल दस्तरस में है। लाहौर ब्लूज की 3.95 का रिक्वायर्ड रन रेट है और मतलूबा हदफ तक बेहतर अंदाज से जारी है लाहौर ब्लूज की टीम। वक्त की एक ही जरूरत है कि आप विकेट पे टाइम गुजारिए और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की कोशिश मत करिए। फुल लैंड बॉल था, डॉट बॉल के साथ इस ओवर का भी होगा इख्तिताम। 10 ओवर के बाद 61 पे 3। well, इस वक्त जैसे पहले बात की कि सफ़र इतना मुश्किल नहीं है लाहौर ब्लूज़ के लिए, लेकिन कुछ देर आप कह सकते हो 5 से 8 मिनट का जो खेल है पिछला, उसमें थोड़ी सी हिम्मत करने जा रही है लाहौर वाइट्स की टीम के, जिस अंदाज से उन्होंने 2 विकेटें ऊपर नीचे हासिल की। और यही वो जरिया है, यही वो अमल है जिससे वो ये मैच जीत सकते हैं या अपनी तरफ टिल्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट इस वक्त रन्स की ऑलमोस्ट 4 रन्स पर ओवर है। जी हाँ, और साद नजीम की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी, बिल्कुल अटैकिंग हिकमत अमली के साथ जा रहे हैं। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर को तैनात करके रखा है आमिर जमाल के लिए। जिस्म से दूर, काफी दूर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन्स के लिए शॉट खेल दिया। जी हाँ, ये आज एक मुख्तलिफ जोन में दिखाई दे रहे हैं हाशिम इब्राहिम। जब जब इन्हें खराब गेंद मिल रही है उसका भरपूर अंदाज से फायदा उठा रहे हैं। और आमिर जमाल खराब गेंद के साथ स्पेल का आगाज किया, ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मौजूद थी और उम्दा अंदाज से वेट ट्रांसफर किया। अगर से जिस्म से दूर खेले, लेकिन टाइमिंग बहुत जबरदस्त हाशिम इब्राहिम की। इनिंग्स की एक और बाउंड्री हाशिम इब्राहिम की, अभी तक 5 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। इनसाइड एज, किस्मत ने साथ दिया हाशिम इब्राहिम का, सिर्फ 1 रन पर ही इत्तेफाक करेंगे हाशिम। वेल, काफी खुशकिस्मत रहे क्योंकि ये भी तकरीबन उसी हुसैन तलत की तर्ज का कॉपी पेस्ट
आउट हो सकता था, लेकिन किस्मत यहाँ पर कुछ मेहरबान रही हाशिम के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया था इस स्ट्रोक पे, और साथ में अब तक जो जो टेक्निक्स अप्लाई या जिन जिन बॉलर पे एतमाद किया, फिलहाल वो उनके लिए रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खूबसूरती के साथ खेला कासिम अकरम ने, लेकिन सिर्फ एक ही रन हासिल कर पाएंगे। इस टीम के अगर हम बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें, जिस तरह हमने देखा है कि आमिर जमाल गेंदबाजी कर रहे हैं, इनके साथ अहमद दानियाल हैं, अहमद शाह हैं, तो इस बॉलिंग लाइनअप में आमिर जमाल का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि तजर्बा है आमिर जमाल के पास, पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए भी खेल चुके हैं। आपको इम्पैक्ट शो करना होगा अपना। इस दफा ऑन साइड पे खेला, गैप यकीनी तौर पर मौजूद है, 2 रन एटलीस्ट होने चाहिए। और ये बेहतर है कि अगर आपके पास बाउंड्रीज नहीं आ रही, इनफैक्ट इनसाइड एजेस लग रहे हैं, तो आप बॉल को मिडल करें, रोटेट करें। ऑलरेडी 8 रन इस ओवर में आ चुके हैं। कह सकते हैं कि इस ओवर का जो कोटा है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है लाहौर ब्लूज की टीम। यहाँ स्लिप में फील्डर ले रखा है आमिर जमाल ने। शॉट गेंद, सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए इस शॉट को, और इस असना में बैट्समैन भागकर 2 रन ले लेंगे। अच्छा, अभी भी ये तकरीबन दूसरा मौका है कि जिस वक्त बैक ऑफ लेंथ बॉल जो है वो प्रॉपर्ली हिट नहीं हो पाई बैटर से। माइट बी थोड़ा जो टाइमिंग का इशू है, बल्ले का जो स्विंग है। क्या ये अपना पहला लिस्ट मैच खेल रहे हैं, और क्या ये अपनी पहली बारी को यादगार बना पाएंगे? 30 रन पर खेल रहे हैं, 28 गेंदों का सामना किया है। और ये बड़े प्लेयरों की निशानी होती है एजाज के, आपको अगर आगाज अच्छा मिल रहा है तो आप उस आगाज को बड़े रन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिस इम्पैक्टफुल बारी की जरूरत है यहाँ पर लाहौर ब्लूज की टीम को, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पड़ने के बाद मजीद बाहर की जानिब निकली। व्हाइट बॉल का इशारा किया अंपायर अलीमदार ने। तो इम्पैक्टफुल बारी की जरूरत है लाहौर ब्लूज की टीम को, और वो खेल रहे हैं बेहतर अंदाज से हाशिम इब्राहिम। चांस हो सकता है, लेकिन थ्रो एक्यूरेट नहीं थी। या यहाँ पर खेलते ही दौड़ पड़े थे, डायरेक्ट हिट से बड़ा नजदीकी मामला हो सकता था हाशिम इब्राहिम के लिए। ग्यारह के बाद 72, 3 विकेट्स के नुकसान पर लाहौर ब्लूज। पिछले लगभग 9-10 से 15 मिनट में ये जो कॉन्फिडेंस शेकन है वो ये देखिए कि तकरीबन वो टेक ऑफ किया उन्होंने, और काफी क्विक टेक ऑफ किया, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं था। अगर ये बॉल सीधा स्टंप्स पे लगता, थोड़ा सा नीचे रहता, तो यकीनी तौर पर एक और विकेट जो है वो विकेट कॉलम में एड अप हो चुकी होती। या बिल्कुल, आपको ऐसे हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना होता है। अगर आप रन्स रोक रहे हैं, वो भी सिर्फ 200 रन्स, बेहतर एफर्ट की तवक्को थी यहां पर फील्ड पोजीशन में लाहौर व्हाइट्स की जानिब से। क्या अहमद दानियाल ने पिछले ओवर में बड़ी विकेट ली थी हुसैन तलत की, तान फील्ड में रद्दोबदल करते हुए। बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर कवर ले रखा है ऑफ साइड पर अहमद दानियाल के लिए। थोड़ा
थोड़ा सा पिच जरूर था, लेकिन एक बार फिर जो गैप है वो नहीं निकाल पा रहे। इससे पहले भी हमने देखा कि 2 स्ट्रोक्स ऑन साइड पे हवा में गए, लेकिन जो अभी भी ऑन साइड पे मिड ऑन सर्कल के अंदर है, कोशिश उनकी है कि वहां से गैप निकालें, को बाउंड्री एक हासिल करें। जी हाँ, हाशिम इब्राहिम 32 रन पे खेल रहे हैं 5 चौकों की मदद से। ये आज इनका लिस्टेड डेब्यू है और बॉल 1 से जो है उन्होंने कोशिश की है कि ये अटैक करें, बाउंड्रीज हासिल करने की कोशिश करें। इनिंग्स में 5 चौके शामिल हैं। ये खूबसूरत शॉट थी कवर की जानिब की बार, लेंथ को पिक किया, ऑन साइड पे खेला, बैकफुट पर पंच किया खूबसूरती के साथ। हाशिम इब्राहिम ने 1 रन बन पाया और इन्होंने अपने फर्स्ट क्लास के डेब्यू में भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। अपने दूसरे फर्स्ट क्लास मैच में लाहौर में बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। नौजवान उभरते हुए टैलेंटेड खिलाड़ी हैं हाशिम इब्राहिम। वैसे नौमान, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी की तारीफ करें तो कमेंटेटर्स कर्ज आता है। देखते हैं कि कितना खुशकिस्मत है हाशिम कि जिस अंदाज से आप इनकी तारीफ कर रहे हैं कि इनफैक्ट फर्स्ट क्लास में इन्होंने डेब्यू पे 50 की, और आज भी इनके पास वक्त तो काफ़ी है कि लगभग 126 रन चाहिए, सेंचुरी ना सही 50 प्लस। जी हाँ, बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है कि विकेट पे ठहरें, विकेट पे ठहर के लंबी बारी करें, क्योंकि आगाज इन्हें अच्छा मिला है, पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया टीम मैनेजमेंट की तरफ से। ओपनिंग पोजीशन पर बारी करवाई गई। हाशिम मोर देन रन बॉल इस वक्त खेल रहे हैं, लगभग 32 बॉलों पे 33 रन। तो जो एग्रेशन है वो तो है, ये तो नजर आ रहा है कि वो हार्ड हिटर हैं और तेज खेलने को तरजीह देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर वाइट्स की बात करें तो इन्हें विकेटों की जरूरत है। अगरचे पिछले ओवर में अहमद दानियाल ने हुसैन तलत की बड़ी विकेट ली, लेकिन इसके बाद भी बड़े बैटर्स आना बाकी हैं। उस्मान कादिर, काशिफ भट्टी, उमैद आसिफ, ये सब बारी करना जानते हैं। उमर अकमल इस गेंद को नहीं रोक पाए, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। इस वक्त भी जो सरफेस है वो अच्छा बाउंस दे रहा, अच्छा कैरी था, और इवन गो के इतना ज़्यादा पेसी डिलीवरी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हाइट थी इस बॉल की वो काफ़ी ज़्यादा थी कि इस अंपायर को इसको वाइड करार देना पड़ा। यहाँ टप्पा मारना चाह रहे थे यहाँ पर, लेकिन सही तरह गेंद रोक नहीं पाए उमर अकमल। इस दफा ऊंचा खेले और सीधा हाथों में, आसान, बहुत आसान, और यही चाहिए इस वक्त बीइंग अ बॉलर। यह खराब शॉट यहाँ पर कासिम अकरम की, मिड ऑफ पर फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे, उनको अबूर करना चाह रहे थे कासिम, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, और दूसरी कामयाबी दिलाई है यहाँ पर अहमद दानियाल ने। ये बड़ी विकेट कासिम अकरम की, जो अगर सेट होते तो खतरनाक साबित हो सकते थे। स्लाइटली फुलर और टाइम नहीं कर पाए। अच्छा कैच आमिर जमाल का, और एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर लाहौर ब्लूज की टीम को। कासिम अकरम सिर्फ 3 रन बना पाए, लाहौर ब्लूज 77, 4 विकेट्स के नुकसान पर। और इसके साथ वक्त हुआ चाहता है ड्रिंक्स ब्रेक का।
Yeah, it's one of those days when you wish you were a fast bowler. Have a look at that for numbers. Ahmed Jamal getting one, Amir Jamal getting one, Daniel getting one. Salman Butt, former captain alongside me, happy to be a fast bowler. If you see this last one, the economy rates, all are above the required rate, and still the wickets are falling to the shots that are not required to be played at these precise times. So this shows you the game awareness at the moment. So the required rate is much lower than what the team is going at. It's 77 and we are only in the 12th over. And still the batters are playing as if 4 overs are left and they require 10 and over. There was another opportunity. Yeah, the hands on the head tells you a story that it was a very close miss. Ahmed Shahzad diving towards left. Could not quite hang on to it. Good bounce again by Ahmed Danial. Touch difficult, you have to say, Salman. Yes, it was out of the range. Ahmed Shahzad did try his best, but of no avail. He was far from the ball, and it went down to the third man region for boundary. 12 gone, 81 for 4 Lahore Blues. ...119 runs required of the 198 deliveries. Ample of time remaining, so the batters just need to keep batting. Just keep spending some time and get, used to this pitch, because Lahore Whites has to play more games than anybody else over here in the same condition, and Lahore Blues may have to return for a couple of games as well. So it's good to spend a time on a pitch where there is movement for the bowlers, and now is your chance because not many runs are required. But still the batters are opting to bat as fast as possible. The boys, I think they've seen too fast, too furious yesterday night. Yeah, they definitely seem to be in a hurry as Hashim Ibrahim comes back for the second. He's been the lone warrior. He's still there, still fighting hard. Although there have been instances where he has tried a few rash shots, but he has recovered. Yes, he has tried his best to no avail. And he's been lucky 2 or 3 times. He played shots which were not required. And lucky for him, it fell in the gap and he was able to run through for a couple. But now that he has reached 35 and he knows not many batters are to come, so his job should be to see his side home. Yeah, he's shown that character. We saw that in Quaid-e-Azam Trophy when he played a good knock in difficult conditions. He hung in there. He has that ability, that rigidness in him, that approach of never give up. So he's that sort of a cricketer. Hashim Ibrahim, good head on his shoulders. As Salman was just saying, a few rash shots, yes. But that difficult time, after facing 36 deliveries, Salman, should be over now. Although we know the ball will be swinging and seaming all day maybe. But that difficult part as a batter is concerned, he's faced 36 deliveries. So that early pressure, that early nerves should be gone now. It should be easy, should be looking to play normal cricket, conventional cricket. Not many runs, 116 runs, a lot of balls left. All you got to do is play normal, conventional cricket. 13 overs gone, 84 for 4. Yeah, Hashim will have to do something that Kamran did for Lahore Whites. The way he batted, I think he was phenomenal. He was fabulous with his stroke making, anything in his zone. Just went after it. This 6 was a magnificent shot outside the off stump, very strong uppercut also. So he's shown that he's got those variety of shots. Kamran Afzal, timely inning, an inning for the team. Similar sort of thing Hashim Ibrahim will have to do. Going down. Oh, he didn't even try, Umar Akmal. That was not far from him. But a lazy effort. Let it go. Bias, in fact, leg bias signaled by the umpire.
Yes, again down the legs. And this time again 4 runs. And this ball swinging in off the pads. And Umar Akmal didn't move too well on this occasion. This was something which should have been kept by him. Was well within the range, but he just could not move towards his left. And Ahmed Danial is rightly disappointed, but can't express much. Happened the same in the last over also. Salman, do we give a little bit of margin to Umar Akmal? Because he's a makeshift wicketkeeper, but then my counter argument would be, at this level, if you are willing to wicket keep, if you're willing to be there, you got to be 100%, you got to be giving everything. Yeah, I agree with you, Ali. You're absolutely right. Oh, another one. There is a fielder. There is a fielder, and he takes it. So Hashim Ibrahim trying too many shots. Another one towards mid-wicket. Top edged it, and Ahmed Bashir making no mistake. So that is 4-time lucky for Hashim. Previously played 3 of these shots, and he was lucky on each occasion. And finally, he got what he deserved, because there was no need to play such a stroke. Especially they are in the position, now they are in a position where Lahore Whites should be thinking about winning the game, and that too doing pretty early. 88 for 5 now, Lahore Blues, and all batters bringing their own demise. Wrong shot selection, wrong shots played at the wrong time. 36 he got, a very chancy 36 that was. It has come down to Kashif Bhatti inside 15 overs of this game. So that tells you a story that Lahore Blues are clearly struggling. They have lost 5 wickets. They've only scored 88 runs. Remember, they're just chasing the target of 200 runs, and they're making it tough and tougher for themselves. 1,200 runs at this average. Strike rate is impressive, but it's the average that matters at this level, because strike rate won't matter. It's the average that matters at this point of the game. Salman, but I'm going to ask you about the shot selection again from Hashim Ibrahim. Ball him! Beaten all ends up. Beautiful delivery by Ahmed Danial. Kashif Bhatti had no clue about it. Another one ripping through the defense of Kashif Bhatti. Beautiful delivery. Well, a great display of fast bowling this. Good seam position and ball jacking back off the seam. There we see. Wow. What a ball. Kashif Bhatti, it was too good for you. Simple as that. 88 for 6, Lahore Blues. He was not even ready to bat, Umayyad Asif. I'm sure he will be disappointed by the approach of the batters. I'm sure he must be resting somewhere that he might not have to bat. But look at it. He's inside 15 overs, Salman. That is not what you want to see as a Lahore spectator. Well, who are we with? Both teams are from Lahore. So the question goes out of the window about favoring one of them, but the disappointment of today has been the shot selection from the boys. Has the wicket been that effective? The scorecard might suggest
to people who only watch the scorecard that, wow, what a bowling pitch. But they would not know the kind of shots played at the kind of times they were chosen to be played at. And that is something which needs to be seen in depth. 369 runs for Umaid Asif as he faces the hat-trick delivery. 2 slips for Ahmed Danial. 1 in point, cover in place, mid-off, mid-wicket in place. Can Ahmed Danial be the first man here in this tournament to get a hat-trick? Beautifully bowled. Just guided towards third by Umaid Asif. He can bat. Remember, he has the potential. Absolutely, no doubt about it. And Ahmed Danial bowling well, picking up wickets at the crucial junction for his team, ensuring kind of an assurance that they carry now, having 6 wickets for 89. And here are how the wickets that he picked up. And Hashim Ibrahim, I don't know what he was thinking, what plan he had in his upper story, but this shot was certainly not required, and that is at least the 4th time he played that stroke. And then this one, what a ball. One of the best balls that have been bowled today, and this one, there was a lot of noise from the bowler and from the fielders. 14 gone, 89 for 6. We've been talking about the shot selection. Yeah, we all been talking about modern day approach and batters being explosive. This does not give a good picture. 36 runs by Hashim, and rest, nothing really to be talking about. Yes, 36 Hashim at the top, and a very chancy one. And the remaining, just Imran, but to just enter, he just stepped into the double figures, and the rest didn't even do that much. So we shall see that if there is a miracle which is going to happen, or is it just a matter of time? Only time will tell. Oh, there's a chance. Ahmed Shahzad just took it a little too casually on that occasion. 90 runs for the loss of 6 wickets is Lahore Blues. Remember, they're just chasing the target of 200, and they've made it mighty difficult for themselves, courtesy to some poor shot selection and also the timing of those shots. There was absolutely no hurry, especially for Hashim Ibrahim. He was all set, 39 deliveries he was in, but it seemed like that he was in a hurry. He was looking to play that shot cross towards mid-wicket for the camera maybe. Salman, but what happened when a team plays like that? What message does that give? Well, the result is that the team is in total disarray at the moment, and they are tottering at 6 down for 90 runs only inside the 15 overs. And that is certainly what they did not require. It is the first game of the tournament. You're not even chasing a run rate, as if you have to get this in 20 overs, otherwise you won't qualify. There is no situation like that. And that is where we talk about the game awareness. Being aware of what is required and doing what is necessary are the important things that as a professional you need to know. And unfortunately, these things have been seen missing by and large. Absolutely. And when I looked at the playing 11 earlier in the first session, I initially thought straight away that there are a one batter short, because they only played with 3 specialist batters. Reminder were the all-round cricketers. This is good fielding by Ahmed Shahzad. So you knew that in the morning when you saw, but did they know it, that there are only 4 or 5 batters playing the game? They must be regretting now. 15 gone, 91 for 6. And those 6 wickets, how they fell is another story. Just see that, Imran Butt giving catching practice. You didn't need to do that. And then this one, poor shot again, soft dismissal. And then this one again played away from the body, no position. And this one was another poor shot selection. Not the time to play like that. And Hashim Ibrahim, well, he's
been there on a different planet. And then this Jaffer. The only wicket-taking ball of the whole inning was the one that Kashif Bhatti faced. The remaining, all the credit to the batters. It's up to Junaid now. He will have to play the role what Kamran did for Whites, but he's up against Daniel, who is in the middle of a very, very good spell. He's taken 4 wickets in his 5 overs, just given 19 runs. That is what you expect from your frontline bowler. And that too on your debut. It's his debut and he's bowling like a frontline bowler, like the most senior bowler. And he's taken those 4 important wickets and put his team in a position where they're now favorites to win this game. And only a miracle can save Lahore Blues now. Yeah, miracles, says Salman Bhatt, that can save Lahore Blue, and miracle can be in the form of Junaid because he can bat. He's got 100 in this year Quaid-e-Azam Trophy. He's a wicket-keeper batter, a very potentially good batter. Salman, let's go back to the first inning when they got 4 wickets on 30 runs odd. Then the change in the bowling and the captaincy of Imran Bhatt let Blues get away and get to that target of 200 runs. I think that's where they missed the trick when they first changed the fast bowlers, because they were doing a good job. And then when Usman Qadir was bowling so well, they replaced him too. So I think that's where they need to look, that when the team is down, you need to put more pressure on them. Absolutely, Ali. You hit the nail on the head. And there was no point changing Usman Qadir at that moment, because he had taken wickets and the new batters did not have a clue which way the ball is going. And to change him at that moment was a cardinal sin. And that brought by the captain Imran Bhatt, who allowed the team to get to 200. And also, Salman, there was a 49-run partnership between Kamran and Daniel. That's Man Qadir. There is the man who was taking wickets, bowling well, and then was not allowed to bowl his full quota of overs. And that is what baffles me, that what game awareness does these captains carry? Because somebody is running through the team and you suddenly stop him, and he's not even a fast bowler who would run out of his breath. And he's just playing his first game of the tournament. And the same mistake they made by not playing him the initial 4 days. And the one they played him was on a green top and he took 6 wickets over there. So there's a lot of explanation which obviously we cannot give, which does not carry a cricketing logic. But again, not good for the team themselves, because they have people who can control the game and then they stop them. This one was really short and easily over the head of the batter. Although Lahore Whites did play some false shots early on, the youngsters, both of them, but they did recover. Can Blues recover? That's the question. Good shot. Through the gap. Beautifully punched off the back foot. Might. Oh, brilliant. Wonderful. Did save 1 run for the team. And that is important. You got to save every run in competitive cricket. 16 gone, 94 for 6. Hasib there, their off-spinning all-rounder, along with the leg spinner. Both sitting there watching their team in total disarray, and something totally uncalled for. 16 overs, 94 for 6, and just the 1 wicket where the bowler actually was unplayable. The rest would not have happened if the batters didn't play poor strokes. Umar Akmal getting some treatment.
getting ready to keep. He's shown good commitment. One must have to say this. Because once Umar Akmal agrees to be a keeper, it means he means business. He wants the team to do well. This one's for the team, maybe. Because once Umar Akmal keeps, the balance of the team improves. Just a few balls ago, Ali, if we can repeat what you just said. Just 8 balls, 9 balls back. What's wrong with you? I just like the commitment level. I'm not talking about the skill of Umar Akmal, but just the commitment level. I know he's not a proper wicketkeeper, but still he's doing it. He's doing it for the team. To all the respected listeners listening to us, it was Ali 9-10 balls back, and it's again Ali. I repeat, that was about the skill he possesses. I'm talking about the commitment level, that he still is willing to do it with limited skill level of being a wicketkeeper. He's still doing it for the balance of the team, for the combination of the team. He's good enough as a batter to play for any team. And they have Mohammad Clark. Well, that is... The captain is setting the field from the slips. And Shah Naseem is still setting up the fielder on the sweep boundary. Why are you laughing, Ali? I always enjoy being on the other side of you as a commentator, Salman, because you have always something to say. Well, it's a job of the commentators to keep saying something about what's happening in front of them. But we all know what why we are laughing. That was not something to do with on-air thing. That has to be an off-air thing. Here you are, Ali. Nice hair today. It's all flying as if the wind was going the other way, and really fast one. It's a tough job being a presenter. Especially when the wind is blowing that fast. And you don't need a dryer these days. 17 gone, 96 for 6. Right, can Umaid Asif stay there with Junaid? Can they build a partnership like Kamran and Daniel did? That's the question. Amir Jamal is back. Bowled beautifully. He should look to get two. Now they're happy with one. Good ground covered there by Fike Butt. Quick to the ball and a good release. Good fielding. That from the youngster, from the debutant. And it's a change in the bowling. Amir Jamal is here, and obviously his job is to clean up the tail. And he's quick through the air off the pitch. And if he bowls the ball in the right areas, he's more likely to pick up wickets. A good captaincy also. Going for the kill. Right here, right now. Beautiful. Now see the reason why he's been brought back. Because there is still movement in the air off the pitch. Ideal conditions, as I said earlier. It's an ideal day to be a fast bowler, Salman. Yes, the strength of sunlight hasn't been the same today since morning. Had it been on its full strength after the first hour, we would have seen a different track. But now that most of the day has been overcast and misty, there has been movement around all the time. And the batters have been struggling.
And especially the shot making, the shot selection has been very, very disappointing. Keeping in mind that yes, the bowlers are getting help. You have to play a bit more carefully. You have to look for those strokes which are on and need to avoid those which carry far greater risk. And you have to keep your plans really simple on a pitch like this. It all comes under the umbrella of game awareness. How much you are chasing, which bowler to target, in fact, which deliveries to target, knowing your own strength, knowing the opponent's strength. That's how you go about for a run chase. But nothing has been done by Blues. They've been clueless, they've been rash, and that is not how you win matches. You need to have a method to go for the target, and 200 runs, we thought, were enough when that momentum of the last partnership between Kamran and Ahmed Daniel happened. That was a 49-run partnership, remember, gave the momentum to Lahore White side, who were struggling. And look what that momentum has done. They have carried on into the bowling. Ali, if we see the score, still the run rate required is less than 5 per over. And the way the batters got out was as if they required 10 runs and over. And that is where the downfall has been of the batters throughout the day. Shot selection. Yeah, two left-hand batters outside. There's Umar Siddiq, then there's Ibtisam ul Haq. Even the one padded up is a left-handed batter, Usman. So there's 3, and with him is Haji. Haji, the throwdown master. I'll say this was a good stop. This was a good fielding effort by Ahmed Shahzad. Ahmed Shahzad making a great effort there. And he almost spun while doing that. And this is the one play to the third man, and there we see, oh wow, that's certainly saving about 3 runs for his team. इस विकेट कीपर बॉलर के साथ बैटिंग कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ 19वां ओवर है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि लाहौर ब्लूज़ की जो बॉलिंग है, उनकी जो बैटिंग है रादर, वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर साबित हुई है इस पिच पर। क्योंकि इस तरह की कंडीशंस और ऐसी पिच पर बेनकाब हो जाती है। कई बार आपकी टेक्निक, कई बार आपकी टीम की जो सोच है, इसलिए अच्छा मौका है कामरान अफजल के पास भी कि वो यहाँ एक एंड को इंटैक्ट रखें, ज़्यादा रन्स ना दें, आपस बाहर होने की कोशिश ना करें। आज अच्छा दिन कामरान अफजल का गुजरा है मैदान में। पहले उम्दा बैटिंग की, अपनी टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया जब लोअर ऑर्डर में खेलने के लिए आए थे। क्योंकि अभी भी अगर एक पार्टनरशिप लगती है तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। गो के पलड़ा भारी है लाहौर वाइट्स का बहुत ज्यादा। एजाज एग्जैक्टली सकता है, 100 रन चाहिए, लगभग 27 ओवर का खेल है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि उमैद और जुनैद ये कितनी देर तक इस विकेट पे ठहरेंगे, क्योंकि उमैद का नॉर्मली मैंने देखा नहीं कि कोई इतनी बड़ी बैटिंग हो, 40 प्लस या 30 प्लस रन को कि उनके 400-500 रन जरूर हैं फर्स्ट क्लास या लिस्ट में। लेकिन स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं जुनैद अली, और वो उन्होंने कर दिखाया। भी अपनी क्रीज में डीप गए, बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद नहीं थी, भरपूर फायदा उठा लिया। ये लूज बॉल था, काफी ज्यादा वक्त दिया, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अच्छा मैनेज किया। पहले थोड़ा रूम बनाया, उसके बाद ऑन साइड पे मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया।
सेफेस्ट। इसके साथ तो 19 ओवर गए, 104 पिच है। तेज बॉलिंग आमिर जमाल जो है आज अपनी स्विंग को कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वो अपनी रफ्तार पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। रफ्तार इनकी बॉलिंग का खासा है। ये गेंद सीधी जाकर पसली में लगी उमैद के, और आज ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब गेंद जो है वो ग्लव्स को जाकर लगी हो या फिर जाकर बॉडी से टकराई हो। ये देखिए बल्ला आने की नौबत भी नहीं आई। लेट थे, रिएक्शन लेट था स्ट्रोक को खेलने में। उससे पहले बॉल निकल चुका था, सीधा बॉडी पे जाकर लगा अनपैडेड एरिया। क्योंकि मुस्कुरा जरूर है लेकिन काफी ये पेनफुल होता है। देखिए जहाँ नील लग जाते हैं, आपको दाग लगते हैं आपके जिस्म पर। या काशिफ सिद्दीक जो है, इनका ना खिलाया जाना उमर सिद्दीक का, ये समझ से बालातर है। क्योंकि ये वाइट बॉल क्रिकेट के अच्छे बैट्समैन हैं और इस टीम में आज हमने देखा है कि बैटिंग जो है वो कितनी इसकी कमजोरी साबित हो सकती है। क्योंकि जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उनमें 3 ऐसे हैं जो डबल फिगर में नहीं आए, जो ज्यादातर ऐसे थे जो लाइन में ही नहीं आ रहे थे। तारिक साहब, जो ओपनर्स हैं, इनफैक्ट अगर हम बात करें ओपनर्स के बाद कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था यहाँ पर लाहौर ब्लूज की तरफ से कि जो कोई बेहतर अंदाज में खेल सका। और उसका अब जो प्रेशर है 6 विकेटें उड़ने के बाद, और इस वक्त 4 ओवर पीछे है इस इनिंग में लाहौर वाइट्स। यहाँ उसका बड़ा सबब वो एक्स्ट्राज हैं। शुरू में जो विकेट के दोनों जानिब बॉलिंग की गई, आमिर जमाल, उनके अलावा अहमद बशीर, दोनों ने बहुत ज़्यादा वाइड गेंदें की, उसी वजह से ओवर रेट में पीछे। लेकिन अगर ये तमाम विकेटें ले जाते हैं ज़ाहिर 45 ओवर से पहले तो फिर वो फिक्र नहीं रहेगी। विकेट टेकर है आमिर जमाल, इसमें कोई शुबा नहीं। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स हैं उनकी भी नज़रें होंगी इन पर। वहाँ पाकिस्तान को पेसर्स की ज़रूरत है उस दौरे में और टेस्ट क्रिकेट में। जी एग्जैक्टली, क्योंकि जिस अंदाज से ये बॉलिंग करवा रहे हैं, लंबे बॉल करवाना, और इनफैक्ट जो स्पेल्स हैं इवन वो भी लंबे चाहिए होंगे उस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। तो फिलहाल इनका जो अभी तक का स्टेमिना कह लें आमिर जमाल का, कि जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग करवाई है बेहतरीन है। थोड़ा सा बैक को भी बेंड कर रहे हैं, पेस भी बेहतर है, और उससे बढ़कर के चूँकि आज पहला गेम है तो आहिस्ता आहिस्ता जो रिदम है वो मज़ीद इंक्रीज़ करेगा। ये 152 गेंदों में 95 रन की ज़रूरत है, लेकिन रन रेट जो है वो बिल्कुल भी मसला नहीं है। असल जो दर्द सर है कि 6 विकेटें हाथ से निकल गई हैं। तो यहाँ जुनैद को ऐसी बैटिंग करना है टेल के साथ कि वो सांप भी मरे और लाठी भी टूटने से बच जाए। उसके लिए मेरा ख्याल है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुद को स्ट्राइक पे रखना होगा, उमैद को छुपा कर रखना होगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। आम हालात में यहाँ बड़े बड़े और हाई स्कोरिंग मैचेस हम देखते हैं। HBL PSL में इंतहाई हाई स्कोरिंग वेन्यू है। एक मैच में 242 रन भी इस साल बन गए थे। पेशावर की टीम नहीं बचा सकी थी। 242 रन बनाने के बाद उनको शिकस्त हो गई थी कोयटा के सामने।
उसके बाद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज हुई उसमें भी बड़े स्कोर देखने को मिले। या फखर जमान ने एक बड़ी लंबी इनिंग्स खेली थी, लेकिन ये लो स्कोरिंग मैच रहा है और उसका सबब जो है वो यही है कि यहाँ जो मौसमी हालात हैं वो बदल गए। इस पे मजीद हम बात करेंगे। 5 पर 6। ये इब्तिसामुल हक, मुमकिन है कि आगे चलकर इनको मौका मिले। उमर सिद्दीक, साथ साथ हसीब हैं, ये भी कुछ कुछ बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन कामरान ने आज अपनी टीम के लिए जो खोया हुआ मोमेंटम वापस पाया था बैटिंग के दौरान, वो जो है उनके पेसर्स ने ज़ाया नहीं होने दिया। ख़ास तौर पर जो इस्माइल अहमद दानियाल ने किया वो काबिल सताइश था। शुरू में नई गेंद पर मामला बिगड़े हुए थे, उनने आकर विकेटें हासिल की, 4 खिलाड़ियों को आउट किया यके बाद दीगरे। अहमद दानियाल ने पेसर्स ने यकीनी तौर पर एंजॉय किया अर्लियर ऑन। पहले 10 ओवर की अगर हम बात करें पहली इनिंग में, उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग में भी, क्योंकि अगर हम स्पिनर की बात करें तो उस्मान कादिर की जो बॉलिंग थी उसमें भी जब ऊपर नीचे 2 उन्होंने आउट किए, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये सरफेस जो है ये तमाम बॉलर्स के लिए, आया वो पेसर था या स्पिनर था, ये मुफीद रहा। सपोर्टिंग विकेट है। वार्म अप करते हुए उस्मान कादिर, अब ये बैटिंग के लिए वार्म अप कर रहे हैं। इनके जो पूरे 9 ओवर्स ना कराना वो भी फैसला सही साबित हुआ नहीं है, वरना ये इतने रन्स इस वक्त बनाने की फिक्र नहीं होती लाहौर ब्लूज को। ऐसा ऐसा ये पार्टनरशिप पनपने लगी है। 19 रन्स दोनों मिलके बना चुके हैं। ज्यादा गेम को टर्न नहीं करते हैं कामरान, ना इतना ज्यादा फॉलो थ्रू है कामरान अफजल का। इतना ज्यादा लूप भी नहीं दे रहे बॉल को। क्विक थ्रू द एयर, इसके साथ डॉट बॉल। ओवर का हुआ इख्तिताम। 21 गए, 107 पे 6। अब तक लाहौर ब्लूज ने 71 डॉट बॉल्स खेल रखे हैं और ये काफी ज्यादा है। और मेरे हिसाब से कि जब इनिंग शुरू हुई थी उसी वक्त थोड़ा सा एग्रेशन जरूर था, लेकिन उसके बाद हालात बदले और सिर्फ 9 चौके इन 20 ओवर्स में अब तक लगे हैं। बाउंसर से इस ओवर का आगाज किया जो कि वाइड ठहरा। आमिर जमाल 2 खिलाड़ियों को उनने पीछे खड़ा किया हुआ है। जुनैद अगर हुक या पुल करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्राज ने हमा वक्त मदद की है लाहौर ब्लूज की। जो लगभग ओवरऑल इस 108 रन में 80% जो है वो बाउंड्रीज हैं। 26 एक्स्ट्रास, ये इस इनिंग्स का दूसरा बड़ा स्कोर है हाशिम इब्राहिम के बाद। कोई रन नहीं बना, अच्छी फील्डिंग तैयब ताहिर की। 36 रन हाशिम इब्राहिम ने बनाए थे और उसके बाद इनिंग्स का जो दूसरा बड़ा स्कोर है मिस्टर एक्स्ट्रास।
ऑफ स्टंप से बाहर ये बॉल था, थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुआ लेकिन इतना ज़्यादा कोई ख़तरनाक साबित नहीं हुआ। क्योंकि पहली इनिंग में भी तारिक साहब जो पार्टनरशिप्स थी वो लैग कर रही, एक आध पार्टनरशिप थी और इसमें भी हमने देखा कि सिर्फ टॉप पे जो ओपनिंग बैटर्स थे वहाँ पर हमें पार्टनरशिप मिली। उसके बाद से अब तक ढकी छुपी हल्की फुल्की छोटी मोटी बैटिंग है, अदरवाइज कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं। जहाँ पर रन जो हैं वो फ्लोरिश करते हुए नजर आए। इस मौके पर 67 पे 4 आउट थे लाहौर वाइट्स के, तो रन्स के हिसाब से जो ग्राफ है वो लाहौर ब्लूज का बेहतर है, लेकिन विकेट कॉलम डिस्टर्ब है। अभी उस्मान कादिर, हुनैन शाह, सलमान इरशाद खेलने के लिए आएंगे, लेकिन जुनैद अली जो हैं यही सबसे बड़ी उम्मीद है इस वक्त लाहौर ब्लूज की। काफ़ी ज़्यादा फिक्र है कहीं कहीं, और कहीं कुछ ज़्यादा नहीं है। जो इस वक्त टीम से बाहर जो खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा फिक्र नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मौका नहीं मिला है तो भी आपको टीम की फिक्र होनी चाहिए। आप इतनी, इसलिए कहते हैं कि आपका जो स्क्वाड है वो पूरा स्क्वाड जो है उसका दिल जो है एक ही तरह से धड़कना चाहिए पूरी टीम के लिए। जलिन होकर खेलना चाहिए, सपोर्ट, बैकअप, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि इवन विकेट कीपर जो है बड़ा अहम रोल अदा करता है। स्टंप्स के पीछे से तमाम ग्राउंड के जो प्लेयर्स होते हैं उनको बगअप करते हुए जगा के रखना, सपोर्ट देना एक दूसरे को। रिकी पॉन्टिंग जब ऑस्ट्रेलिया के जो मशहूर कप्तान थे, जिनकी क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने 2 वर्ल्ड कप जीते, वो उनकी थ्योरी थी टीम सिलेक्शन के मुतालिक, किसी भी दौरे या किसी भी बड़े वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से पहले वो 11 खिलाड़ी जो कप्तान के जहन में होते हैं कि मेरी फर्स्ट प्लेइंग 11 होगी, और उसके बाद जो अगले 3 से 4 खिलाड़ियों का वो इंतखाब करते थे, तो उसमें वो रवैये को बहुत अहमियत देते थे कि ज़ाहिर है ये खिलाड़ी बेंच पर बैठेंगे, इनका रवैया कैसा होगा, क्योंकि अक्सर खिलाड़ी जो नहीं खेल रहे होते उनकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, पूरे स्क्वाड के ज़ाहिर मुराल गिरने का सबब बन सकती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी थ्योरी थी पॉन्टिंग की टीम सिलेक्शन के मुतालिक, दूसरे भी उससे सीख सकते हैं। 108 पर 6। रावलपिंडी ये कदीम शहर है पोठोहार का, और ये उसकी कदीम निशानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की निशानी। रावलपिंडी का ये रेल स्टेशन जो कि 1881 में खोला गया, मलका विक्टोरिया के ज़माने में, जो लाहौर और पेशावर के दरमियान राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया था, और आज भी ये शुमाल और जुनूब को मिलाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। एजाज खुद सफ़र करते हैं रेल के ज़रिए। जी तारिक भाई, काफ़ी सफ़र किया, और लगभग हालांकि 30 इयर्स के बाद मैं पहली दफ़ा ट्रेन में बैठा था। ये बॉल थोड़ा सा ब्रेक हुआ, सरप्राइज करने गए थे लेकिन कनेक्शन नहीं था। जी हाँ, गेंद थोड़ी सी हवा दी थी, और अक्सर जो टेल एंडर होते हैं ये लेग स्पिन जो है उसको नहीं जान सकते, ऑफ द विकेट रीड करने की कोशिश करने। ये देखिए कितना ज़्यादा पीछे थे, या जितना ज़्यादा आप गेंद को जो है वो गेंद की पिच की तरफ नहीं जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको टर्न होने का मौका देंगे और अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगे।
एग्जैक्टली साद नसीम 121 मैचेस में 82 विकेटें समेट चुके, 2 मरतबा 5 या इससे जायद विकेटें हासिल कर चुके हैं। और पहला बॉल उनका अच्छा था, एयर दिया, रिसीव किया बैटर को। कट शॉट बहुत जोरदार तरीके से खेला, ये कतई अच्छी गेंद नहीं थी साद नसीम की, ये तोहफा था यहाँ पर जुनैद के लिए, क्योंकि वो टेल अंडर नहीं है जी। और काफ़ी हद तक जो है वो सेट करने में मदद दे रहे हैं इस तरह से। काफ़ी बाहर बॉल था, उसको अच्छे अंदाज से वेट किया और बिल्कुल आखिरी लम्हात में खेल गए बैकवर्ड पॉइंट। इनफैक्ट थर्ड मैच जो था वो फाइन लेग के वो फाइन था इनफैक्ट 30 यार्ड्स में, जिसकी वजह से भरपूर गैप निकाला। वेल एक आध बाउंड्री हर ओवर में अगर इस तरीके से हासिल करते गए तो जो प्रेशर है इस वक्त विकेट कॉलम की वजह से पड़ा हुआ, काफ़ी हद तक रिलीव होगा। हसन रिजवान के मुतालिक हमें बताया गया था कि वो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले साद नसीम जो हैं वो खुद आ गए। जोरदार शॉट, गेंद हाथों को लगती हुई गई, साद नसीम काफी तकलीफ पहुंची। बिल्कुल सीधा शॉट खेलना, सीधा शॉट जो है, इतने जोर से गेंद आए तो आपके पास वक्त हो भी तो आप बेदिली से ही हाथ डालते हैं। काफी ट्रेवल कर रहा था बॉल, इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 23 ओवर गए, 114 पिच है। अहमद बशीर ने अपने पहले स्पेल में 5 ओवर्स किए, 28 रन देकर उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। वो वापस आ गए हैं। देखिए जो रन बनाने की औसत चाहिए वो 4 से भी कम है, तो सिर्फ रुकना है, इस पिच पर रन आ जाएंगे। उसी तरह की पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। यहाँ जो कामरान अफसल ने की थी, अहमद दानियाल उनके साथ खड़े रहे थे शुरू में। जो और विकेट मुश्किल नहीं है, हमने देखा कि बॉल जो है उसका बाउंस बेहतर है। इवन अभी भी जो पहला बॉल था अहमद का वो काफ़ी अच्छी हाइट पे था और आसानी के साथ खेला। सिर्फ कवर अब ये करना है कि अगर कोई मिडल में बॉल पड़ता है जो कि लेग बिफोर के माइट भी कहीं ना कहीं अहमद ट्राई करें कि एक आध बॉल विकेट टू विकेट फेंक कर। जी हाँ, और विकेटों के दरमियान अच्छा दौड़ना भी है। उनने जगाया नॉन स्ट्राइकर को, क्योंकि आखिर में वो लंबे लंबे डाक भरते हुए पहुंच गए। उमैद या बैकफुट पर जहां भी आपको गेंद गिराने का मौका मिलता है फील्डर के दाएं बाएं, वहां रन आपको लेना जरूरी है। और अभी ये वो मरहला है जहां पर ये पूरा ओवर जो है, ये दोनों एंड्स खुद खेलने के मुताबिल नहीं हो सकते। जुनैद अली, उमैद आसिफ को उन्हें सामने रखना होगा ओवर के पहले हाफ में भी। अच्छा तेज बाउंसर, हैरत ज़दा हुए उमैद। पिछले ओवर में जो जुनैद हैं उन्होंने खुद सामना किया, लेकिन इस दफा थोड़ा सा सरप्राइज दिया यहाँ पर अहमद ने। अच्छा बॉल था, बिल्कुल बल्ले के करीब था, आखिरी लम्हात में अपने सर को और बल्ले को नीचे किया। ये 23 रन की इस इनिंग्स की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। हमने शॉट को रोका, इस बार ड्राइव करने की फिक्र में थे।
गेंद ज्यादा तेज आ गई। हाशिम इब्राहिम और इमरान भट्ट, इन दोनों के दरमियान पहली विकेट के लिए 23 रन बने थे और उसके बाद अब 23 पर ये पार्टनरशिप है जुनैद और उमैद के दरमियान। मिडिल ऑर्डर जो है बहुत बुरी तरह नाकाम रही। रिजवान साद, उसके बाद हुसैन तलत जो इनके तजुर्बेकार खिलाड़ी थे वो 4 रन बना सके। कासिम अकरम वो भी आज जल्दी गए और ये भी जाएंगे। बाहर से बाहर गेंद स्विंग हो रही थी और उमैद आसिफ ने ये कैचिंग प्रैक्टिस करा दी उमर अकमल को। तो अहमद दानियाल का वापस बॉलिंग अटैक में आना उनकी टीम के लिए कारगर रहा। एग्जैक्टली अच्छा फैसला यहाँ पर अहमद को वापस लाने का। ऑफ स्टंप से बाहर बॉल था, कट करने गए लेकिन प्रॉपर्ली बॉल को खेल ना पाए। अच्छा, ये विकेट कीपर और स्लिप के दरमियान कट करना चाह रहे थे लेकिन वो गैप बनने नहीं दिया उमर अकमल ने। तो उमैद आसिफ उनने बनाया 8 और चौका और छक्का कोई नहीं, 115 पर 7। जुनैद अली का रन लेना इस ओवर में कॉस्टली साबित हुआ क्योंकि एक विकेट गई। उस्मान कादिर आए 41 मैचेस में 383 रन है इनके पास, 150 इनके क्रेडिट में है। बैटिंग की सलाहियत है खासतौर पर बड़े शॉट्स खेलने की, लेकिन क्या ये विकेट पे रुक सकते हैं, ये आज का सवाल है। या इस तरह से गेंदों को छोड़ना जरूरी है। अच्छा कामयाब ओवर अहमद दानियाल ने इस पार्टनरशिप का इख्तिताम किया। ये 7वीं विकेट के लिए खतरा बन सकती थी। लो स्कोरिंग मैच में कोई भी पार्टनरशिप खतरा बनती है रन चेज में, लेकिन बहुत ज्यादा लेट कट करने चले गए। उमर अकमल ने अच्छा कैच लिया, बड़ी फुर्ती के साथ गेंद की तरफ लपके, लो डाउन। जी एग्जैक्टली। जहाँ यहाँ पर तमाशाई हैं कुछ, ये जावेद मियांदाद एम्प्लॉयर में ये 2 नौजवान आए हुए हैं, खुद भी क्रिकेटर लग रहे हैं। खासतौर पर ये साहब जो है मोबाइल पे शायद स्कोर देखना चाह रहे हैं इसी मैच का। और ये उम्दा कट शॉट जुनैद के ये फेवरेट शॉट्स में से एक है और साथ बार बार उन्हें मौके फराहम कर रहे हैं हाथ खोलने के। जी एग्जैक्टली, ये लगभग दूसरा मौका है कि जिस वक्त जुनैद ने ये गैप निकाला, वेट किया इस बॉल का, थोड़ा सा पीछे हट कर रूम बनाया और उसके बाद इसको ऑफ स्टंप से खेल दिया थर्ड मैन की जानिब। रिस्क फ्री क्रिकेट शॉट था ये। यहाँ नए बैट्समैन क्योंकि मैदान में आए थे, जहाँ तमाशाई जो हैं ये मौजूद हैं। रावलपिंडी में बेहद शौक है, यहाँ टेस्ट मैचों में भी ये मैदान हमा वक्त हमें नजर आता था। यहाँ
अच्छी हाजिरी रहती थी पाकिस्तान के दीगर वेन्यूज़ के मुकाबले में। खचाखच भरा रहा था ये पिछले सीज़न में जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ था, और उससे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। वैसे तारिक भाई, जिस अंदाज से यहाँ पर क्राउड आता है, थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए स्टैंड्स को, क्योंकि बहुत अच्छा वेन्यू है, क्राउड की जो इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी ज़्यादा है, मौसम के हवाले से भी ये जगह बेहतर है। तो यहाँ पर चेयर्स होनी चाहिए, मॉडर्न डेज के जो क्रिकेट के गैजेट्स कह लें, लवाजमात कह लें, स्टैंड्स कह लें, वो इम्प्रूव होने चाहिए। या टेस्ट मैचों के दौरान आर्जी तौर पे वो होता भी है बंदोबस्त। दूसरा नहीं मिलेगा उस्मान को। लॉन्ग ऑन पोजीशन पर अच्छी फील्डिंग मोहम्मद फाइक की। अच्छे क्रिकेटर हैं मोहम्मद फाइक। आज सुबह जल्दी आउट हो गए थे। और ये अच्छा कैच उमर अकमल का, शानदार विकेट कीपिंग और विकेट हासिल की साद नसीम ने। ये अच्छे कट शॉट खेल रहे थे ऐसी गेंदों पर, और अब स्लॉग स्वीप करने चले गए जुनेद। और क्या वक्त और क्या विकेट, एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त। साद और उमर के दरमियान ये कॉम्बिनेशन, ये देखिए बॉल बिल्कुल सामने पड़ा, ऑन साइड पे खेलने गए, इनसाइड एज, और बाकी का काम उमर अकमल ने किया। और साथ की खुशी क्योंकि बहुत बड़ी विकेट है, मेरे ख्याल से फतह में शायद यही जुनेदी हाइल थे। और इनसाइड एज की वजह से ही ये बहुत आला कैच था उमर अकमल का। 26 बनाए जुनेद ने, उनकी मज़ाहमत दम तोड़ गई 44वीं गेंद पर 121 पर 8। Yeah, not the ideal scorecard if you're a spectator of Lahore Blues. 36 from Hashim Ibrahim, 26 by Junaid, who was the last man out. Was caught off Saad by Umar Akmal. Remaining, everyone has struggled, courtesy to some very disciplined, very accurate, fast bowling, and now spin department also doing the trick. 121, and they've lost 8 wickets. Numan Chaudhary, it's been a bowler's delight this day. Well, absolutely. On debut, Ahmed Danial picking up 4 wickets. Wicket apiece for Amir Jamal and Saad Naseem. 2 wickets for Ahmed Bashir as well. Dominant bowling performance it has been from the Lahore Whites. In shadow face. Beautiful. It's just that sort of a day when everything is going Lahore Whites' way. 25 gone, 121 for 8.
Junaid did survive for 26 runs before this happened. Flight to delivery, spin available, and a very good catch by Umar Akmal. We've been talking about his wicket-keeping skills, but he made no mistake this time. Couple of good catches for him in the last few overs. And you can tell the story, they've got that man. Junaid was the last batter in. Now Lahore Whites will be thinking that it's their game to lose from here on. Well, absolutely. Some resistance was shown by Junaid Ali. 26 of 44 before he was taken out of the equation. It's just a matter of time now for Lahore Whites. Thoroughly dominating bowling performance. Never easy defending 200 runs, and that too at the pitch of Pindi Stadium. In the air, easily taken. It's a cotton ball for Ahmed Bashir. Got big on Usman Qadir. He had no clue where the ball is going. Probably is thinking that the ball did grip a bit on the pitch, and he had no idea where to hit. It seems like he had lost the side of the ball. Look at that. Was in two minds. Was caught in the crease and was eventually caught by the bowler as well. Usman Qadir walks back after a dismal knock of 121 for 9. Lahore Blues all over the place. The last man in, Salman Irshad. For how long can he survive? That's the question. Because it's been the bowler's day. We expected that. But we also expected, Numan, that these are two very good teams. And we expected some fight, some challenge. But that has not happened. These numbers don't suggest much. Just the best of 14 for Salman Irshad. And the average of 4. 2 slips now for Ahmed Bashir, who's taken 3 wickets, 3 important wickets. You're spot on. Very disciplined bowling performance this time around by the Lahore White side. Look at that. That was Usman Qadir. Was caught by Ahmed Bashir. Yeah, he committed for that pull shot and then realized it was not that short. The length was not that short. And in the end, found himself nowhere. Well, apart from the good bowling display by the Lahore Whites team, it was the dismal batting effort. The way the batters were dismissed of Lahore Blues. They had good batters in their ranks. Imran Bhatt, Rizwan Hussain, Hussain Talat, Qasim Akram. Formidable batting lineup. But the way these batters lost their wickets, everyone came in. No one tried to settle in. The skipper Imran Bhatt only made 10 of 11. So no one tried to apply themselves on the wicket. That has been the story. That has been the problem. Yeah, I totally agree with you on that. But again, I will take you back to the same 9th wicket partnership of 49 runs. I think that is the reason this one is another very sharp bouncer. I think to me that was the moment where the match changed, when Usman Qadir was taken off and that partnership of Ahmed Danial and Kamran Afzal. It was a 49 runs partnership that really took the game away from Lahore Blues. And now it's just a matter of time. They required 79 runs. Lots of overs to do that. But guess what? They only have 1 wicket. Yeah, you're spot on. You only got a wicket. But I tell you what, I really expected better from this batting lineup of Lahore Blues. You got Hussain Talat, who's been playing cricket for more than 10 years. You got the youngster Qasim Akram, was captain Pakistan under-19 team, was captain the Central Punjab team in the last domestic season as well. You got the experienced Kashif Bhatti. And this level demands from these players to stick around for quite some time, to make sure that they at least play out the remaining overs. A dot ball will
end the over. 26 done, 121 for 9. He's done really well in comparison to what Imran Butt did in field. I think Saad Naseem has been spot on with his decision making, with his bowling changes, with the fielding positions. Everything has gone in his favor, other than the toss. Well, sometimes it's good to lose the toss. Any captain would surely take the result, winning the game over winning the toss. Yeah, I'll take the game any day. Ahmed Daniel in search of his 5th wicket. Beautiful. Beautiful, but he just overstepped. Yeah, free hit for Salman Irshad, just overstepping on this occasion. It was Ahmed Daniel playing the first game, the first list A game, bringing up a clinical performance on the day where it matters the most. Free hit coming up. Can Hunain Shah deposit this one over the stands? He did try. He did listen to you. But probably that's the only way he knows how to play. And that is right. Because at a pitch in conditions where batters have struggled, he's not going to hang in there for long. So better to just to increase your average, just a few boundaries, a few big hits. Because these are difficult conditions. Initially, we all thought that first hour, 45 minutes, ball will do a bit. But it has done till now. Ball is swinging, it's seaming. It's not easy for the batters. It's in the air, but away. Away from the third fielder. Boundary. So finally, Hunain Shah using that long handle. Not the prettiest of the shots, but he will take 4 runs. Well, he's been trying too hard to get one away, and finally he has connected. Although there was an outside edge, wasn't convincing. He's trying to play towards the mid-wicket, towards the onside. An outer edge will nonetheless earn him and Lahore Blues a much-needed boundary. And look at that stare from the fast bowler. Daniel in search of a fifer. Can he do it? Big, very big. Very big, all the way. Well, in the pursuit of getting his fifer, has bowled a length ball. And I tell you what, on any day, Hunain Shah was not going to miss out on that one. It was kind of a freebie. Length ball right in the zone, rolling his fingers over the ball, and has got a good thumping connection on this occasion. Gets a connection, gets the maximum result for the Lahore Blues. Yeah, this is where the tail end is like, the length delivery. What can he do? A shorter one maybe? A Yorker? A slower one? What would it be? Outside the off stump. Ahmed Daniel has bowled really well. Well, absolutely. It's been that kind of a display by Ahmed Daniel. One thing that stands him out from the other bowlers is the way he has varied his pace at this surface. And that's what we've been mentioning over and over, that that's what the level demands. You need to stand out, you need to show that you are different, and you need to show that you're not predictable. Now that was back of the hand, trying different things. Ahmed Daniel. I'm not sure if the leg cutter or the leg spinner, slower one, is the right idea for a tail-ender. I think it has to be an off cutter. It should be coming into the right-hander. That is the better way of bowling to a tail-ender. Because he's going to go after you, you know that. So better be within the stumps.
look to hit the stumps. That should be the order of the day from here on. Ahmed Daniel. Ahmed Daniel bowled him. That's a fifer for him. Beautiful delivery to get rid of the last man, Hunain Shah. He wanted to go big, and that has given him his first fiver on his debut. What a performance that has been from Ahmed Daniel. Abbas Iqbal was the last man to do it on his debut, and now after 4 years it's Ahmed Daniel taking a fifer on his debut. What a fabulous, fabulous spell of bowling we have seen from this youngster. Only 7 overs, he's given away 33 runs and taken 5 wickets. That's a wonderful performance, not just by Ahmed Daniel, but the team, Lahore Whites. They deserve all the applaud. And that's how he won it for the team. Straight within the stumps, bullseye. That's it. That's what you were looking for. That's what you were aiming for. Well-deserved fifer for Ahmed Daniel. He's been applauded by the opponents also because he has bowled so well. Abid Ali, well, he's been a great team man. He's been that motivator outside. We saw him do it. He will be disappointed. Well, I think so. It's Lahore Blues that they have made it a hard journey for themselves, because I don't think so that this was a big one, like 200 runs being an easy way to chase down. But I think so that well done to the bowlers, like you've been watching that Ahmed, who bowled perfectly, 7 overs, 3 wickets. Then Ahmed Daniel, 2 Ahmeds, who got 5 wickets. Excellent spell. Yeah. But on the other hand, we'll have lots of things to think about. Why? Where did he go wrong? Because winning the toss, bowling first, was an ideal decision. And they took 4 early wickets. And then from there on, losing the game by 67 runs. There's a lot to talk about for Lahore Blues. A lot to think about their batting order, their playing 11, their captaincy's tactics, their strategy. Lots of things to think about for Lahore Blues, but it's all joy for Lahore Whites at the moment, because they won this game when they were in lots of trouble from 30 for 4 to get to 200. That wonderful partnership of Kamran Afzal and Ahmed Daniel making sure they get to that 200 mark, which was challenging enough to ball out Lahore Blues on 132 runs. Just 2 batters standing out, not really though, but still out of all these. 36 from Hashim Ibrahim, 26 by Junaid are the only 2 players really to be talking about. Other than that, no performance whatsoever. They were bundled out on 132. Well, have a look on to the bowling analysis. What a wonderful spell we did see. 33 runs, 5 wickets. It's Ahmed Daniel who did wonders, and 3 wickets for Ahmed Bashir, who got in 7 overs, 29 runs. So these are the 2 pick up the bowlers, and I think so. The backbone has been damaged from these 2. Well, another session, another inning dominated by the bowlers. They've been spot on with the line and length, although there was some aggression shown early on. But Amir Jamal got the better of the openers, beautifully length ball. Hashim Ibrahim did survive for a few deliveries. Risky inning, but runs kept on coming. But this was the big wicket. Rizwan Hussain playing it straight to the hands of the fielder. A lot was expected of Hussain Talat, also dragging one onto the stumps. He will be disappointed with that shot. Hashim Ibrahim kept scoring runs. Qasim Akram again, a false shot. Shot selection has to be looked again from Lahore Blue side. It was a beautiful spell of fast bowling from Ahmed Daniel. Kept on taking wickets. Was helped by some poor shot selection. This was a peach of a delivery. A ripper to get rid of Bhatti. Kamran Afzal to try a few overs, but was expensive. Saad Naseem also
bowled a few overs, but it was the fast bowlers doing the trick, getting the wickets all the way. Ahmed Bashir, and this was a wonderful catch by Umar Akmal. Saad Naseem also into the wickets. He got a few wickets. This one was another brilliant catch by Umar Akmal. He's been spot on behind the stumps. Usman Qadir got big on him, had no clue how to play that one, lost his wicket. And then after that it was all Ahmed Danial getting all the wickets. A few big shots attempted by Hunain Shah, but this was the moment he will remember for the rest of his life. His first fifer on his debut in List A cricket. Disappointment definitely will be in the camp of Lahore Blues. Well, there you see, well, looking on to the 45 overs game, no 50 there from each side, or either side. Kamran is in 45 in 52 deliveries and 42 from Tayyab Tahir in 72 deliveries. But it's overall the bowler's day, I must say here. The first game here at Rawalpindi, where Pacers, they dominated and made themselves to count here. And at the end of the day, Lahore Whites winning it with a margin of 67 runs. Yeah, one man stands out, and that is Ahmed Danial. Let's have a word with him. Noman Chaudhary, over to you. अहमद दानियाल, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। लिस्ट ए का आपका डेब्यू था, अपनी टीम को आपने फतह दिलाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी दी। एक ड्रीम होता है बॉलर के लिए अपनी टीम के लिए एफर्ट करना, और जितनी ज़्यादा एफर्ट करके टीम को जितवाने में वो चाहता है, उतनी अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और वो हेल्पफुल साबित हुई है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अपने डेब्यू मैच में मैंने माशाल्लाह से परफॉर्मेंस की और अपनी टीम को जितवाया। अहमद, कुछ बताइए, काशिफ भट्टी का जो डिसमिसल था वो आज के दिन की शायद सबसे बेहतरीन विकेट थी। कैसा आपने उनको सेटअप किया? आते साथ ही पहली गेंद बड़ी ज़बरदस्त थी। जी क्योंकि इस सिचुएशन में जब थोड़ा सा हमारा लोअर स्कोर था, टोटल था, तो यही प्लान था कि हमने अटैकिंग बॉलिंग करनी है। हम रन सेव करने नहीं जाएंगे हम साथ, लेकिन अटैक बॉलिंग लाजमी करेंगे। तो बस उसी पे प्लान था कि मैंने साद भाई को कहा था ये कि मैं अटैक करने ही जाऊंगा, तो लेट्स और देखते हैं कि क्या होता है। तो शुक्र अल्लाह का कि मुझे विकेट मिल गई। अहमद, 199 रन जब आपकी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए, नॉर्मली पिंडी स्टेडियम एक हाई स्कोरिंग वेन्यू कंसीडर किया जाता है, तो हाफ वे थ्रू क्या डगआउट में बात हुई? क्या कप्तान ने क्या मैसेज दिया, कोच ने क्या मैसेज दिया, क्या बिलीव था आपकी टीम में ये स्कोर रोकने के लिए? जैसे कि शुरू में हमने देखा कि हमारे बैट्समैन ने भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया था विकेट के ऊपर, क्योंकि विकेट थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इतना नहीं था कि बल्ले पे प्रॉपर नहीं आ सक रहा था। तो वही प्लान हमें उन्होंने दिया था, हमारे कोचों ने, इजाज़ भाई ने और जाज भाई ने, कि सेम बॉलिंग, वही टारगेट विकेट टू विकेट आपने बॉलिंग करनी है। तो जैसे हम आउट हुए हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी आउट कर सके। तो इसी पे हमने एग्जीक्यूट किया प्लान को। बस बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस थी अहमद दानियाल आपकी। इसी तरह टूर्नामेंट में मज़ीद अच्छे स्पेल्स करें और इसी तरह इंप्रेस करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये अहमद दानियाल थे, बड़ी उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। ओवर टू यू गाइस इन द कमेंट्री बॉक्स। Thank you very much, Noman. Really a wonderful performance. So the upcoming matches in this Pakistan Cup, 3rd November. Keep the date in your memory. Lahore Whites will be playing against Multan at Abbottabad Cricket Stadium. Then Rawalpindi will be fighting against Peshawar at Mirpur Cricket Stadium, HAK in Faisalabad, versus Lahore Blues. That will be here at Pindi Cricket Stadium, Rawalpindi. And Fatah cricket team will be playing against Karachi Whites at Shoaib Akhtar Stadium, KRL, Rawalpindi. So that's it for the day. I hope you enjoyed the broadcast. Stay with us. There is a break for tomorrow. Till then, goodbye. There is the first wicket. A little bit of movement and he plays it away from his body. Loud shout and Umaid Asif has got the wicket. Ahmed Shehzad. Umda cover drive. That's a good shot. Ball him! Wonderful delivery. Comes on the onside. Hassan has got a good connection and gets another boundary.
खूबसूरत शॉट हाशिम इब्राहिम का। इस दफा ऊंचा खेले और सीधा हाथों में। Bowled him. Beaten all ends up. Bowled him. That's a fifer for him.